because it's not just people not getting daru, liquor, but when they come back, they don't have the same brazenness to create ruckus in the village or home, because somebody just says, the wife just says, I'll call the cops. And then you are, there is a serious fear there, and that has actually, I mean, it's a small thing, but these things have gone a huge way in favor of Nitish Kumar. And it will rub off on the BJP. What News 18 in our reportage has a guy standing there and saying "Sharabandi holi chahiye." 3 o'clock in the afternoon, he's totally sloshed and he's saying "Sharabandi holi chahiye." We have that with us. We'll try and play that out also. But Priyam Gandhi Modi, Maharashtra, Gujarat, and if they repeat something like in Gujarat, see the previous elections was a record number. But before that, they just barely got up to 100. They didn't get up to 100. So they thought, is the BJP wiped out, is the Congress resurgence happening? And then it was Todi na kyu, Bhodi na kyu, Bhukko kari na kyu. So what happens in Bihar now? So interesting to see because Nitish ji, like the Prime Minister, enjoys pro-incumbency. That's one. Second, very looking forward to see where the 4,30,000 something women votes are going. In my gut is that it's going to Nitish Kumar and Modi ji. I also want to see whether it is the money in hand that is working, or whether it is the promise of jobs. We don't know whether jobs are going to come from, but the promise of jobs, we don't know which one is swaying. So that's going to be interesting to see. Also, and the last thing which is also interesting to see is that everybody knows that Nitish ji is kind of peaking now. So you see these host of young leaders trying to say, I am the new Nitish Babu in Bihar. So Prashant Kishor is trying to break in. Tejasvi is already there. But he should have contested, no? If he was the new Nitish Babu, he should have contested. Then perhaps there would have been some more momentum and fight and fire within JSP. Absolutely. So there is a host of these young leaders. Maybe BJP will also throw in a face. Chirag is a young leader. So, we see that everybody is trying to occupy that space that after Nitish, who? So, but Chirag Babu ka strike rate hona chahiye. He's getting seats which he thought more than what he actually deserves, and will that strike rate be there? The other thing, there was an RJD MLC who said that if the results are not in their favor, he is urging the Gen Z to try do something like Gen Z uprising in Nepal. And now we just got coming through that the RJD is actually issued a veiled threat, viewers. Let's look at this. News just coming through that there is a poster that's now been issued. The poster is urging 20,000 supporters of the RJD to reach the strong room. They are saying on counting day, this is RJD's veiled threat. They want 20,000 of RJD supporters to reach the strong room. Now, why is this entire muscle flexing, and why is this that they are trying to create this kind of an unrest and arajakta? Let's try and go across to our reporters. Arun Dhanta is with us. Yes, Arun. Right, so we'll try and get you a poster also and an image. Yeah, there is the poster. That's the poster. सावधान, हर strong room के पास RJD के 20,000 लोग पहुंचिए. Have a look at that poster. Now, why would they put something like this, Rashid Kitwai? Well, I don't see any, harm in it. If they are asking for people to gather, it's it's a democratic country. People have a right to assemble unless there is a, section 144 is there. See, I think the faith in democracy, democratic process is very much required, and it should be there. But it is also that, and Anand, several surveys have indicated that people are losing faith in Election Commission of India, and this is very alarming, and this needs to be checked by the Election Commission itself. Are they losing faith in the Election Commission? In a big way that the whole vote chori campaign. We've seen in the past few days RJD speaking about in the strong rooms not enough guarded, electricity is been cut off. Some boxes are coming full of VVPAT voters. You saw the VVPATs also. EC had to take action. But I think this also ties up in the BJP's campaign. That the RJD essentially is a Jungle Raj party. When is the last time that in an election you've seen the Prime Minister speak from the stage saying Katta, Donali, Rangdari? So I think the Prime Minister also tried to drill in this message amongst the people, in the psyche of the people, that if you vote for the RJD, you are voting for pre-2005 Jungle Raj of the Lalu Prasad Yadav. But look at the picture here, viewers. The picture shows Lalu. It's not Tejasvi. The picture shows Lalu. And there is something else that's written in a call out at the bottom also.
somewhere are they trying to crowd the election commission and perhaps, this is also signs of a loser, Nalin. Yeah, please. Yeah. Go ahead. No, also that the fact that there has been a record turnout also shows that people have not lost faith in the electoral process. Number one, these posters. तो फिर जो सर्वे आपका ओपिनियन है वो तो वोटर ने ही रिजेक्ट कर दिया सब. Also, this poster forms a groundwork that if people don't come out, we'll have another international media story saying why is India's Gen Z not rising and coming out to these strong booths, so this is setting stage for that. Right. There's not been a single case of violence or murder or anything. People have gone, quietly voted, come back. So this whole narrative of vote chori, I don't think it'll sort of play out. You had a voter turnout which is a record voter turnout across time, across Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. You have a state which is the youngest state in India. So the increase in voter turnout has been attributed to a large extent to both women voters. Women voters have outvoted men, and also to a large number of younger voters. Now, if the result comes out this way, we don't know what the result will be, frankly. But if the result is what the exit polls are saying, does it mean that Gen Z is voting for the right? 18 to 19-year-olds, 15 lakh voters. Okay, now if Gen Z, what is right? If Gen Z is voting what they feel is right for them, there is no right and left here. Absolutely. Sir, because the Congress tried to go left and the left is going much better. Make it that with these kind of voter turnout figures, where does it leave the vote chori campaign, frankly? And are people voting to affirm their vote? Or are they voting for other reasons? Or is the voter saying that every time Rahul Gandhi raises a bogey, it's actually a bogey? Does that then prove that? That may also mean, you see, that vote chori, it is driving more and more people to vote and exercise their democratic right. That is, sir, vote chori is only if my vote is not there. But if my vote is there, it's not driving people to vote. If people are coming out to vote because they say, okay, my voter has been reaffirmed, I have gone through the thing of showing my kagas, so let me go and do. Okay, now, Tejasvi Yadav 2 days back said that the administration ka phones ja raha hai. 2020 also he said that the administration is putting pressure. This time around, he is just last night issued a threat or a warning saying that if the administration repeats their 2020 mistake again or anyone crosses their limit, does something unconstitutional or unfair, and if any official acts on anyone's orders, then the public will take care of it. So is this now going away from the ballots into the streets? साथ बैठे हैं, आईपी गुप्ता जी यहाँ पर उस ऐसा में है, यूनिकल गिनती है, लेकिन आज सब हम लोग बैठे हैं, हम सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। भारी बिहार के लोगों ने मतदान किया, लगभग 80 लाख लोगों ने जो है 2020 की तुलना में अतिरिक्त जो है मतदान किया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है। और इसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिहार लौटे हैं, सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ कल जो है चुनाव जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं, और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे, तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत करता है। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था
हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। So Tejasvi, is it just setting it up for election denial? That's one part. The other thing is, if the last time the margins looked quite close, if this is a runaway victory either side, will there be any cause for disruption? Or are the RJD saying, if we lose, we will take to the streets and we'll create mayhem? We'll have to wait and watch who conducts themselves responsibly and who doesn't, viewers. Short break and we'll be right back. This is News 18 Network. India's largest news network. आन बान शान या के जान का हो दान आके एक धनुष के बान पे उतार दो. That's what all the candidates have done. They've given it their all, viewers. They've given it their all, and what they want to do now is to perhaps sit back and hope that their efforts pay, and the voter, the janta, actually is convinced by what they had to offer. Who was the most convincing? Who do they trust? Who do they believe can give them the freedom to step out late in the evening after a long day at work, be it male or female? Who is it that who can give them jobs, because unemployment is a core issue? Who is it who can solve the problems of displacement due to bad or floods? These are all questions that remain. Our guests are getting seated. Let's quickly signpost some of the important facets. First up, 7.42 crore voters across 243 assembly seats, of which about 15 lakh are first-time voters, 18 to 19 years. It's a historic 67% turnout across the two phases. This never happened. Even in the base of absolute numbers, it's perhaps one of the best turnouts, voter turnouts. And what does that indicate? But even then, about 33% of the voter did not come out to vote. Keep that in mind. It's a battle of two alliances. The 2020 scorecard points to the NDA, which had 125, just past the post. Indi Gathbandhan was at 110, really breathing down on the neck. This time around, the exit polls are saying, well, it will be Nitish Babu standing tall, riding off the entire PK factor altogether. The Simanchal region and the SIR impact will be in focus too. 97 seats with the migrant vote factor. How will they vote? Did they stay back after Deepavali and Chhath? We have to watch. There was a significant up in the turnout in phase 2, mind you, where the Simanchal region was covered. Women voters outnumbered the male voters by 10%. The Jivika Didis, do they hold a key factor? Is it the women who will come back and tell you that no, we trust Sushashan Babu because right through the last 2 decades, he has done more for women than anybody else we thought would? Or will it be the Yuva, about 40% of the voters this time around plus, who would say, no, we've not seen a Raj outside of Nitish Babu as Chief Minister. Let's look at something beyond Nitish. Will they do that? Or will they say, why fix something that ain't broken? Let's go straight across. Let's go straight across to our reporters, Pallavi Ghosh, Payal Mehta, joining us from ground in a good early morning. Ladies, what's the mood? What's the mood? There you go. We've also got Arun Danta joining us. Looking bright and early and fresh. You're not great. If you're morning people, you're all right. That's what it looks like. Pallavi Ghosh, what's that smile all about? Payal Mehta's all jacketed up. Are you there somewhere around the BJP offices, Payal? Let me start with Pallavi and then I'll come to you, Payal. Arun is somewhere which it looks like the RJD hold. Yeah, Pallavi.
Yeah, absolutely. It's a Tejasvi Yadav residence. You can see the laltain or the lantern right behind me. Not glowing as of now, but I guess Tejasvi Yadav is going to wait to see whether it's glowing. I'm just going to give you a sense of where I am at this point of time. Okay. Across the wall is Nitish Kumar, that's the CM's residence. You can see already these posters have been put up. Bharat Varsh ke hone wale sabse yuva Mukhyamantri ko janmdin ki hardik badai. He did celebrate his birthday a couple of days back. But you know, this is a do or die election, I would say, as far as Tejasvi Yadav is concerned. Will he be able to hop over from this residence to that part of the residence? He certainly has been running a very high-pitched, aggressive campaign. I think, Anand, if there's something which can pull him down, it is the Congress party, a very lackluster campaign. They have been the Boj on the Mahabadbandhan, but more importantly, that Bandhan within the Mahabadbandhan has also been lacking. But for Tejasvi Yadav, this is an opportunity twofold very quickly, because before I come back to you, one of course is, will he finally break away from the legacy of his father? Remember, the entire election has been structured in such a manner where the BJP, the Prime Minister have always made the point that a return of Tejasvi Raj will in effect be a Lalu or Jungle Raj. Can he break away from the mold of his father and say and convince the voters कि मैं अपना बाप का बेटा तो हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ? That's one. Second is that what is his political future then? Will it mar and scar the India bloc and Mahagathbandhan? Should the Congress party pull down the numbers for The first leads in just about 84 minutes and 10 viewers. Here it's result day live. Bihar has gone to the ballot and Bihar has voted like never before with a revised voter roll and a whole host of voters. Nearly 40 to 45% of the voters, if my memory serves me right, and the experts here can bear us out on the fact that they have never seen beyond Nitish Raj. They were born or they started voting when Nitish was Chief Minister, and today they have come to vote again at when Nitish is Chief Minister. Is there a leadership transition that we are seeing? Is there going to be an arresting of the ballot if the ballot is not in your favor? Is what the RJD trying to do to flex muscle to send 20,000 people of its cadre to all these counting centers? Is this all fair? Is this all good? Well, I think Anand, isn't this unnecessary muscle flex? Anand, our democratic credentials are very strong. I think whatever RJD is also there in the within the four walls of parliamentary democracy. I don't see anything extraordinary happening. We are reading too much into from a poster. And as I said, right to assemble is a democratic right unless it is denied by the local administration. I think everything will be fine. No, right to assemble when with posters that say Savdhan. With someone, Priyam Gandhi Modi, is this signs of a loser or is it signs of a winner? No. This is preparing to lose, right? Like, so in case the numbers are not as per what the party cadres want them to be, these are preparatory signs to cause some commotion and chaos. But what is he that he's talking about 2020? What is he saying that those are 20 में जो आपने किया वापस नहीं कर रहे? Well, the RJD feels that in 2020 it fought a very good election. It was the largest party with 75 seats, but it could not cross the mark, I think, due to the Congress party, which won only 19 out of the 70 seats it contested, with the poorest strike rate in Bihar. So RJD in fact was, I think, robbed of a win, not by the BJP or the JDU, but by the Congress party, its own ally. See, Anand, I think in this election, there's always a turning point in an election. I think the turning point, I think, for the RJD was 3 months back when that whole that businessman's murder happened right outside Gandhi Maidan. Tejasvi Yadav mounted this campaign against Nitish Kumar, saying the law and order is same, the jungle Raj is the same as maybe you accuse us of. They kept up at that campaign before Rahul Gandhi arrived in Bihar and turned the campaign around totally to the SIR issue. I think in Bihar, if you have to defeat Nitish Kumar after him being CM for almost 20 years, you have to portray and at least you have to make the people believe that the Jungle Raj is there in Nitish Kumar's rule as well. RJD very clearly knows that the Jungle Raj, is there on their, is a mark on them, and that is why you see
Lalu Yadav has not been on any poster of RJD. It's just been Tejasvi Yadav. In fact, at the RJD office, you don't see a Lalu Yadav poster. But now you see it today. Yeah, that's what I think. Because the core RJD voter, I must tell you, Anand, if you go to the ground in Bihar, the core RJD voter still is a Lalu loyalist. And this is all Lalu ka beta. This is all Lalu ka beta, and Tej Pratap is also coming out and saying Lalu ka beta, viewers. And the important part in this whole story is the Anant Singh matter. What happened in Mokama? The JDU, did they quickly allow the arrest to happen for him to be sent to judicial custody so that there is no mahal created about law and order again? So those two things, the businessman's murder and what happened with Anant Singh in Mokama. Let's quickly now try and understand what is at stake in terms of a referendum on Nitish Kumar's 20 years of Sushasan. Because he is the incumbent, he has switched ranks, he's been called Palturam in the past, but he continues to remain one of the strongest faces and the most trusted faces in Bihar, irrespective of what anybody talks about his health, his ability, his faculties, etc. Now, it's another test of this entire turning anti-incumbency tide. First electoral test for the NDA after Operation Sindoor. And it's also the verdict on the NDA's Vikas model versus the opposition's jobs promise. But more importantly, do you or do you not think, Nalin, this is also perhaps going to test or show to the world that the BJP can work in an alliance? The BJP can work as the weaker or the number 2 partner. So, well, last time the BJP ended up getting many more seats than the JDU. But I think, look, the question mark on the BJP has always been, allies have always been worried about the fact that will the BJP eventually gobble them up. Right? Yeah. So you've seen what's happened in Maharashtra. You've even seen so the regional parties are generally always very apprehensive about this, because the BJP poses an existential threat to many regional parties, because as they dissipate beyond their original founders, they either have a good succession, or eventually the polity is moving towards national parties, and where the BJP, in the absence of a strong Congress, is kind of encroaching on their turf. So therefore this election, to my mind, is as existential for the RJD as it's a very existential one for RJD, because they lost the last election. They fought a very important, very strong campaign. They almost won. And I think Tejasvi ran a very good campaign last time. Yeah. So this time, if they lose again, the RJD has not been barring the interim with Nitish. So in fact, that's what I say. Otherwise, the RJD would not have been in power for 20 years. That's something which I'm trying to understand. Last time around, Tejasvi ran a fantastic campaign. There was some momentum there. There was also a certain level of angst against Nitish. Plus, Chirag Paswan was drumming up the anti-Nitish sentiment further within the NDA ranks itself, saying that I am Hanuman to Modi ji, but Nitish teri khair nahi. Modi tujhse bair nahi, Nitish teri khair nahi. He was going up. And that perhaps weakened Nitish in the first, and the JDU in the first phase. Then immediately when they realized, it swung all the way towards the RJD, did the NDA course correct and then come back and then ask Chirag to pipe down, and 2 and 3 they somehow recovered, if the numbers can back that up. But this time around that's not there. So has the RJD been as good as 2020, or were they a shade There is no lesser? Clear anti-incumbency this time against at least Nitish or Modi. If BJP actually if we see NDA losing seats, that would probably be because of local candidates, not the main government, not the main heads of government. So there is nothing. I mean, if we have reporters on the ground, we have been having them for a long time. The other channels I've been watching. But nobody has really picked up a very strong anti-incumbency sentiment, unless there is something, completely under the water. From Raghopur, a local guy just walks up to Arun Singh on News 18 India, and he says कि वो पुलिया बनाया है, इतने साल से यहाँ थे, कौन पुलिया बनाया? और वो उधर देखिए, मेरा पड़ोसी का बच्चा का जान बच गया, 1.5 घंटे में अस्पताल पहुंच गए, पहले 6-7 घंटा लगता था, घूम के जाना पड़ता था, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पटना में एयरपोर्ट. People are also seeing the vikas, but this entire sarkari naukri in every family versus 1 crore jobs where we create opportunities कि बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़े. Which of these narratives will actually work? We'll pick that up after a break. We have to take a break, viewers. Stay with us. This is News 18 Network.
largest news network. आन बान शान या के जान का हो दान आके एक धनुष के बान पे उतार दो. That's what all the candidates have done. They've given it their all, viewers. They've given it their all, and what they want to do now is to perhaps sit back and can hope that their efforts pay, and the voter, the janta, actually is convinced by what they had to offer. Who was the most convincing? Who do they trust? Who do they believe can give them the freedom to step out late in the evening after a long day at work, be it male or female? Who is it that who can give them jobs, because unemployment is a core issue? Who is it who can solve the problems of displacement due to bad or floods? These are all questions that remain. Our guests are getting seated. Let's quickly signpost some of the important facets. First up, 7.42 crore voters across 243 assembly seats, of which about 15 lakh are first-time voters, 18 to 19 years. It's a historic 67% turnout across the two phases. This never happened, even in the base of absolute numbers. It's perhaps one of the best turnouts, voter turnouts. And what does that indicate? But even then, about 33% of the voter did not come out to vote. Keep that in mind. It's a battle of two alliances. The 2020 scorecard points to the NDA, which had 125, just past the post. Indi Gathbandhan was at 110, really breathing down on the neck. This time around, the exit polls are saying, well, it will be Nitish Babu standing tall, riding off the entire PK factor altogether. The Simanchal region and the SIR impact will be in focus too. 97 seats with the migrant vote factor. How will they vote? Did they stay back after Deepavali and Chhath? We have to watch. There was a significant up in the turnout in phase 2, mind you, where the Simanchal region was covered. Women voters outnumbered the male voters by 10%. The Jivika Didis, do they hold a key factor? Is it the women who will come back and tell you that no, we trust Sushashan Babu because right through the last 2 decades, he has done more for women than anybody else we thought would? Or will it be the Yuva, about 40% of the voters this time around plus, who would say, no, we've not seen a Raj outside of Nitish Babu as Chief Minister. Let's look at something beyond Nitish. Will they do that? Or will they say, why fix something that ain't broken? Let's go straight across. Let's go straight across to our reporters, Pallavi Ghosh, Payal Mehta, joining us from ground in a good early morning. Ladies, what's the mood? What's the mood? There you go. We've also got Arun Danta joining us. Looking bright and early and fresh. You're not great. If you're morning people, you're all right. That's what it looks like. Pallavi Ghosh, what's that? Payal Mehta's all jacketed up. Are you there somewhere around the BJP offices, Payal? Let me start with Pallavi and then I'll come to you, Payal. Arun is somewhere which it looks like the RJD hold. Yeah, Pallavi. Yeah, absolutely. It's a Tejasvi Yadav residence. You can see the laltain or the lantern right behind me. Not glowing as of now, but I guess Tejasvi Yadav is going to wait to see whether it's glowing. I'm just going to give you a sense of where I am at this point of time. Okay. Across the wall is Nitish Kumar, that's the CM's residence. You can see already these posters have been put up. Bharat Varsh ke hone wale sabse yuva Mukhyamantri ko janmdin ki hardik badhai. He did celebrate his birthday a couple of days back. But you know, this is a do or die election, I would say, as far as Tejasvi Yadav is concerned. Will he be able to hop over from this residence to that part of the residence? He certainly has been running a very high-pitched, aggressive campaign. I think, Anand, if there's something which can pull him down, it is the Congress party. A very lackluster campaign. They have been the boj on the Mahabandhan. But more importantly, that bandhan within the Mahabandhan has also been lacking. But for Tejasvi Yadav, this is an opportunity twofold very quickly, because before I come... Protect everything you love. Generali Central Insurance. Aapka lifetime partner. Just under 72 minutes to go before counting gets underway. It's Result Day live here at CNN News 18. Viewers, you can also watch us on Connected TV, on our YouTube platforms. We are live, we are streaming live this coverage continuously, and of course you can join us on television and set that remote aside right through the day and just stay right here with us. Sandeep Shastri ji has taken our advice. Welcome, sir.
Good to have you with us inside studio. That day he was away on an OB link and he felt ignored, neglected. Well, who will the voter ignore, neglect, and who will the voter embrace? We'll have to wait and watch. Thank you. Just quickly for us and our viewers and our guests here. CNN News 18 also spoke with Nitish Kumar's sister Indu Kumari, who's confident that her brother will repeat his second term as the chief minister. And right after that, we'll get you a ground report from Pallavi. Have a look. कितना विश्वास है रुझान उनके पक्ष में होगा? हमको तो 100% विश्वास है। अच्छा, क्या सब उनके कुछ काम को आप जरा चाहें कि गिना दें कि जो काम आपको लगा, चूंकि आप भी शिक्षा विभाग के अधिकारी रही हैं, अवकाश प्राप्त हो गई हैं, उनका कौन सा काम आपको बेहतर लगा जिसको लेकर हर तरफ जो है नीतीश कुमार की जय जय हो रही? शिक्षा विभाग में भी काम किया है, महिलाओं का काम किया है, रोड का काम किया है, और भी बहुत चीज समाज का काम किया है, बिजली फ्री किया है, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा तो आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। मेरे पर तो मुस्कान जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप हम एकदम कॉन्फिडेंट हैं आप। मतलब 25 से 30 फिर से 29। This is News 18 Network. India's largest news network. आन बान शान या के जान का हुदान आके एक धनुष के बान पे उतार दो. That's what all the candidates have done. They've given it their all, viewers. They've given it their all, and what they want to do now is to perhaps sit back and hope that their efforts pay, and the voter, the janta, actually is convinced by what they had to offer. Who was the most convincing? Who do they trust? Who do they believe can give them the freedom to step out late in the evening after a long day at work, be it male or female? Who is it that who can give them jobs, because unemployment is a core issue? Who is it who can solve the problems of displacement due to bad or floods? These are all questions that remain. Our guests are getting seated. Let's quickly signpost some of the important facets. First up, 7.42 crore voters across 243 assembly seats, of which about 15 lakh are first-time voters, 18 to 19 years. It's a historic 67% turnout across the two phases. This never happened. Even in the base of absolute numbers, it's perhaps the best turnouts, voter turnouts. And what does that indicate? But even then, about 33% of the voter did not come out to vote. Keep that in mind. It's a battle of two alliances. The 2020 scorecard points to the NDA, which had 125, just past the post. Indi Gathbandhan was at 110, really breathing down on the neck. This time around, the exit polls are saying, well, it will be Nitish Babu standing tall, riding off the entire PK factor altogether. The Simanchal region and the SIR impact will be in focus too. 97 seats with the migrant vote factor. How will they vote? Did they stay back after Deepavali and Chhath? We have to watch. There was a significant up in the turnout in phase 2, mind you, where the Simanchal region was covered. Women voters outnumbered the male voters by 10%. The Jivika Didis, do they hold a key factor? Is it the women who will come back and tell you that no, we trust Sushashan Babu because right through the last 2 decades, he has done more for women than anybody else we thought would? Or will it be the Yuva, about 40% of the voters this time around plus, who would say, no, we've not seen a Raj outside of Nitish Babu as Chief Minister. Let's look at something beyond Nitish. Will they do that? Or will they say, why fix something that ain't broken? Let's go straight across. Let's go straight across to our reporters, Pallavi Ghosh, Payal Mehta, joining us from ground in a good early morning. Ladies, what's the mood? What's the mood? There you go. We've also got Arun Danta joining us. Looking bright and early and fresh. You're not great. If you're morning people, you're all right. That's what it looks like. Pallavi Ghosh, what's that smile all about? Payal Mehta's all jacketed up. Are you there somewhere around the BJP offices, Payal? Let me start with Pallavi and then I'll come to you, Payal. Arun is somewhere which it looks like the RJD hold. Yeah, Pallavi.
Yeah, absolutely. It's a Tejasvi Yadav residence. You can see the laltain or the lantern right behind me. Not glowing as of now, but I guess Tejasvi Yadav is going to wait to see whether it's glowing. I'm just going to give you a sense of where I am at this point of time. Okay. Across the wall is Nitish Kumar, that's the CM's residence. You can see already these posters have been put up. Bharat Varsh ke hone wale sabse yuva Mukhyamantri ko आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये तो पक्का हो चुका है कि एनडीए का विजय हो रहा है, बहुत भारी विजय हो रहा है। चुनाव जीत रहे हम लोग, सरकार बना रहे हैं। Let's look at the breakup. This is the mega exit poll overall numbers for CNN News 18 and the News 18 network. 140 to 150 seats for the NDA, 85 to 95 seats for the INDIA. Jan Suraj could get up to 5 seats and the others are 5 to 10 seats. Namaste, Jai Hind and welcome. Just over an hour ago, it's the day of reckoning for Bihar as the results of the 2025 Assembly elections are going to be counted. It's Result Day live here on CNN News 18, on our YouTube platforms, on Connected TV. You can watch us anywhere. The fact is, you must watch us, viewers. This election, marked by a historic high voter turnout, has been a fiercely contested battle that will determine the political future of the state and carry significant implications for the national political landscape. Three forces that stand at the heart of the mandate of Bihar 2025. Women voters, first-time voters, and of course the young voters between 18 to 45 years. And of course the state's deeply layered caste alliances. Will they stick to caste or rise above it? And will that be gender specific? Will the women rise above the caste alliance? We have to wait and watch. Together they are set to determine whether the NDA holds on to power or whether Tejasvi Yadav-led Mahagathbandhan can script an upset, and how much space newcomer strategist turned political actor Prashant Kishor manages to carve out through his Jan Suraj party. Let's just get a quick look at the numbers of the exit poll numbers if we can. We got big news coming through. Let's go straight to that first. BJP leadership has now urged restraint. BJP leadership has now urged restraint. The BJP leadership is now saying we will have to keep in mind the Delhi blast. Let's not forget there was tragedy this Monday. So come Friday, if it is a runaway victory, we will be careful. We will be careful with our celebrations. We will be happy that we won, but we will not forget those who have lost their loved ones and the tragedy that struck at 6:52 p.m. Payal Mehta now joins us. The Monday tragedy will be remembered. The Monday tragedy, Payal, will not be forgotten. And that's what the BJP is quietly telling its supporters, its cadre. Yes, election win on one side. The BJP understands that they are Indians and they are citizens first and they have responsibility towards that. And they can't be insensitive towards the families that have actually lost their loved ones in that unfortunate tragedy that occurred just a couple of days ago as well. And that is the reason the BJP top brass has conveyed very, very, directly and very, very importantly to its party cadre that do not engage in major celebration. No bursting of crackers should be encouraged. And no, bringing those bands. This is a huge,
it's a huge fair that you see at the BJP headquarters. Whenever the Prime Minister comes in, there's flowers which are showered on him. All of this has been said to be kept under the wraps and kept very low profile. Given the fact that insensitivity cannot be something that the BJP leadership over here can really display. So, we'll have to just wait and see how this runs through the day, and what happens when the Prime Minister comes to the party headquarters, or if he decides to just convey his greetings to the party workers, through probably an online medium. It remains to be seen. The final decision will be taken in some time from now, but absolutely low-key celebrations. That's the mantra coming in from the BJP top brass. Right. Thank you for that, Payal. We've got Sandeep Shastri and Rahul Verma also joining us, and viewers, like we said, we are not hiding anything. So if you see them snacking away, it's poha, healthy breakfast that's being served at the table, because there's an early morning start on Result Day Live. Nalin Mehta has just got his hand on the mic and he is on a phone because he's also managing editor Money Control. So instructions are being passed on how election coverage will be on other platforms of the News 18 network. So you're wearing multiple hats. Looking at how the markets are looking at the Bihar election and what the expectation in the markets at the moment is, and what the scenarios could be. So we're talking to a few people to get a sense of the markets at the moment. So markets, there's still time for the markets, but Sandeep Shastri, Rahul Verma. Now the Mahila factor and also this whole aspect of 10,000. How much will that impact? Will the women actually decide the ballot this time around, because they've clearly outnumbered the male folk in coming out and voting? Sandeep ji. My own response is, while the 10,000 factor is important, we are ignoring an important dimension. In the last 5 years of Bihar government, there has been 2-3 more developments which have impacted the women factor. One is what is called the Ajivika Didi, the whole livelihood program that they had. Right. There are reports which say these Ajivika Didis were there at the polling booths encouraging women to come out and work and vote. So self-help groups played an important role. The cycle program for women and girls, the prohibition, all these, and then 10,000 was, I think, in a sense, the topping of the cake. But then let's not forget there were several schemes involving women which have impacted in terms of the attitude that women have taken towards the current government, and you may see its impact in the way the results pan out today. Sandeep ji, I keep thinking his voice resembles somebody. It is GVL Narasimha Rao. He sounds like GVL Narasimha Rao. He does. But yes, Rahul, tell me, Mahila Yuva, if Mahila may vote towards Nitish, there are many who are projecting that the Yuva may move towards Tejaswi because he is one of the most popular leaders in Bihar among the youth. Your thoughts? So first, Mahila voting for Nitish is now a 15-year-old story, right? And so you have seen this happening from 2010, and there are, as Sandeep ji pointed out, many factors going for it. But what is more important, that political parties or leaders are trying to basically create a social base which cuts across caste lines, and those leaders are much more likely to be successful and retain power. This is what Nitish Kumar has done. Tejaswi is also trying to do that. He had some advantage among young voters in 2020, might still retain, but the big question is, would that be enough? Because Mahila would be like 1 in every 2 voter. Right. Youth would be 1 in every 4 voter. And even among youth, you will have 50% women. Right? So given that sort of like distribution, it basically creates greater... The Mahila factor actually cuts across caste, cuts across age. Right? So youth does not mean only... So what, exactly. So what you are basically seeing is not youth vote. You are seeing young men voting for Tejaswi. And not necessary that all young men will actually be voting for Tejaswi too. Not all Mahila is voting for Nitish. It's just like probably... No, but how much does that mean? I want to make a point on women. There are 2 metrics I want to flag. One is that seats where women voting has been higher. Even in the last, if you look at data in the last 2 or 3 elections, in the last election there were 71 seats. Of those, NDA won 46 with a 38.64% vote share, right? Secondly, of seats which are जहाँ पे जो women बहुल हैं जो seats, वहाँ पर the JDU has always held on to more seats than other parties, followed by BJP and then followed by RJD. So it's not like RJD also doesn't have support among women, but the JDU has the maximum amount of women voters, and that's a trend going back to 2019 or even earlier.
In fact, and I think Shastri is right, that the story of the women vote in Bihar goes back to 2005, and in fact, along with Gujarat, Bihar was the one state where this idea of the women vote as a separate entity, the Mahila factor, first became prominent. Right. So I think this Mahila vote thing is more like a fortress approach. It is a kind of shield that Mr. Nitish Kumar has. But just to add a point what Rahul Verma was saying, basically when we talk about youth, the 50% of youth would also be women voters. If unemployment is a big issue, if job is a major issue, then women are also equally affected, particularly urban women. So we cannot Anand, make a distinction that women naturally are tilted towards Nitish Kumar. If unemployment gains currency, then I think it may hurt Nitish Kumar much more than what is expected. Well, the man who works the wall, he'll be joining us in a bit now, Zakir Jacob. But I'm just quickly borrowing the magic wall to show what Nalin was actually talking about in terms of numbers. This is the 2020 elections, and the 2020 Bihar, this is spread across Bihar, and largely this is the phase 2 this time around. This is phase 2, so this time around, the border regions and all, and Mahila factor is across 124 seats, and in those 124 seats, there's a 3% difference in the vote share polled between the RJD or the MGB and the NDA, and this 76 seats went to the NDA overall out of the 124, and this is at a time, the last time around, when there was a little bit of an anti-Nitish wave, the JDU was on the wane. This time around, this factor has actually changed. This factor is where Nitish is perhaps looking stronger than ever before, and he's got a public sentiment, and there's not too much of an anti or somebody cutting his legs from within itself. So that part is not there. So will this not go up rather than down, especially with the 10,000 impact or angle? See, there's a backstory to this, Anand. I'll just describe it with anecdotes what I saw on the ground. Many people, when you go on the Nitish Kumar knew in July, August that the youth is rallying for the Mahagathbandhan. He knew this. He saw this and he took 3 steps. Number 1, as we all now say, 10,000 Chunav. For the first time in Bihar's history, a cash women voters. It's never happened. Yes, we've given cycles, we've given other things, but a cash payout for the first time was given from the month of August, September. When I went to the ground and asked women, did you get the cash? Cash mila hai, uska bakri kharida hai, bachada kharida hai, sewing machine kharid li hai. Women have got the money. First mover advantage. Second big step, I think, which Nitish Kumar did, 125 units of free electricity to every domestic consumer in Bihar. A big sop. It has softened the somewhat anger which was there against Nitish. I went to villages, people said, हमारी तो अब गाय भी जो है वो पंखे के नीचे सोती है गांव में. Right. Electricity आया. Yeah, Indu Kumari ji also spoke about it. Yeah. And the third big thing I think which has happened is this old age pension which has not been spoken about much. Rupees 400 to rupees 1100. When you go to the aged people in Bihar, the senior citizens, 1.2 crore, mind you. Yeah. They all thank Nitish Kumar. They see that when you ask them that Nitish Kumar बूढ़े हो गए हैं, they say कि काम कर ना कोई चोरी करके थोड़ी बूढ़े हुए हैं. So, they say this anecdote to me. So I think the senior citizen gratitude towards Nitish Kumar, the woman of course already a solid voter, but I think even more this time because of the cash payout which has come to them and promise of 2 lakh will come in the future and free electricity. These are the 3 big moves by Nitish ahead of the elections. Let's just quickly which look are happening. The last 10 years, 4 elections. So it is 2015 Bihar elections, 2019 Lok Sabha, 2020 Bihar elections and the 2024 Lok Sabha. Just the women voters in these 124 seats, how it's happened. Now this is 2015, okay. In 2015, the Mahila factor, it's an even share, 61 seats each, and 2 seats went to others. So, and look at the vote share, but there is a huge gap in the vote share, 43.3% and 28%, but the seat conversion, INDA Gathbandhan had a higher seat conversion. Now if you want to look into the, and then you bring that to 2020, the 2020 numbers, we just looked at 17, 76 and 42. In between that, we had the 2019 Lok Sabha. So let's look at the 2019 Lok Sabha. 2019 Lok Sabha, look at the translation. Women voters actually gravitated in huge numbers because then the Modi factor also comes in. So it's not just Nitish Babu, it's the Modi factor, and look at the Modi factor. In 2024, now this is the recent Lok Sabha elections, and in the recent Lok Sabha elections, again because of the Modi factor, it's again 82, but then there's a slip. It's a slip by about 11 seats from the 2019 Lok Sabha elections, but still it's more than about 44% vote share. Now, Anand, in the 20,
if you can draw in the rural filter there, Huh. that will kind of correlate with what the Mohila factor is. Okay, telling let's you, try and because add the Bihar rural is filter here. fundamentally a rural state. Okay. If you draw in the rural factor on the Yeah. magic wall, it kind of tells you. So the Mahila factor and rural Look at factor. that. This Yeah. is 2024 Lok Sabha, 73 seats. Now, if I were to go look at the 2020 Vidhan Sabha, yeah, just going 2020 Vidhan Sabha, it's again 68. So rural voters, Mahila have gone towards the And JDU, I would argue NDA. to add to what Aman was saying, I think Aman is absolutely right about the 3 steps that were taken by Nitish Kumar last year. I would add one more to that, to the pensions and to the Mahila scheme, is the PM Kisan factor. I think that's an understated factor because it's been going on for a long time. 28,000 crores have been given to small farmers in Bihar. That's a national scheme. But I think one of the reasons what I explained these rural numbers, and if you remove the Mahila tab from the look at the rural parts of Bihar without the Mahila factor as well, you will find a very similar trend. Similar trend, yes. Quickly, Sandeep, you have to go to We our have been talking of women, we have been talking of youth, and we have been talking of caste. And Rashid ji raised the question of unemployment. I think what is important to focus is unemployment has been there last 25 years among the top 3 problems that people have faced. What is critical this time is the trust quotient. You see, who does the voter trust in terms of being able to deliver what they are promising? Everybody is making great delivery promises. But who does the voter trust in that sense? Yes. And that, I think, is the critical factor when they stand before that EVM to vote. Let's ask Arunima and Arun Dhanta joining us. Arunima, whereabouts are you? You are. Why do I see Anant Singh behind you? So whereabouts? I see you on the I see him on the poster. Yeah. Yes, so I am at Anant Singh's Patna residence, and you know, it's all decked up. It's almost as if Diwali still continuing. It says, "Jail ka fatak tootega, mera sher chhootega." And if you come with me inside, I want to show you the party offices are not ready as yet, but the Anant Singh residence is all decked up. There are supporters here. There are shamiyanas that have been put up on the other side, and they say they're going to feed 1 lakh people. So this is the shamiyana. The chairs have all been set up. The tables have been laid out, and the food. Just bear with me. If I will walk down to the kitchen area, I spotted at least 10 tubs of gulab jamun and rasgulla already ready. There's a huge kadhai there which was simmering with tarkari. So this is the area where the supporters from Mokama are going to come and they're going to be fed. There's a poster outside which says that every Vidhan Sabha member in Mokama is welcome to Anant Singh's residence. So this is the kitchen area that we are now walking into, where the cauliflowers have been chopped, the tomatoes are being pureed. And here when I go right, I'm going to show you where the mithai section is. This is the mithai section. Oh, Neeraj from News 18 India is already in there. Yes, so there you go. This is the mithai section. Wow. You see, the gulab jamun is already ready. The rasgulla is already, ready for dispersal. And on the other side, how the puri tarkari nash is being prepared. Here. अरे यहाँ डाइट कंट्रोल करवा रहे हैं आप और आप पूरी तरकारी और गुलाब जामुन दिखा रही हैं. The puri tarkari is ready here. कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है बता दीजिए यहाँ पे? हाँ मैडम 1 लाख. 1 लाख. हाँ मैडम जी. तो आपको पता है वो जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं. इधर आ जाइए, उधर सब्जी पड़ेगा. Hello. Okay, the sabzi is going for dispersal, Anand. It's a full-on kitchen that is. हर बार अनंत सिंह जीतते हैं. नहीं, इस बार जेल गए तो असर नहीं पड़ेगा. कोई जेल का असर नहीं पड़ेगा इस बात को लेकर के. मैं भी अनंत, आप भी अनंत, पूरे मोकामा की जनता से हर घर से है अनंत अनंत. Okay, हर घर से है अनंत अनंत. So that is the sentiment here. They're saying साजिश रची गई है. So this is एक मिनट. So they're all excited because they feel as soon as counting begins, Anant Singh will be declared winner. So at least at one place here in Patna, the early mover advantage can be seen in the kitchen. Well, see, Anant Singh is somebody who's always another Bahubali. Arunima, and jail ka darwaza tootega, mera sher chhootega. That's a sentiment in Mokama, and Anant Singh had said that this is being done deliberately to try and sabotage my own campaign. That's what he had believed. But whether or not the victory is in his, we don't know. But आप गुलाब जामुन पूरी तरकारी खाइए हमारी तरफ से, हमारा डाइट नहीं छूटेगा अभी तक तो, because हम वहाँ आपके साथ नहीं है. Diet control for us also. Let's go across to Arun Dhanta. Arun Dhanta is there at the BJP office.
हाँ अरुण वाह, अभी भी आप अकेले ही हैं कि आ गए कार्यकर्ता? बिल्कुल 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 आनंद, अभी भी हम अकेले ही हैं क्योंकि बीजेपी इज वेरी कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड हियर. एज वी स्पोक टू लीडर्स yesterday, they are saying that they will start celebrations, but there is a specific time for it. 7:38 you will see that BJP workers will be coming slowly to the party office. That's the instruction which has been given. And also, as we were discussing earlier, Anand, that the orders have been placed for the sweets here, and slowly you will see that also trickling in. Right now, of course, the office is filled with the posters, one of which you see right behind me, Raftar pakad chuka hai Bihar fir se NDA sarkar. So the entire office is decked up with such posters, and you will see slowly BJP workers will be coming in here. We are also told that there is a place dedicated here where laddu, samosas and things for the breakfast will be prepared. So those people will also be coming in here at the BJP office. And BJP, of course, we discussed earlier, is very, very confident that we're going to cross 160. Right. Whether or not they cross 160, we will know in a few hours from now, Arun Danta. But in a few minutes, you will have nice hot breakfast. That's good. So the hard work pays off. Early bird catches the samosa in this case. Thank you. Stay on. We'll come back. And as and when we have somebody from the Bihar BJP coming there, we'd like you to speak with them. Pallavi Ghosh, ये बड़ा सुनसान वीराना, आप कहाँ पर हैं? Okay, it's not Virana at all. It's just trickling in. You see this bus over here? That's a trademark Prashant Kishor bus. I'm at the Shekhpura house in Patna. He's been parked over here for 3.5 hours. A very kind of a corporate style of campaign. I'm just going to give a wee bit picture right behind me. These are the people who are trickling in. This is the team PK as they call themselves. You know, Prashant Kishor has tried to change the landscape of the way elections should be done over here, because wherever he's been traveling, he's been talking about a different Bihar. He's talking about that caste should not be the barometer. I want jobs. You know, in fact, he's the only one who's also talking about prohibition doesn't make sense at all, and if I come to power. And I remember when I had spoken to him and I asked him whether you're a king or a kingmaker, he told me very categorically that I'm going to be the kingmaker. Well, the numbers are going to tell us that. But he's Pallavi, kept both the camps. if you have been speaking to him, you should have asked him, kingmaker बनना तो लड़ना भी तो चाहिए था. Why didn't he fight the elections? इलेक्शन लड़े होते तो 5-10 सीटें मिलती. When I went to Gopalganj, I did ask him that question, but he tells me that a captain of the ship ही अगर लड़ने लगेगा तो फिर वो बाकी टीम मेंबर्स के लिए क्या लड़ेगा और क्या बैटिंग करेगा. So that's his logic. Cricket देखिए, I agree, in cricket the captain leads from the front. You have to be in the middle. Batting आपको करना है. आप नहीं बैटिंग करेंगे, आप रन नहीं बनाएंगे, the team will not get lifted. Morale will not be up. But I think, Anand, he wants to be a different kind of a captain over here. He wants to be, but I agree with you. Before I come back to you, I think there's been one point which may have hurt him, which could hurt him, which has certainly given an ammunition to his political opponents over here, was the fact that why did he not contest the elections? Because whatever explanation he may give, they always ask this question that not just, absolutely. After doing 3 years of hard work, legwork on ground and trying to set up cadre and party right across every district, every ward, every area, why did he actually then not contest? Everybody had the same. You had to contest. You had to go and challenge somebody, the tiger. Either contest where, the Lalan Singh was contesting, or somebody from JDU was contesting, or from Raghopur, where Tejasvi, Bastion, go ahead and show that fight to at least energize your cadre. That's the sentiment everybody had. And when he said, I'm not fighting, I think that itself deflated the entire campaign for Chand Suraj, contrary to what he may believe. All right, there's another poster. Just coming back to you, Pallavi, in a bit, to our guests in the studio. Have a look at this poster. So viewers, there are poster wars. JDU now has released a poster that exudes confidence. Bas kuch hi ghanton ka intezar. That's what the poster says. We'll try and play. It's just a matter of a few hours. Phir se Nitish Sarkar. Something to that effect. There it is. See, there you go. बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर आ रही है सुशासन सरकार. So this is the poster that has been put by Nitish Kumar and the JDU. Very clearly, their tone is a stark contrast to the RJD. I'm going to check with our team if we can put the RJD poster on the far side, and we can just compare and contrast the tonality from both the parties. The moment you see these kind of the tonality and the signaling, does that not show who's the winner and who's the loser? Now, these are the two. Thank you. That's great. Now, Savdhan, har strong room ke paas.
सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए बोल रहे हैं नीचे, पर 20,000 लोग पहुंचिए। ये देखिए शांतिपूर्ण तरीके से होगा, नीचे छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है सावधान, 20,000 लोग पहुंचिए। हियर दे आर सेइंग कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर आ रही है सुशासन सरकार। संदीप जी। Now, it's clear that the JDU wants to ramp up the way it projects its confidence level, because there was a lot of talk of the JDU being the weak link of the NDA, and I think they want to very clearly say we are there in front, we are there leading in important ways the coalition. So that's the whole message that goes back, and with this focus on Nitish as Sushashan Babu, the clear focus on him is very much there. Sandeep, at the start when we saw BJP a bit not declaring him very clearly, saying Vidhayak Dal set karega, I saw Nitish Kumar's party come out with this poster 25 se 30 phir Nitish. So they had very clearly put it out. There was also a lot of talk, Anand, that when BJP and JDU decided to contest 101 seats each. Always in Bihar, the JDU has contested more seats in an assembly election when they fought with the BJP. This is the first time that both contested the same number of seats. A lot of chatter in Patna is Nitish being cut to size. He's not being declared the CM face. Nitish party came out and said 25 se 30 phir se Nitish. Aaj also they are saying that kuch ghanton ka intezar phir Nitish Sarkar. So JDU is very clear. BJP in fact had to come around and very clearly then say that Nitish will be the chief minister. No, not just that. Despite this point, I want to give you some numbers. In 2005, in 2020, the JDU had contested 115, BJP had contested 110, and even earlier in 2005, JDU contested 139, BJP contested 102. This is the first time it's an equal alliance in number of seats. So Anand, I think this poster business is purely for the media consumption. I think few hours people will get to know. This is just to draw attention, and they're being very successful. Whatever poster you put, there has to be a tonality to it. That is the reason why. It's of no purpose. The Jaish Mohammed poster was also for social media consumption, but the tonality was important. The messaging was important. I think we have to remember here that the situation today, even in national politics, it's an alliance government. JDU is a very important ally for the stability of the government at the center. JDU wants to project that strength and hopes to have a good performance. So it has more leeway nationally as well in alliance discussions. So I think this confidence is also kind of like a start to how much it will negotiate with the center if the elections go. I think the focus for Nitish has always been to get special status without getting special status. That's where it is. You can't officially give special status, but you got to give enough to Bihar so that it's never a Bimaru this one, and the Bihari does not have to go Bahar. Now, will that promise be made? Will they exact more of their flesh? Yes, Rahul. I'm worried. You're worried? Looking at RJD poster. Because see, I think what seems to be happening after 2024, of course, like opposition parties in last 1.5 years has been sort of questioning the election process, and this is basically taking it to another level, right? Just before the counting is beginning, if you start doubting the entire process, this is basically, now we are on the downhill on this road, because like I don't know what would happen in the evening, but I think the entire process now with every election will always be contested. Is this going to be trouble only if it is a very, very close fight? That if it comes down to the final 7, 8, 10 seats and the margin is 300, 400 votes or something like that, and that's where then the allegations start coming. If it's a runaway win one way, you think there will be any trouble? Yeah. No, trouble can happen any which way, Anand, but just look at the stark contrast in signaling, messaging of the two posters. One is one seems like a chilled out, confident sort of message, and in the other you see Lalu Prasad with a huge stick, a lathi, standing there, and they're asking people to sort of come in thousands. And also this whole sab kuch shantipurna tarike se hoga is a meme which is kind of ironic when they put Doval's photo or some, before war and or something like that, and then they put that line. Don't worry, all is well. Shantipurna tarike. Like, see, what's happening is that the opposition
has started claiming that we are not losing election. The election is being stolen from us, right? Maharashtra was a runaway win, right? Given the kind of verdict this election denial, election being stolen, this is the narrative. So what you saw, like Maharashtra and Haryana story began much later after the results came out. Now this story is beginning even before the counting has begun, because in last 2 days you saw Tejasvi Yadav sort of like reaching out to his workers, doing Zoom calls, trying to tell them this is what you have to do at the strong room, and now you have these kind of posts. And that is where I feel, Anand, that the Election Commission has not handled this allegations of vote chori in an apt and appropriate manner. They should have ordered some kind of probe. There are a lot of former chief election commissioners are around. There should have been some kind of probe or investigation into what a leader of opposition was saying. Whether it was true, untrue, it would have become dood ka dood, pani ka pani. See, by skirting it, no, it's not a matter of Rahul Gandhi during the campaign, the RJD focused not on vote chori as the Congress did. But now with this issue coming up as part of their poster, now is it a reflection of the RJD seeing the right? Is it him, to prepare or is it them trying to say, because the cadre, if he is trying to say the cadre has to come, that means that the cadre is deflated. There is something on the ground sentiment for a Tejasvi to sit down and address the press. Don't worry, हमने अच्छा किया है. Why? The cadre will already know अगर हमने अच्छा किया है. I agree with Rahul on the deeper point here that the great resilience of Indian democracy has been that everybody believes in the system. Now when the losers start saying, look, we never lost, but the election was stolen, it puts a question mark on the legitimacy of the entire system, and it puts a question mark on the stability of the system. And therefore, I mean, while the Election Commission could have handled it better for sure, but the fact of the matter is, this is not good for Indian democracy if you start having these kind of direct questioning happening, because then, everything is up in the air. You can't stop a sore loser unless there is active proof. You can make allegations. I can keep saying Rashid Bhai had 2 plates of poha. He had 2 plates of poha. He had 2 plates of poha. You may all say, okay, he may have had to show me the plate. There is no plate. There is only 1 plate there. So, no, he still has had 2 plates of poha. Is very different from. Chaka Jacob right behind me. Okay, I don't even have any poha. And I keep telling Zaka. Why, please give me also some poha. Why are you the only one who's having poha? It's about the credibility of the system. It's not about outcome. We should not link. No, but then you can't make claims which you can't substantiate. No, then give it on a written affidavit. You're not doing that. In a vibrant democracy, in the context of Bihar, when Mr. Gandhi took out his yatra, of course that flopped, and we know that Congress is being looked at as a liability. But now when Tejasvi is picking up this issue, the same issue that Mr. Gandhi set in Bihar, although it was kind of like, it didn't pick up any momentum, but if Tejasvi is inciting his workers to come out on that street, that's a different story from Mr. Gandhi taking out a yatra. Let's take a look at this Rahul Yatra factor, and I'm doing this on 2024 Lok Sabha leads pasted onto Assembly, by the way, which Nalan thinks is the way to go, because he thinks this will be similar to the 2024 Lok Sabha results and not so much the 2020 election. Let's look at the impact of the Rahul Yatra, if at all. It's going to be felt. 183 constituencies, but look at the numbers. The NDA still, out of those 183, is still leading in 122. The India Alliance only in 43. And look at the difference in the vote share. In a state where talking about 1% can make a difference of 10 or 15 seats. Last time around, the difference between the two alliances was less than 1%, and yet the NDA eked out. There is a 11% gap. So my point is, will it fall exactly the way it happened in 2024 Lok Sabha? Maybe not. Certainly not, because Mr. Modi is on the ticket, and I think that's a big factor. But if you were to apply this back to how it was in the 2020 Vidhan Sabha, along with that same Rahul Gandhi filter, then the numbers change. Then it's much closer. Look at this. The difference in vote share is barely a percent, a little over a percent, and the difference in seats is down to 30. Is not the same as what we saw in 2024 Lok Sabha. So the question is, which way will this verdict fall? Will it fall somewhere in between 2020 Vidhan Sabha or 2024 Lok Sabha? No, and to open up to close a 11% vote share gap, it's not an easy ask.
See, look, if you look at the 2024 numbers that you put, look at that vote share gap. It's 11% vote share gap. Now, in Bihar, usually you have these cases, you may have vote share, but you may not end up with seats. That's also there, that votes could be concentrated on certain seats and not spread all across. There was That's a also vote possible. share gap in 2019 Lok Sabha, but Tejasvi closed that in the Bidhan in 2020. In 2020. Yeah, so I think the critical difference there is, when people are voting in the Lok Sabha, it's for I'm choosing the Prime Minister. I'm voting for or against Modi, right? Whereas in the Vidhan Sabha, that's not quite the case. I think across the country, you see this difference in the way Lok Sabha voting turnout. Karnataka is a classic example. And that's true. Here, very clearly, when it comes to the assembly, the RJD pulls up the alliance a bit. And when it comes to the Lok Sabha, because of the NDA factor, the Prime Minister factor, they are able to do much better in the Lok Sabha election. In fact, this is the 2019 one. I projected this on to 2019. In fact, it's the LJP that's doing better than the BJP when you talk about the 2019 numbers. Sorry, the JDU, which is doing better than the BJP when you talk about the 2019 numbers. But I think ultimately this election will fall somewhere between the 2020 Vidhan Sabha, as we saw here, and the 2024 Lok Sabha, because the alliances are pretty much the same, even though the people they're choosing, one election is for Prime Minister, the other election is for Chief Minister. But this is on the Rahul Gandhi yatra factor. This is how the map is right now. In about 30 minutes, we will start getting the little pockets getting filled up with either saffron or green or India Alliance. Two biggest factors everyone thinks is going to influence this election. One is women, the other is youth. Which of these two do you think will prevail or will dominate the discourse of this election? See, on women factor, we know quite more than we know on the young factor. One, we know that women have largely voted for Nitish. Two, we know that the gender turnout has been really high, right? So gender gap is also strong. And women also make half of youth population, right? So given that, I think the impact of that vote is going to be much more. The question is whether that vote will keep the results around 2020 mark or that result will keep around 2024 mark. And that's one of my sort of concerns with the exit polls. If exit polls have not waited for differentials in gender turnout, then the numbers they are estimating is conservative. And so you're saying it'll be much more than 130, 140? Because if women are coming out in greater numbers and they are more likely to vote for a party, if you don't weigh for that in your vote share data or vote estimate data, it will not show. So that's why you are seeing the vote share gap in some polls is around 4%, 5%. But the seats they are showing is 120, 130. See, when certain pollsters say youth and youth are voting for Tejasvi, are they saying that youth male and female? Or are they saying youth only male? Because the dipstick analogies or focus group analogies, if I may say, when our reporters have gone on ground and they have said, women are saying, I can go back home at 10. My daughter comes back home at 10 after work and she's safe. Now that daughter is a youngster. She's youth. Now who's she going to vote for? And has that been factored in pollsters when they are doing these dipsticks? Because we said, no, Mahila is spread across age groups and castes and this one, social strata. I think, as Rahul said, there is some element of clarity which is emerging on the way the Mahila vote is likely to go. And for a variety of reasons, it seems to be favoring the NDA. If you look at the youth vote, and I concede the point that half that youth vote is women, but if you look at the other half, the expression in the media that the Gathbandhan may be the beneficiary of this vote, I think there are important question marks there, because I go back to my earlier point. If the youth are worried about issues of employment and the like, who are they looking at in terms of being able to solve that problem? Who do they trust? So the trust quotient. And there I believe it may well be, and we'll get to know in the course of today, it may well be that that youth vote also to a certain extent may have moved towards. So then in that case, then does this then become a runaway election? Will this then become a runaway election if they say that the trust factor, yes, unemployment is an issue, who do I trust? The polity, I feel that is now smarter than we think them to be. So I feel like if there's a party that is making promises of
of jobs, for instance, but there is no backstory of how these jobs are going to be created. Like we saw this after the Karnataka win, the Congress Karnataka win, that you made so many promises, you couldn't live up, like there was a dent on your exchequer. So this becomes a big problem. Our polity is smart. So then are the women across age groups thinking that we'd rather have cash in hand, make our own investments like bakri or, you know, some other farm animals, sewing machines, makhana, you know, farming, whatever it is that, are they thinking, do they have more confidence in what they are going to do with that money? On this Mahila voter thing, you know, again, I'm plotting it on the 2020 result. So we have those constituencies and more than half the number of seats in the state where women have outvoted men by a percentage of more than 10, which means for every 10 men, there are 11 women who are voting. 124 of those constituencies, the NDA won 39% vote share, and the India Alliance got just 42 at 36% vote share. Remember, overall in the state, the vote share difference was less than 1%. But here, the vote share difference is more than 3%. So this is a huge factor, and this is a JDU vote. A lot of the JDU seats were on the back of the women vote. Today, we'll see on these 124 seats where women outvote men, by how much and who are the beneficiaries politically speaking. I want to make a couple of quick points on this. We mapped the ratio of women's seats won to overall wins. And if you look at the last 3 or 4 elections, there is a difference. If the NDA is much higher than India, as you are showing in the magic wall, but within the NDA there is a qualitative difference between JDU and BJP on the Mahila factor. So if you look at the ratio of women's seats won to overall seats, JDU in 2019 won 65% of those seats. In 2020, 55%. In 2024, 55.6%. The BJP's ratio in comparison was around the 32% mark, right? So the JDU's percentage of women voter is significantly higher than the BJP. And that's our projections. The BJP had 20% of the votes. The JDU had 4% less. And in terms of the BJP actually pulled more seats in the 2020 elections. That's true. But what I'm saying is that that's because of the way the seat share is done and so on. But I'm saying that in terms of the seats which JDU actually won out of those, because the concentration of vote is there. So their percentage of there is another dynamic this time around. We are discounting the rural advantages that the Kisan and the rural voter and the rural dweller has got. 2 parts. One is this whole corn, makai, because it's being used for the production of ethanol. So when I had a chat off record with somebody within the ministry, and they said that ethanol production, the sourcing has been more than upwards of 15 to 20,000 crore rupees, and it could be close to 40,000 crore rupees worth of sourcing of makai for ethanol production from Bihar. Then the makhana part, the fox nuts part, that makhana board, creation of the makhana board, organizing that, and also the relative cost increase of makhana because of it being nationalized and internationalized. Is that not going to come back and help and pay dividends to those who facilitated it? In this case, Modi Nitish or BJP JDU. It will. I think the Makhana move was a big move by the Modi government. It's going to help them. That's what the ground feedback also that the BJP has. But Anand, I'll tell you one thing. See, in every election, there is one domineering topic. You know, I remember Karnataka election, DK Shivkumar came and put that LPG cylinder right in the middle of the Congress office and said, because LPG cylinder 1200 rupees. I think this election is the 10,000 chunav. Woman factor is a big factor. 10,000 rupees, actually people have got it. You know, it's gone in the bank accounts of people. When I go to the ground, what I feel that women of the ages 30 and plus, 35 and plus are totally siding with the JDU, because not only have they got the rupees 10,000, they also know the 2005 pre-era. They have seen that as children, you know, these girls who could not get out of the house, could not go to school safely. Yes, the young woman voter, the 18 to 25, 18 to 30 voter, that also is struggling because of unemployment. You know, they do say that jobs Nitish ne kuch nahi kiya 20 saal mein. But their families, their mothers would tell the daughters that, look, नीतीश के अंदर जॉब नहीं मिला, बट रिमेंबर जंगल राज वापस आ जाएगा, आप घूम नहीं पाओगे। 18 to 30 है वो तो 20 साल का जॉब है ही नहीं, उनको तो 18 अभी 20 4-5 साल को जॉब। These are the women I'm seeing stepping out of college, you know, at 20 years, they are not getting jobs in Bihar. That's a fact. Yeah. But they also remember the old times that you're not able to win Rome safely in Bihar. I think that's a big factor. Was that the bigger challenge, the fact that industrialization of Bihar in terms of bringing industry, manufacturing and all of that, will that be the next promise, or will that be one of the first things that if it's a pro-incumbency vote that the incumbent will do? Just going across to the rut and then coming back. Griha is joining us. Just one second. Just coming back. Yeah. So we've got Griha joining us.
Griha is joining us. Griha is joining us from the live result hub. Let's go across to the live result hub. Poha, chai, everything served, all set for counting to get underway, Griha. Absolutely, Anand. Good morning to you and good morning to everybody at CNN News 18 and all the people watching. This is the live result hub, the crown jewel of our net. To see the results first. And why do we say that? Because we have this dominated record of calling the elections first, and this is where you have seen it, and you can say that because no other network or channel can boast of such a facility. So right here you can see these are our volunteers who are sitting across at the live result hub. These are the phones that our reporters will call and in fact talk about when the first tally really starts to trickle in, when the first vote is cast and when the result gets announced. The first vote, that's where you see the call come in and it is then represented here, and that's how it gets seen on the broadcast. So it happens here first, and you can see our volunteers, you're spread across. The Battle of Bihar has begun, and as we all know, when it is about exit polls, it's very difficult to predict Bihar. So we have to rely on the ultimate source, and we have a network of reporters, a battery of reporters that are spread across all the constituencies, all the districts, and they continue to call here. The moment the first ballot is cast, the moment, I beg your pardon, the first result is announced, it gets seen here. And we will tell you first, because here's where in charge? you Griha, who is in charge? I just also want to make the point, Griha, and you can weigh in on this as well. Other channels, from 8 o'clock, you're going to see them run away with the numbers. It'll go to 50, 100 within a few minutes. We're not doing that because we've got a reporter, a resource in every one of the 243 constituencies. Every single one of the 243 constituencies, they will be calling in to this live result hub, which will be fed into our system, and then it will automatically populate across Absolutely, all. we verify it first. We verify it first before we show it on the big screen where you all are. And we don't want to run with the numbers, and we don't want to fill our screens. We want to rely on the absolute numbers, and that's what these representatives are sitting here for. And there you can see, this is how it is seen here. The moment the first vote is announced is when these things start ringing, and that's when it's seen on the screen. Yeah, the first leads. So what we'll see is the early leads that will come in, because our representatives, not just the constituencies, but also posted at the counting centers, and from inside the counting centers we'd get information that will be relayed in real fast time, and it's going to be the same set of numbers across the network. That's what you would see even on connected TV, YouTube. As you're watching us live, be rest assured that you will have the correct numbers here on CNN News 18. So now coming back to this conversation that we were having about the voter, the rural factor. Nalin, you wanted to make a point. Yeah, go ahead. I was making a point that we have seen what the Mahila scheme did in Maharashtra and in Haryana. Now in Bihar, this is even much more important, because while Bihar's growth rate has been all right, it is much lower than than even the other Bimaru states. And Bihar is a state which has virtually got no private sector investment, just about $200 million of FDI last year. So in a state like that, but contrast that with the social sector spending. It's almost half of its revenue receipts are spent on social sector spending. Therefore, in a state like Bihar, this has a far more resonance than in more developed states like in Haryana or in Maharashtra. So on the youth factor, everybody was talking about the youth factor. We looked at the top 10 districts in Bihar from where youth go away as migrant labor to other states, and we plotted that on the magic wall. It walks up to again about 100 seats, 97 out of 243. There too, in a close election like we saw in 2020, the NDA had almost 60 and the India Alliance had 40. So it's almost like a 2:3 ratio. The vote share gap is also about 1.5%, 1.4% or so, 1.5% or so. It comes back to who do they trust to solve this employment problem. Tejasvi, this is his second election where it's either against him or for him, the vote. And he's the young man, he's the challenger, he's the guy who's saying, I'll give you the jobs, or, 3 crore government jobs, so on. But I don't see evidence of that even with the youth vote. Amidst all of this, we've been talking. Prashant Kishor. No, we've been talking about Tejasvi, we've talked about Nitish, we've talked about Prashant Kishor. With all this, it's amazing that we're not talking about Prime Minister Modi. We're not talking about the Modi factor, the fact that he actually was in Bihar when he said that Pahalgam will be avenged.
It was in Bihar that he announced that we will not let them. So Operation Sindoor, and after Operation Sindoor, one of the first visits was back in Bihar, where he said, listen, I said we will avenge it, and this is what we have done. So that factor, jo kahega wo karke dikhayega, that trust factor. And is PM Modi's factor now just there, all encompassing, not right into the fore because it's an assembly election, and you've realized that you need to have a local face in Bihar, because Bihar's unique, combination, and Nitish being fulcrum to it. But can we forget PM Modi, and can we forget the work the BJP Sangh is doing? This is their 100th year. So the Sangh would also want to return 100% score, and they are going to be doing their work on ground, not actively campaigning for the BJP, but at least ensuring people come out to vote. Yes, sir. Yes. Given the fact that the BJP and the JDU contested an equal number of seats, and if you look at the BJP campaign, its candidates campaign, the clear focus was on the Prime Minister's leadership. They kept on making the point that look at how BJP ruled states are functioning, look at how the center is doing things. We want to bring the same in the state. The JDU, on the other hand, focused on the chief minister. So that was a very interesting campaign. One focusing on the chief minister within the same alliance, one focusing on the chief minister, one focusing on the prime minister. Right. And So with the prime minister, I feel it's been 10 years. I think there is no longer a need for even the party to prove why you need a Modi run government. Like, I think it is so established and it is so ingrained that that work is absolutely not required anymore. And I think people of the country feel that as long as Prime Minister Modi is there, people feel so this Modi hai to mumkin hai is now an established factor. It doesn't need to be established, is what you're saying. So that's underlined. It's a contributory factor. I think, if you look at Modi mandate in Bihar, it's little problematic in the same event of if there is an unexpected defeat. Would we say this is a defeat of Narendra Modi? No. It will be put at the doorstep of Nitish Kumar. He was too old. But the factor of Modi remains. Even now the victory is with Nitish Kumar. The biggest champion and perhaps the tallest face that will emerge out of this result will be Nitish Kumar. Going across to Shivani. Shivani is joining us live from Patna, right outside the Bihar Assembly. Early start, Shivani. You got a great setup there. You got people around you. Over to you. Thanks a lot for that. Good morning to all of you in the studios. I'm joining you from our studio outside the Bihar Legislative Assembly. Let me just show our viewers around the setup that we have here. A lot of our guests from local parties also joining us, and I'll get you the mood that is prevailing in Bihar first up. Here, everyone is talking about whether there can be any ruckus on ground because of the kind of warnings that the RJD has given. There is already greater security that has been put out. There is a message by the local administration to every person that if you see anything going wrong, if you have concerns, then dial our numbers. Don't take matters into your own hands. There is security that has been extended or increased around all of the polling station, all of the counting stations, 46 of them. Even outside the Chief Minister's residence, security has been increased. So that's the kind of staff that we're having here in Bihar. But through the day, we're going to get you all of the reactions that you need to hear as the pouring in. At AM, ballot boxes are going to be opened, but it's going to be postal ballots that are going to be counted first. There's been an ominous warning from RJD and Tejasvi Yadav saying that if the voting goes slow, if the counting goes slow, then they will suspect that something is going wrong. I have the RJD representative with me. ये जो RJD बात कर रही है कि अगर काउंटिंग स्लो हो गई तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में और काउंटिंग को स्लो कर दिया गया था 4 घंटे के लिए। जब देखा कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, उनके पक्ष में जबरदस्त रुझान आ रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत शासनादेश के बल पर चुनाव आयोग ने इस तरह का खेला करने का काम किया, और जिसके कारण आप देखेंगे 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, उसे एक सोची समझी साजिश के तहत हराया गया, कहीं 12 वोट से, कहीं 100। तो आज अगर आप कह रहे हैं कि आप रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आए तो क्या करेंगे आप? नहीं, रिजल्ट देखिए, मेरा यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो स्मूथली और पारदर्शी तरीके से हो,
ठीक है, so there is of course video monitoring that is going on. There is increased security that has also been established. BJP representative is also with me. एक तरह से आरजेडी का कहना है कि रिजल्ट कल तेजस्वी का जो बयान आया, उन्होंने कहा हमारे लिए वोट हुआ है, लेकिन अगर हमें लगा कि काउंटिंग सही से नहीं हो रही है तो जनता अपने हाथ में लेगी मैटर्स को. तो आप इसको कैसे देखते हैं जो वार्निंग आई है? देखिए, वो 2020 के इलेक्शन को भी कह रहे हैं कि लूट लिया था बीजेपी ने और इस बार भी वही कोशिश हुई. देखिए, उनका हताशा निराशा है क्योंकि चुनाव उनके पक्ष में हुआ नहीं. बिहार की जनता ने 13 करोड़ जनता ने मोहर लगाया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे. जो हमने संकल्प लिया था लगातार उस संकल्प है. और बिहार में विकास की गंगा बह रही है. आप बिहार कान से सुनने वाला बिहार नहीं रहा, आंख से देखने वाला बिहार हुआ. आप आए होंगे, पटना एयरपोर्ट देखा होगा. नहीं तो अभी आज अगर काउंटिंग ये कह रहे हैं स्लो हुई तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि राजद के लोग क्या करने की कोशिश? ये राहुल गांधी जी के भाई है. ये मुद्दा खोज रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, मुद्दा खोज रहे हैं. कोई तो बहाना चाहिए, ठीकरा तो चाहिए किसी पे फोड़ने के लिए. इसीलिए ये लोग कर रहे हैं. इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, ना नेता था, ना नियत था, ना निष्ठा था. लेकिन बिहार की जनता ने नेता नीतीश कुमार जी को माना, देश के प्रधानमंत्री को माना. एक बात और मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और बिहार के मुख्यमंत्री जी का निश्चय था. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. वो इलेक्शन देख लिया. देखिए, मतगणना पारदर्शी होनी चाहिए. क्यों नहीं होगी पारदर्शी? आप क्यों मानते हैं कि क्यों नहीं होगी पारदर्शी? जो रिजल्ट होगा आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आरजेडी 5 सीट से पीछे रह जाती है तो आप मानेंगे या नहीं? बता रहा हूँ, सीट अलग चीज है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन मतगणना पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. बिहार लोकतंत्र आपके एजेंट है ना अंदर. अगर लोकतंत्र. Okay, Shivani will come back to you as and when there's more developments there. I just want to, our guests here in the studio were talking about the Modi factor. If you look at it, again, we're looking at 2020 result. There's a much closer election. Modi had 90 constituencies that he covered in the rallies. I think 13 or 14 rallies he did in Bihar this time around. It adds up to about 94 constituencies. Something fascinating here, even though the NDA was ahead in all of those seats, 49 to 43 of the India Alliance, in vote share, it was the India Alliance which was more than the NDA. It was about less than, 0.5%, but it was still ahead in terms of vote share. And the reason for that is because the RJD's vote is a very concentrated vote. Even in the last time, this alliance that they had with the CPIML, particularly in southern Bihar and in central Bihar, that seemed to have clicked for them because it's a highly concentrated vote. The problem for the RJD is in the northern part of the state, what they call Mithilanchal, and of course here again in Simanchal where the election gets polarized because there's a higher percentage of Muslim population here. The BJP has done in what is called the north of the Ganga seats, whereas in the southern part of the state it was the RJD, CPIML, Congress alliance which did better. This time, will it be like this? Will it be different in any form or fashion? We'll have to wait and see. But just go back to 2015 in the same set and see what was the NDA's vote share in 2015. If you were to look at 2015, the India's vote share was 12% more, although the seats were neck and neck. Seats were neck and neck, but the vote share was substantially higher. But again, that's a different election because RJD and JDU were together in 2015. This time they are not. This time they were not. So, because usually Pradhan Mantri goes to campaign in those seats which are tough. The tough seats is where he needs to rally up and get more votes and pull more votes. That's where the Pradhan Mantri's vote share is or votes are. So if in 2020 he was in these pockets, was it to take away a certain level of the RJD votes and continue to pull because these were tough seats? We have to wait and watch. We have to see how that works. Yes. So of course in any state election, CM face and national leaders matter. Modi pulls up vote for the BJP and much more in national elections than state elections. And I think let's not just focus on Narendra Modi, we should also talk about Rahul Gandhi and the kind of discoordination. We can look at Rahul Gandhi, yeah. Because see the point is this, where whatever sort of discomfort the NDA alliance had, it was not public. Whereas the discomfort within the India alliance in Bihar was public in a way that they are fighting on 11 seats, what they call friendly fight. They took so much time to sort of give symbols to the candidate that on the last day, people didn't know who their candidate was going to be. And there was a fight who's going to be the CM face. And Rahul Gandhi was there 2 months before the sort of and for a good 2 months he and so disappeared. Rahul Gandhi and Tejaswi's campaign in that sense ran in some ways orthogonal, right? And not just that, how could Mukesh Sahni of the VIP and announce him as the Deputy Chief Minister and he just fell by the wayside during the campaign. You sidelined him totally.
You just made him sit there and you benched him. You said you are the DCM face and you benched him. Why would you do something like that? That's a far greater insult. Anand, on this Modi factor, Zaka, I was looking at the numbers, and the numbers that you showed for 2020, if you map them on the 2024 thing, elections, you will find that the NDA... Nalin, just hold on to the pictures. Action. Lalu Prasad Yadav is moving out of his house. Arun Singh is joining us with the details. Yes, Arun. Ji. 2024. But it's, Arun, namaste. I mean, the seats are... Arunima is also with us. Arun, आपको मेरी आवाज आ रही है? लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकले हैं. आवाज आ रही है आपको? All right, we go to Arun Singh in a bit. Arunima is also there. Arunima is at the JDU office where posters have been put up. So let's go back to Arun. Yes, Arunima. So the Badhai poster is already up here. The counting, the postal ballot counting will begin in just a few minutes. But already, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई. This poster has come up outside the JDU office, and if you pan a little bit, you see the policemen, the men and women in khaki, have also now started coming to the JDU office. Is this because the election commission-led administration is worried after all the threats that came in from the RJD? Even though RJD continues to say that it should be peaceful, but the spokesperson putting up a photograph in her hand, another spokesperson talking about 20,000 log पहुंचे हर counting center पे. Is that the cause of worry? Because just a short while back there was no police deployment, but now police men and women are coming up. And why is JDU office the center of so much attention? Because of this another poster that has come up. This says Tiger Abhi Zinda Hai. This poster has become a talk of the town here, because this is like JDU's response to Tejasvi Yadav, who kept asking if Nitish Kumar is mentally agile, if he is physically fit, if he is in a position to continue to govern Bihar for the next 5 years. So Tiger Zinda Hai ya nahi, we'll know in about 15 minutes from now when counting begins. But JDU Karyakartas definitely are upbeat. Poster wars have gotten underway. One says सावधान 20,000 कार्यकर्ता हर काउंटिंग सेंटर पर. The other one says बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर से आएगी सुशासन सरकार. टाइगर अभी जिंदा है, बूढ़ा शेर और भी खतरनाक होता है. These are all conversations that are happening because jibes have been taken. बूढ़े हो गए हैं आप, आपसे नहीं हो पा रहा है. You can't have your fact. Nistula Hebar, good morning. So upping up the Mahila quotient in the studio. Fantastic. Always a good thing. Always a good thing. Always a good thing. When this election is going to be decided by the M factor, then why not, right? See, the MY also changes. No, Muslim Yadav to Mahila Yuva. Bihar ka pura yahi change ho jayega. Political lexicon will change. But how would you see Nitish Kumar, and what would you want to surmise at the end of these, as the dust settles in a few hours from now? Well, this is the last election for the progeny of the JP movement. After this, I think 2030, I don't think we're going to see. It's going to be a completely different set, cohort group of leaders who we are going to see in the fray. And as I said earlier also, many times on this on this set itself, this is an election where the people of Bihar had to decide whether or not they're going to give a nice little farewell into the sunset for Nitish Kumar or not. Because there were all sorts of speculations about his health and whether or not the BJP will now let him remain chief minister, will they change him mid-stride. So a lot will depend on how the sentiment of his voters, a very formidable constituency that he has built up, whether they will say no, we make one last stand for him, not just we will vote him back, we will give him a competitive score against his own ally, so that there is no question on the issue of chief ministership. So that is where the election actually. So 5 minutes. JDU. Just 5 minutes to go. 5 minutes to go before the counting once again, centers for open. our viewers, first the election commission has put this out that they will be counting postal ballots. That's going to be that's going to take time because that's physical. You have to count it physically, and then the EVMs open. So for the first half hour or so, you will see the postal ballots reflecting. So please be aware once again. The other channels are going to be fudging their numbers in the first few minutes. Please don't believe them. The real results from the live result hub here on CNN News 18. I want to just quickly add to this Nitish Kumar factor. In an election where he did badly last time around, where the JDU won just 43 seats, it was a number 4 party. There are 24 of those seats which the JDU has never lost in the last 3 elections. In fact, more than half of the seats that the JDU won last time in a bad election were those seats
which they've never lost in the last 3 elections. So the JDU has a base from where they're starting off. And this time around, and remember last time it was Chirag Paswan who spoiled Kumar's chances in about 30 seats, 32 seats is what he's saying. So if you add 32 and 43, he would have had 75 seats. He would have been the single largest party. See, imagine in the NDA, outside of the JDU and the BJP, he has actually garnered a huge bulk of seats. You know, Ham Party and Jitan Ram Manji have been quite literally sidelined and said, "Jitna hai, utna mein aapka strike rate improve kariye." But for him to get 29 seats, does he really merit that? And will that be a test of the Paswan legacy and also Chirag Paswan? Because Pashupati Paras is now on the other side. Yeah. Sure, yeah, absolutely. Because he is, in some ways, Chirag Paswan so far in assembly elections have not won seats in double digits. Right, last time he was an insurgent, before that he wasn't part of any coalition. So in some ways, this would be a test case for him. Can he get seats in double digits? He's contesting 29. He does well in Lok Sabha elections, but that's mostly family members contesting, and then it's a national election where people are voting for Prime Minister Modi. It is being said that Chirag Paswan is really popular across Bihar. He has been called to campaign. Whether he can get his own party elected on sort of like not, that would be a no. When he got 29 seats, I think more consternation inside the NDA than in the opposition. Many people in the NDA felt he didn't deserve 29 seats. We'll see how much he converts that. You have 80 seconds to answer. 80 seconds. 80 seconds you have to answer. Yeah, no, I'm saying, as I said 80 earlier, seconds, you are starting the countdown. As I 80 said seconds. earlier, this time India has actually fought as a really, united alliance. Yeah. BJP has put in money even where in the alliance seats, so, that may offset this 20. JDU people in fact told me that in the run-up to the polls, even before the seat adjustment had been announced, they had a series of meetings from block to major rallies with the PM of all the NDA constituents. Those meetings, especially at the seat level, have really helped them, Yeah, so because there are a lot of Zaka in Bihar, Paswans basically collaborate. They don't assert. So there is a 19%, Dalit vote there, but unlike Uttar Pradesh, there is no, assertiveness, political assertiveness, and therefore, this collaboration helps and that results in the kind of seats that LGP is able to get. Okay. Right. Another 35 seconds. Anybody wants to chip in? Yes. We'll continue the Modi factor. There was an earlier number thing over there that that he comes and campaigns on the tough seats. I think after Karnataka Assembly, there's been a change of thinking that, overexposure is not required. There is an established trust. But where he campaigns, you can see a clear conversion of the Modi factor. The one person whose campaign made a lot of dhamaka with Appu Pappu Tappu, that we have not even spoken about. That is Yogi. The impact that Yogi's campaign, because he came late in and it was a huge cameo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And there you go. It's 8 a.m. Counting will get underway as the counting centers will be open. Counting begins on Result Day Live, Bihar 2025. Which way will the voter cast their mandate and give their mandate to? Will it be pro-incumbency, massive pro-incumbency vote for Sushasan Babu, Nitish Kumar, or will it be time for change, Badlav ki Sarkar and Tejaswi coming to the fore, emerging out of the shadows of Lalu Prasad Yadav? We'll have to wait and watch, but it's a big fight. It's two big Gathbandhans, the NDA and the MGB. The two national parties are going to play. So we should have breaking saying counting has begun. Counting has begun, and again it will be the postal ballots for about the first half an hour or so, and then the EVMs are desealed. But counting has officially begun, ladies and gentlemen, for these 243 constituencies. Is it NDA? Is it India Alliance? Counting has officially begun. Let's have that breaking story. The counting begins for the Bihar verdict. We've got the breaking up and it's a matter of time. The first 20 minutes to half an hour will be postal ballots, so you will see early leads, but those early leads are postal ballots. They'll be manually counted. It's when the EVM boxes open at the counting centers, that's when the results will start trickling in. Griha is ready at the live result hub. We'll go to her the moment we have the first set of leads coming in. Quickly going to Pallavi. How many counting centers and where will the focus be? Pallavi. Well, I'm still right over here at the Sheikhpura house, and the Prashant Kishor team is already in place. They are just going to wait
figures to start coming in, and as you pointed out, the postal ballot any case is the first round to go. But you know, I would look at this election and the counting really, Anand, as a high stakes for everyone. But naturally for the CM already, Nitish Kumar, many people would dismiss him off as being not in good health, at least his opponents did. I think the sense I get on the ground, of course, is that he's likely to do even better than before. That anger which people are talking about was certainly missing. It's not a wave election, you know, so in that sense, I think his campaign style has been very mellow, very mature and extremely stable. But at the same time being very assertive. For the BJP, of course, you know, they've thrown their top talents out all. That's the way they do there the must elections. Be something that you know that we don't, Pallavi, that you're still at Jansuraj party because and at Prashant Kishor, will he step out to say that the Jansuraj got a certain percentage of vote but no seats at all? He's not playing kingmaker. What way the results? The exit pollsters haven't given him the king. No, they have not. They've in fact said that he'll get anywhere between 0 to 2 seats, which for someone who is making a splash, I think is quite subpar. But Griha is joining us from the live result hub. Where are we expecting the first leads to come from, Griha? Where are we expecting the first leads to come from, and by when? Is that for me, Zaka? Yeah, which region, which part of Bihar are you expecting the first leads to come from? We will get that word in from Hemant ji here, because the result hub has started buzzing, because we have got to know that the postal ballots will be announced very, very soon. Hemant ji, सबसे पहले कहाँ से रुझान आने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले रुझान जो हम देख रहे हैं कि पटना से जब रिपोर्टर ने कॉल किया था कि वहाँ पे बोला कि हमने पोस्टल बैलेट काउंट स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द पोस्टल, बट वी आर जस्ट वेटिंग. We have the two team is monitoring about the postal ballot. So we have made the two begin with either through SMS or a phone call. We'll get the first result. So if we get the phone call, the phone will buzz here. How many counting SMS, centers have been set up this time? There were 90,000 polling booths. Great, just asking how many counting centers? I am thinking the 5-10 minutes. Hemant ji, how many? 46 counting centers? We have the 46 counting centers. After 38 districts, we have the 46 of the counting centers. We have deported 100 members in the counting center. Here we have the 50. Altogether, you can say the 150 members are there to give the right result. So 150 members there, end-to-end data that will be collated and it will be fed here, and that's when you see it on the screen. So like Zaka, you were mentioning, it is not going to be fudging of numbers. We are not going to be trying to go first on this. The moment we see the first authentic leads come in from those counting centers, as our reporters call our representatives here at the live result hub, is when we see the numbers on screen. Absolutely. 46 counting centers, viewers. 46 counting centers. The counting centers open at 8. Then they go in and then they will start counting the postal ballots. There are 150 of our members at these 46 counting centers who will be getting us these results. So the moment you see the leads starting to trickle in here, that means the leads have really started coming in, because that's where we are getting this live right from the source back into our live result hub and then across the network. Arun Dhanta is with us from the BJP office in Patna. Arun, are you the only person now, or have you done breakfast and are the Karyakartas already there? You're the first person at the BJP Karyalaya this morning. Well, Anand, as counting gets underway here in the BJP office, preparations have also started. We are inside one of the tents which they have made, and in fact you can see right behind me, chairs have been placed and there is a screen also. In a few minutes from now, they will of course be starting this television screen, and you will see these chairs will be filled up. On that side also, dishes are being cleaned by, as we were discussing earlier, that the people will come here to really start preparing for the breakfast and the sweets also. I can also smell something is cooking on the other side. We'll give you that scene also, what is happening at the back of the BJP office. This is the place where you will see all the food is being cooked and mithais, etc. for all those people who will be coming here in a short while from now. You can see, I'll request my camera person Pramod Saklani to just go there and show what exactly is happening. Yes, so I mean they've started cooking. They've started, the preparations are done. Food is being cooked here. So in a short while from now, you will see क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है? सर अभी तो चाय चल रहा है सुबह से, फिर नाश्ता में घुगनी, चूड़ा फ्राई. अरे वाह जी, आज जिस तरह से जो भाजपा के लोग बाहर चाय घुगनी चूड़ा जीतने का जश्न के लिए तैयार है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर, जीतने की तैयारी में लगे हैं. खाना मिठाई उठाई सब बन रहा है यहाँ तो, जगह अलग अलग बन रहा है, बहुत जगह से बन के भी आ रहा है मिठाई. जी, मिठाई बनाने का बोला गया है. तो
ज्यादा ऑर्डर है, कोई गिनती नहीं है मिठाई का कि कितना बनेगा, बहुत ज्यादा ही ऑर्डर है, हो चुका है मिठाई का। हो चुका है। So lots of orders, lots of cooking, chai, gugni, chura, that's a traditional Bihar breakfast. On the one side there is pakode and samosa being made. There's a lot that's on store, and who will savor not just the food but also the sweet taste of victory, viewers. That's where we are going to focus on. Tejasvi has also spoken again. Let's listen in. हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। चलिए, हम लोग जीत रहे हैं, बदलाव होगा, बदलाव होगा, सरकार बना रहे हैं। टोनुआ थोड़ा ऑफ लग रहा है। Is it? नहीं, आपको नहीं लगा? You didn't feel the tone is a little off? I think he's speaking from inside the car and too many mics. No, you know, the confidence level, the way you would, or you think, is this convincing? Is this the Tejasvi that we know? I wouldn't read too much into it. It's early in the morning. He has campaigned for a month. He must be tired. So, yeah, let's wait. Why is it that suddenly you see everybody hedging their bets here? As much his election, in the sense that this is the second time that he's going to be the face, the challenger, the one who wants to de-seat. It's much more his election than Nitish Kumar. Perhaps. Yeah. I mean, in Nitish's case, it's probably his last election. Yeah. Whereas in Tejasvi's case, after this election, and if he doesn't win, a question is going to be asked. I mean, are you the face? Are you the one who is going to be the challenger to, dethrone? But in the February party that doesn't happen. Zaka, you look at life of Rahul Gandhi. No, that's an exception. No, I think in all political parties, you look at Akali Dal, you look at DMK, All right, first set of leads. NDA has 2 leads already. Griha, yes. You have the first lead, Dhirendra Pratap Singh. This is from the Valmiki Nagar constituency, where this lead is coming in from JDU, the first lead. All right, Valmiki Nagar is in the West Champaran district. It's up north. Again, these are places where there's a lot of migrant labor. So, yeah, there's a second one that's come. BJP, Lorry. Neighboring constituency, I think it's the BJP candidate. So 2 leads to the BJP so far. So 2 leads to the NDA so far, 1 to the JDU and 1 to the BJP, both from the West Champaran district. And remember, lots of migrant labor, lots of this again went to polls in the second phase where women outnumbered men quite a bit. So we'll see. The migrant youth also in the past have favored the NDA over the RJD despite the issues that have been raised. You've called that out. There is one reason why there was silence when I asked ye Tonua thoda thik nahi lag raha hai. This is because the ghosts of 2015 continue to haunt. Yes. No. Look at Abhijit Majumdar. The ghosts of 2015 continue to haunt. Where in studios everybody called election at 9 a.m. and the results change at 11:30. That's what happened. No, that was a different channel you're talking about. And let me tell you, I have a picture. In fact, I was on your Hindi channel in 2015. I was sitting, Badri Narayan was sitting next to me, and suddenly some other channel called it. And your anchor actually put a stop to it. He said, we are not doing anything like that. We're just waiting. Yeah, we have more leads. I think we're about 5 or 6 leads now. Griha has more. Okay. Yes, Griha. Where? All right, so we only see BJP and JDU right now. Zaka, Sapol, Bijendra Pratap, Prasad Yadav from JDU, and there is Rajnagar, Sujit Kumar from BJP who is leading. As we speak, more and more leads are coming in, and it's all JDU, BJP that we see. Sujit Kumar, BJP. So Paul, it is, and now we have another RJD lead. This is the first one that's coming in for RJD. That's Saud Alam from Thakurganj, who is leading. So not surprisingly, the first lead for RJD coming from the Simanchal region. This is of course, like I said, again, a couple of other leads, one for the Congress. That's coming in again. All of this is in the Simanchal region, which, like I said, there is a higher proportion of Muslim population there. There was higher voter turnout as well. Last time, MIM was a big factor in Simanchal. He got 5 MLAs. All 5 of them switched over to the RJD. This time around, it seems like the Muslim vote is consolidating in favor of the early trends also showing that the JDU is emerging, has taken a march, in terms of the single largest party as of now. 6 leads for the JDU. Griha is back with us. Yes, Griha. More. One more for the BJP and JDU. And there's one for LJP. So from Kasba, we have an LJP candidate,
who is leading right now. And the leads are coming in fast now, Anand. From Digha, it's Sanjeev Chaurasia. From the there is Fulvari, Sham, Rajak, JDU, who's leading. From Banki Nagar, there is another candidate who's leading. So right now, the first lead for LJP is also come in. From Kasba, Nitish Kumar Singh is leading. So many leads to start. A first Congress, in fact, the second Congress lead that has been announced, Manohar Prasad Singh of the Congress from Manihari is leading. And there is catching up, INDIA catching up. Now just a 5-seat gap between the NDA and the INDIA, 8 and 13. That's the score as of now. The thing to watch out for is this plus minus. I mean, they were 125 the NDA last time around. They're already gaining 3, now gaining 4. And the India Alliance is down 3. They were 115 last time, so down 3. So keep an eye out for, you know, who's gaining, who's losing. Now again it's increased 14-9. 14-9, and these are trends. These are early trends. These are early trends that are being dictated by the postal ballot counting viewers. But we are getting you the numbers as we are getting it relayed from our counting centers, and that's why trust these numbers at the bottom of your screen. 15-10, a gap of 5 opened up by the NDA. RJD on 7 seats. Within the NDA, it's the JDU that is still on a march, and it's actually leading. Now the BJP is now gotten ahead. 7 and 6 within the NDA. Some seats for the other partners again, also. 12 leads to the India Alliance. If you look at the breakup there, the Congress has 2, the RJD has 9. So RJD doing a bulk of the heavy lifting as far as the India Alliance is concerned. As far as the NDA is concerned, it's neck and neck right now between the BJP and the JDU. The BJP has 7, the JDU has 6, LJP 1. We will see how this plays out through the course of the day. I think one thing is very, very clear. The southern seats, RJD doing better in the southern part of the state. Some openings in the eastern part in Simanchal, whereas in the rest of the state, it seems to be a BJP-JDU show, at least in the first 20 odd seats. The trends coming from all across yes. Phase 1 and Phase 2, if you were to see. Yes, these were the Phase 1 seats. Up in the north were the Phase 2 seats. And we're getting to see from different regions. We're getting from the Champaran side, we're getting from the Simanchal side, we're getting from the Magad side as well. So it's kind of getting populated across the length and breadth of Bihar from different regions. Yes, Griha has more. Yes. Tejasvi Yadav. Yeah, go ahead, Griha. Okay, it's Tejasvi who's leading from Raghopur. So the bastion right now is being maintained because testing that. RJD has many leads right now. Anand is from what we are seeing. There is one for JSP that's coming. BJP again, Prem Kumar from Gaya town, he is leading. So BJP is leading there. So far, Tejasvi is maintaining the lead as far as Raghopur is concerned. Jansuraj on the leaderboard in terms of trends and leads. LJP on the leaderboard in terms of trends and leads. 18 to the NDA, 15 to the INDIA. The early trends show that it could be quite close. Everybody is playing catch up with the other. But the results are plotting all across, and there's a reason why you can trust these numbers, viewers, because it's plotting on the map live. You can see it. Yes. It's plotting as we are telling you the leads. Whatever you're seeing at the bottom of your screen, it's plotting as per the party across the various constituencies in the region. So the Bihar map plotted across, and the constituency numbers, if you can zoom in close, you'll see the constituency numbers as Zaka is showing it on the wall. It's neck and neck right now. It's 24 to the NDA, India Alliance at 15, but you get a feeling that the NDA is slightly pulling ahead, and there in the NDA too, if you look at the breakup between the BJP and the JDU, neck and neck, BJP at 11, JDU at 11, and I think this is going to be another sub-story as well. But just now, as we get to 40 seats out of 243, you see the NDA pulling away, because a lot of the central Bihar seats, which are the JDU stronghold seats, are now beginning to report. RJD, again, a bulk of its leads seem to be in the southern part of Bihar, some constituencies in Simanchal, but the rest of the state, as I keep saying, the NDA seems to be pulling away. So as these parts of Mithilanchal start populating, these parts of Bhojpur start populating, you will see much more NDA leads. NDA now pulling away, it's almost 30 to 15. So they're going in a 2:1 sort of a ratio. has a lead. Right, there's just one lead. That's why it's on the leaderboard. I said Jansuraj is on the leaderboard, but 29 leads for the NDA. Let's look at the key race alerts. One of the key race alerts. Okay, we've got this. This is one of the reasons why we wanted it to be plotted here to my right. The magic wall. We've really brought it up so that you can zoom in and you can see that as the plotting happens, it's happening per constituency. Each of these constituencies, get in closer, show it to our viewers that on the magic wall, each of these constituencies are numbered.
the constituency number is being plotted based on the color legend for the political party. So the dark blue is for the Congress party, the purple is for the RJD, the green is for the JDU, the saffron of course is for the BJP. Then there are color codes for the Jan Suraj party and the Lok Janshakti party. So according to their color codes and the legends that you're seeing at the bottom of your screen, they are being plotted live on the Bihar map as per the constituency, and that's why you can trust these numbers, viewers. Zaka's got more numbers Absolutely, plotting. it's now pulling away much more decisively in favor of the NDA. NDA at 32, India Alliance at 20, again gain of 8. So from 125, they're already looking at 130 plus for the NDA. Again, if you look at the breakup, it's neck and neck last time I checked. Now the BJP slightly ahead, 15 to the BJP, JDU 13. Remember, they're both fighting exactly the same number of seats, 101 each. Let's look at the breakup of the India Alliance. There it's the RJD that's doing the heavy lifting. RJD was fighting in 140 seats. The Congress fighting in 61 seats. Congress got 3 leads. CPIML in 1. VIP has not opened its account yet. The Jan Suraj has 2 leads now. This is again very interesting. It's early leads. If the Jan Suraj gets 2, 3, 5 seats, then who will he hurt? Will he hurt NDA more? Will he hurt the India Alliance more? Right now we're seeing across all regions of Bihar, we are seeing slowly but surely more and more leads populating. From Alinagar, Darbhanga district, Maithili Thakur is leading. From Raghopur, Tejaswi Yadav is leading. From Mokama, Anant Singh is leading. So these are the leads. Raghopur, Tejaswi Yadav, Maithili Thakur from Alinagar, 25-year-old, contesting for the first time, and she believes she'll have the people's blessings. Anant Kumar Singh, so much drama. Jail tod ke aayega, sher hamara aayega. That's the whole conversation and posters being put up for Anant Singh. Bijendra Prasad Yadav from Supal is leading of the JDU. He is also leading. So these are the early key race alerts. And then we've got Nitin Nabin from Bankipur. He is also leading of the BJP. Again, Ram Kirpal Yadav, Danapur, again leading of the BJP. Many key race alerts that are coming through. Samrat Chaudhary from Tarapur is also holding on, and he is leading as for the early trends on the postal ballot. So these are some of the key race alerts that we are getting, showing to our viewers. I think Griha has more. Griha's got more. Yes, let's go across to Griha. Yes, Griha. You mentioned Samrat Chaudhary. We also have Chotilal Rai from the JDU, who is leading in Parsa. There's also Chandni Devi from RJD, Baniapur. She is leading. The star candidate Maithili Thakur from Alinagar, like you mentioned, is leading there, Anand. We also are seeing Congress back on the leaderboard, as you have the early leads coming in from Kishanganj. Kamrul Huda is leading from the Congress. There is another one from the Congress, Amita Bhushan from Begusarai, who's leading. Otherwise, it is the allies, CPIM, you can see. All right, let's bring it back into the studio. You can see here on the map, 65 seats now reporting. The NDA almost 40, the India Alliance at 24. So we're going in a almost 1:2 kind of a ratio, where the NDA seems to be getting from across regions, from the northern part of the state, from the central part of the state, which is of course the stronghold of the JDU. As far as the RJD is concerned, it is doing the heavy lifting for the India Alliance. If you look at the breakup of the 24 leads where they're currently leading, the RJD is leading in 18, the Congress only in 4. So the RJD is pulling a bulk of that alliance, whereas in the NDA Alliance, it is even Stevens between the BJP and the JDU. BJP at 18, the JDU at 16. The LJP has also opened its account in 4 seats, 4 leads for the LJP, the harm in 2 seats. Left also gets onto the leaderboard, 2 leads for the left. As we see, 41 leads for the NDA. 41 leads for the NDA. Look at the bottom of the screen. That's being updated live. This will have the one to my left will have to be refreshed a bit. But at the bottom of the screen, that's when the numbers are getting updated, like they are reflecting on the magic wall. Yes, Vio. Early, but if you start looking at the filter, look at the Mahila factor there. Again, there the NDA is leading in that at this point, and whatever we can make of it at this point. Clearly, of the 24 of those seats, 16 to 8. So it's a 2:3. It's a 2:3 kind of a ratio. But let's look at the big picture. Almost 70 seats now reporting. NDA at 41, India Alliance at 25. The NDA seats, again, 18 to 16. The BJP, the JDU is doing catch up. Remember, the JDU was at its lowest tally last time around, just 43.
The BJP neck and neck at 18, slightly ahead, whereas in the India alliance, and this has always been a problem, we were flagging this off even during the campaign, that it's the RJD that is having to do much of the heavy lifting. It contested 143 seats, 20 of those they are leading in currently. The Congress only 4 out of the 61. CPI-ML, CPM 1 seat each. Remember, the left parties last time around, I think, put together had about 15 seats, which was again a substantial chunk. Number. This time, I suspect it might be lesser than that. We'll see. We'll see how it But the left seems to be pulling its weight more than the Congress is even again. So it's weaker. It's looking, Congress is actually looking weaker despite all these rallies. So was someone barking up the wrong tree in terms of the real issue on ground? We'll have to wait. These are just trends. Yes, Sandeep. The seats, each party, there seems to be a very close race between the RJD, the JDU and the BJP to have a similar number of seats where they have the lead. The difference is coming because in the India alliance, it's only the RJD which is taking the alliance forward, whereas in the NDA, both the BJP and the JDU are doing well. So that's contributing to this huge difference. Yeah, there is. It is very clearly there is a Rohit Sharma, Virat Kohli kind of a combination which are batting in partnership within the NDA, and we could see that the BJP for some time was the single largest party. The RJD might just have taken that lead as with 21 leads overall. The BJP is at 20 leads, so the RJD currently is the single largest party. JDU playing catch up, 20, 19, 21. Not much separates these three parties, and is it between these three and the rest are just sitting marginalized? That's what it looks like right now. 78 seats are reporting now out of 243. NDA with a runaway lead, 46. Remember, this will get closer. This will get closer for the next couple of hours or so. NDA with 46. You look at the breakup there. The JDU is now leading the BJP. The JDU at 21, the BJP at 20. It's neck and neck. LJP has opened its account with 3, Ham with 2, and Mr. Kushwaha's party leading in 2. In the India alliance, it's the other way around because it's the RJD that is doing the heavy lifting. Yes, Griha, walk us through that you're getting. Yes, we have the RJD candidate Mukesh Ranjan who is leading, so that is the big update that's coming in. So from Mahua there's the RJD lead that has come in. Bijendra Chaudhary from Muzaffarpur, this was where the first ballots were started to be counted. Zaka, Bijendra Chaudhary right now from Congress is leading. From Mahua it's become important because it's Mukesh Ranjan from the RJD. If we see further from Betia, it's Renu Devi of the Bharatiya Janata Party who is leading currently. Raniganj, it's Ashmit Rashidevi from JDU. So it's JDU and BJP right now taking the lead there. But important update that's coming in from... Tej Pratap is trailing. Also, can you tell me, Griha, which are the constituency numbers of the JSP seats? Which are the 2 seats where Prashant Kishor's party seems to be leading currently? Just give us the... All right now 84 seats reporting, 53 to the NDA. 29 to the India alliance, and again I keep going back. If you look at the map, the southern seats, the RJD seems to be doing okay. Yes, the CPI and the CPI-ML did particularly well last time around. They are not doing as well this time. The JDU, which was the laggard last time around, is doing phenomenally well. In fact, it is neck and neck, if not slightly ahead. In fact, the JDU is 1 ahead of the BJP, 24 to JDU, 23 to the BJP. So the JDU is really pulling this alliance ahead, something it could not do last time around. The India alliance, the opposite story, like I keep saying, it is purely on the back of the RJD. 20 leads to the RJD, only 6 to the Congress, and the CPI-ML, CPI, CPM in 1 lead each. Again, the left will have a role to play. Last time they did add extra weight as far as the India alliance is concerned. Look at the breakup of the NDA. The JDU again running away. The JDU has 25. The BJP has 24. Remember, 24 out of this 25, the JDU has not lost in the last 3 elections. The BJP currently leading in 24. So all of the NDA alliance partners have opened their account, and pretty healthy sort of start. The LJP, remember, had only 1 seat last time around. He had fought in more than 100 constituencies. This time he's already got 3 leads. Yeah, but 3 out of 29 in terms of the overall seats that they have. This time they have candidates, and about 85 candidates of the LJP are in the fray, if my memory serves me right. Interestingly, the most number of crorpatis who are contesting are from the RJD. In this overall lot, and about 40%, nearly 1,016 out of the 2,300 and odd candidates
are all crorpatis. So the maximum number of crorpatis are contesting from the RJD and also from others or independent groups. So quite interesting these numbers, and also most number of criminal cases in terms of, that's also a hefty number in the high 30s in terms of the number of people who've got criminal cases against them, and some of them serious criminal cases. Nearly 600 candidates have serious criminal charges against them, who are all in the fray this time. Who will the Janata vote for? We have to wait and watch. Some key race alerts. Let's quickly look at some key race alerts. Who is leading, who is not leading at this point. We'll call this out here. Just pull the magic wall out and then have a look. There you go. Amrendra Kumar Pandey from Kuchai Kot, he is leading. Anant Kumar Singh, Mokama, JDU is leading. Lalan Singh was campaigning for him when Anant Kumar was sent to judicial custody. Vijendra Prasad Yadav of the JDU leading. Deepa Kumari of Haham Party from Imamganj, it's the SC seat, she is winning. Maithili Thakur from Ali, Mahila and Yuva. Now, so and she is in the lead. Nitin Nabin, BJP is in the lead. Tejaswi Yadav is leading. Ram Kirpal Yadav is leading. Ram Kirpal Yadav from the BJP this time, Danapur, and he is leading. Tejaswi Prasad Yadav, RJD, Raghopur leading. Last time around, they have lost the seat in the past, but there you go. Tej Pratap Yadav is trailing from Mahua. So Rabri Devi's calls to say कि बड़का बेटा को भी जिताइए. Well, is that working or not? We have to wait and watch. These are still trends. Postal ballots, EVMs have not yet opened. Vinay Bihari is leading. Samrat Chaudhary is leading from Tarapur of the BJP. He is leading. So a lot of the candidates who are in the fray, the big names, they are all taking leads and also leading from their own respective seats, except for Tej Pratap Yadav. Yes. Look at the map, and I think suddenly the JDU is really sort of opening this up. Look at the central part of the state, which is of course a JDU stronghold, and of course the northern part, which is the BJP and JDU stronghold, the Mithilanchal and the central parts. This is where they're taking their leads. Let me just bring you up to speed with what the breakup is looking like with the NDA. Look at that, the BJP at 29, the JDU at 27. The LJP has also opened its account in 4 seats. So both of these allies are really pulling their weight. And if you look at it, the JDU in the central part of the state and some northern seats as well. The BJP, of course, has always done well in Mithilanchal as well as in the Champaran districts. Whereas if you look at the India Alliance, the problem for the India Alliance continues. It is the RJD that is pulling the weight of this alliance. 27 leads for the RJD, only 6 for the Congress. The left parties put together about 5 seats. VIP has not opened his account yet. Remember, he is the Deputy Chief Ministerial face. He's not opened his account yet, and I think that's a problem for the India Alliance. The smaller partners are not pulling their weight. A quick point, I mean, to add to what you were saying, some of these seats where JDU is opening up, these are seats it did not win last time. Like Absolutely. On the northeast corner of the state, on the eastern side, there are several seats here which at this point are gains for JDU. So if you look at the JDU seats, again, they're winning across, the regions of the state. Of course, the central part and the eastern part, like I said, Trihut and the central part are always their strongholds, but they're also got a couple of leads up west in the Champarans. They've got one lead here in the Simanchal region as well. Of course, these are leads. These are leads. We have to wait and see how that plays out. But right now, it's the NDA at 68 and the India Alliance at 41. So they are stealing a march, and they have not even come to the halfway mark of the postal ballots being counted across the seats. Viewers, 111 seats as far as the leads and trends coming in. The NDA is already at 68, with the BJP at 30, leading in 30 seats, the JDU in 29, so neck and neck, both of them, I know, having a great strike rate and a run rate in terms of the way these two parties have combined within the NDA. Look at the leads as far as the INDIA is concerned, and in the INDIA, there seems to be trouble, because the only person pulling their weight or perhaps running this entire cart, pushing this cart, is the RJD with 28 seats. So it's just the number 3rd party behind JDU and the BJP. But their own partner, Congress, is not pulling its weight. The left seems to be doing better than the Congress as of now. Congress is leading at 9, the left is leading in 6. Congress contesting far greater number of seats than the left overall. Yeah. If you look at the RJD seats, a good number of the seats are here in the southern part of the state. We're looking at the Magad sort of region, central south. And you've got a couple of seats for the allies here in Simanchal, which I keep saying is the polarized, let's say, where polarization works. You've got a couple of seats for the RJD here in the central west part of the state, again, just west of the Mithilanchal region. So whether or not these leads hold, we don't know. But the numbers here tell a very, very clear story. It's the RJD almost 30, the Congress only 9, the left parties between them 6 seats. But
RJD that's pulling a bulk of the weight as far as this alliance is concerned. The opposite story in the NDA, where it's neck and neck between the BJP and the JDU, both of them at 30 seats each. The JDU is really opening this up. In a bit, we'll show you this map compared to 2020. In 2020, the JDU had just a few pockets here in the central part of the state. Now they're opening up in the northern part of the state, in the western part of the state, and a few seats here in Simanchal as well, which you did not see in 2020. Right. So viewers, you see this is the 2025 Vidhan Sabha that is plotted. 2025 Vidhan Sabha map as it is plotting with respect to the leads, and Zaka is just saying that look at the number of light greens. If you look at the number of light greens, that's the JDU's symbol. The JDU right now is spread across the Bihar map. This was not the case in 2020. We'll come to the 2020 map. Right now, keep your eyes on the light green color. Focus on the JDU. They are spread across Bihar. From the top, northern, north to central Bihar, downwards towards South Bihar. You see the map. Now Zaka is going to call out the 2020 and you would see where the JDU was. The JDU was there in far lesser number of seats, the light green. So clearly this time it's the JDU. Now there you see. That's the 2020 number and you see where the JDU is. The JDU is plotting. These were here. They didn't have anything in Simanchal. They had just a couple here. They didn't have anything, in the other parts of the state, in the Mithilanchal region as it were. A bulk of their seats were here. But if you look at the 2025 map now, and once it gets populated, you will get a better sense. Look at the various regions they're getting. They got a couple of seats here. They got a whole bunch of seats here in this Mithilanchal part. Central seats anyway are their stronghold, and they've got I think 4 seats here in Simanchal, which they did not have last time around. 125 reporting. Let's look at what it is right now. We'll just go across to Griha. Right at the top of our screens, you will see the halfway mark, viewers. You will see the halfway mark, the race to the halfway mark. Right at the top of our screen, NDA is really racing towards that halfway number of 124. They are getting there faster than the INDIA. At the moment, they are at 72. They have to get up to 124, first past the halfway mark. Will it be INDIA? Will it be the NDA? Griha now joining us from the live result hub with the VVIP candidates. What's the story? Yes, Griha. Absolutely, Anand. But before I do that, let me also give you a district-wise tally. So far, we are learning that the early leads also from Muzaffarpur, we are getting leads where the maximum amount of ballots right now are being shown to us, and also Samastipur. So these are the areas where, and Begusarai as well, these are the areas where the early leads are coming in. As far as the VVIP candidates are concerned, Anand, we do see Maithili Thakur, who is maintaining that lead from BJP from Ali Nagar. There is also the controversial candidate Anant Singh from JDU from Mukama. He's also maintaining the lead. Danapur, again it's BJP. Ram Kripal Yadav maintaining the lead. Tejasvi Prasad, obviously from Raghopur, the RJD bastion, is right now safe with the Tejasvi as the lead is maintained. Then we also see from Mahua, like we've been talking about, Mukesh Kumar from RJD is maintaining that lead. And if we see Sarai Ranjan, Vijay Kumar Chaudhary from JDU maintains. Sheila Kumari from JDU from Pool Paras is maintaining the lead again, and Vijendra Yadav from JDU from Sapol maintains the lead. Betia, again it's BJP, Renu Devi maintaining the lead. So the female candidates are doing it for the NDA as far as they are concerned, because both Maithili and Renu Devi are leading. All right, Griha, look at the magic wall and we can project it on that big screen as well. 125 seats reporting right now. NDA at 76. It's a plus 14. Always pay attention to this figure. It's now gone plus 15. Remember, they were 125 last time. They're already looking at 140. If these trends hold. Look at the breakup of the NDA alliance. It's neck and neck between the BJP and the JDU. In fact, the JDU is now leading in 34 and the BJP in 32. This could be a sub-story in this election if the JDU becomes the single largest party. The LJP at 5, the RLM, Kushwaha's party at 4, Harm at 2 seats. These two parties were not happy with the fact that Chirag Paswan got 29 seats. In the India Alliance, opposite story. Look at the map. It's all purple. Purple is the color that we've given for the RJD. 32 leads for the RJD. The Congress only 9. The left parties between CPML, CPM and CPI, 6 seats they're leading in. They had 15 last time. The question is, can the RJD pull enough weight to take the rest of the alliance going forward, because the smaller partners are not pulling their weight in the NDA.
Yeah. Yes, go 9 ahead. seats of the Congress party right now, the leads. Now look at where they are leading. It's parts of the Simanchal and from the corners. That's where the Congress is actually leading, but it's not plotting as thickly as it should, given the number of seats that it is contesting. That means the only person that is pulling its weight and actually doing the batting for the INDIA right now is the RJD with 32 leads, and 32 leads mirror what, and it's neck and neck with the BJP and the with the JDU. So you've got two strong partners on one side within the NDA and a third one who's batting hard but is on the opposite side, that is the RJD. Most importantly, like Zaka has been saying, the story, viewers, is the performance of the JDU, the strike rate of the JDU. The moment the strike rate of the JDU goes up and the BJP holds on to its own seats or its performance from the last time, then the margin will be far greater than 124 seats or 125 seats that the JDU and NDA combined got last time. They will get to the 140, 150 number, and if this trend holds, then the NDA could just race away, and this matter would be settled beyond doubt, Zaka. Oh, absolutely. I just want to also flag off two regions that are still not reporting. Just south of Magad, we don't have much seats reporting here, and also in this western part, just west of Bhojpur, we aren't getting as many reportings from these places. But in the other regions, and I want to flag this off again, look at the JDU colors. It's there in the northern part where they generally don't tend to do well. You've got a bunch of seats here up in the Champarans and again in the southern part. You did not see this in the 2020 map. You even have about 3 or 4 seats that they're leading in Simanchal. It may change by the end of the day, I don't know, but you didn't see this in the 2020 map. The JDU is present, pockets of green across various regions of Bihar, and I think that is the difference in this election. That seems to be supporters of the JDU. Take a snapshot of this. Take a snapshot of this. 136 leads, and the JDU is there right up with 34, single largest party at the moment, just behind the BJP. 84 leads for the NDA, 49 for the INDIA. Yes, Griha is joining us from the live result. Yes, we have a word in on Kesari, RJD star candidate. He right now is trailing Anand. Choti Kumari of the BJP is right now leading from Chhapra. So the VIP candidate for RJD is not working. Kesari, Shatrughan Yadav is right now trailing from Chhapra is what we are getting in. And it's Choti Kumari of the Bharatiya Janata Party who is leading from Chhapra. Shatrughan is not living up to his name as of now. But that's all as of now. These are all trends. These are all trends. These are all moments that people would have to say, savor, hold on, and some would hope these trends stay. Others would hope that they get reversed. Yes. No. I was just pointing out that you seem to be haunted also by the ghosts of 2015. No, I'm not haunted. Early trends, what do you make of it? The EVMs have not yet opened. Yeah, so there's no point calling anything now. Yes. Early trends, I think the most important thing I have seen is the JDU recovering ground after the fall in 2020. That is extremely significant because that will actually also decide a lot of other things on the ground and in government formation. Rahul, quickly, and then I'll come to you. Just continuing that point, I think there seems to be greater synergy within the alliance partner of NDA. Everyone seems to be contributing in proportion to the number of seats they are contesting. On the other hand, alliance, there was lopsided, like RJD's really big party, it was contesting 143 seats, but it seems Congress, which was the party which is contesting 60 odd seats, almost 1/5, and their performance continues to be poor. When you delete 65 lakh voters, when you it is very important. ये जरा सुन लीजिए सचिन बोल, उसके बाद please add on. When you delete 65 lakh voters, mostly from opposition's voters, what do you expect on result day? Democracy cannot survive if the playing field is tilted even before the match begins. Hashtag SIR, hashtag vote chori. Guess who? Can I just? Manikam Tagore. Madam Tagore is saying, but I think Zaka, we must on a more serious note look at this as if they are postal ballot. Counting is going on. Postal ballot people, they have a socio-political profile. We must take cognizance of it and wait and watch. Fair enough. I think the picture is far from clear now. But then you should say that to Manikam Tagore also. I think you have a better line with him. Yes, postal ballots, but I think what's important there, I think I'd reiterate the point being made. The NDA alliance sees two important partners actually taking the alliance forward, whereas in the case of the India alliance, it's just one party which is doing the job there. And as mentioned earlier, if JDU is leading in 36 seats,
I think if you look at the map where those 36 seats are, a lot of those are seats which they actually lost in 2020 thanks to the LJP's work in those seats. So they are recovering those seats, they are doing well in those areas. And that, I think, is an important development that these. I think when a party does well across regions, it's a sign that, you know, the wind is behind their back. Confidence hai, Babu. The Bihar election is about arithmetic, and you know, you see RJD is not doing badly. 35 seats. Yeah, of course. It's almost single-handedly pulling the weight. But no, there is vote chori. RJD, how is it? Is doing 65 lakh voters gone. How is RJD doing well? Yeah. Also, if these trends hold, then another very clear picture is that it's total decimation of the Congress when it comes to regional issues, right? So this will have a multiplier effect on state elections in other assembly Listen to the local despite partner. Yatra, despite Yatra. Listen to the local partner ki local ground ka mudda kya hai. But one more point, I think, like sir, please listen. I'm listening and sir. In the like you know, a couple of months back, there was a lot of conversation about Prashant Kishor and JSP, and I think now at least that seems to be completely. The chances of them even to basically touch double digit is very, very difficult. No, when I I understood, but I don't want to pander into that conversation anymore. May I say that two things I want to point out. One, that the NDA with two big parties engines. pulling together, The India alliance is stuck with just the RJD. But if you look at region-wise and whatever we can make of the trend right now, in the Bhagalpur belt, the NDA is sweeping at the moment. In the Bhojpur belt, sorry. The Bhagalpur belt, they are sort of, look at that, 12-1. Yeah. Right? But this is Nitish Kumar's belt. And again, I don't know the breakup between the BJP and the NDA. But you would imagine that the JDU is ahead. It's 6-4. In the Bhagalpur belt, it's even Stevens at the moment. But in Magad, the NDA is quite far ahead at the moment. All right. Oh, yeah. In Magad, it's 22-12. Last time it's in Magad that the RJD actually did well because of both the left parties as well as the RJD. Bhojpur. Right. Bhojpur mein NDA reporting a little less, but again, you know, if they are leading 99 seats across the 12-12, it's almost neck and neck. And in Simanchal, it's also neck and neck. Right. We've got 156, 157 leads. The NDA is just about to touch the 100 mark. Now, if you look at the halfway right above there, they're going to touch the 100 mark. Another 25 leads, 24 leads, they would breach the halfway mark. The NDA, that's where it is. At the NDA at 99, 40 for the BJP, 41 for the JDU, for the LJP. That's their best ever performance. If this 8 holds, that will be their best ever performance. NDA is at 100. NDA is at 100. So 100 leads this morning for the NDA. The early trend showing that the NDA is walking away, marching comfortably, leaving the opposition behind, far behind. It's not a neck and neck race, almost halfway distance, 50%, 54 for the INDIA, 100 for the 102 for the NDA. That's what the leads are at this point. 102 again, racing up to the halfway mark, faster. Viewers, right at the top of the screen you can see this is the halfway belt, and this will keep tracking who's passed the post, 102 right above the screen. I'm just pointing to right to the top of the screen, and you can see it. It's firing there. 102 leads for the NDA. 103 now, so it's increasing, really increasing. Sandeep ji. It's 8:45, which means we must be going beyond the EVMs will open. Just let's ask Griha. Griha, when is the EVM opening? So what's the update? Has opened. EVMs have opened. Let's break that. EVMs have opened. JDU is the one that's leading. We have so far called 3 in fact seats where JDU is leading. So Paul, there's also Mahanagar and there's also Rajapakar. JDU is leading from all of these 3 constituencies. Zaka. All right. One other interesting point. You know, last time MIM did pretty well. He had 5 MLAs. This time MIM has not opened its account. Let's look at the others. Let's try and see if he's opened his account yet. I think he's opened it in one place. It's down 5 because all the 5 were MIM seats. This time I think the Muslim vote, particularly in Simanchal, seems to have gravitated towards the India alliance. They don't want to do the MIM experiment again if these leads hold. Yes. Anybody? There was some conversation. Yes. Tell us. No. We were just talking about the AIMIM. And I think for that at least one needs to give some credit to the Congress, because there was a feeling across the board that this time AIM is getting no purchase in Bihar.
because of huge consolidation, thanks to both the RJD and the Congress, because of the stances taken by Rahul Gandhi. Or have the Muslim voters gone back to their traditional voter bases or who their No, but for that they need to get some confidence also. Be it the JDU candidate, be it the RJD No, or no, Congress they need to get some confidence candidate. also. Or even the BJP candidate. Yeah. But also, let's also keep in mind that in the NDA, not only are the two big partners doing their job, the third partner also is contributing and not contributing in a negative way like last time. Yes. So that So I it's think is 8. also a crucial factor. Last time it was just 1, but this time it's already 8. The RLM has 5, the HAM has 3. So the smaller partners, you're right, the smaller partners are also pulling their weight. Already just between these two, they are up 13 from last time. So that's a significant jump up. And Zaka, that VIP is not doing well. I mean, And that they have VIP an is open not account doing well, and they were offered Deputy Chief Minister post also. No, for all that they did about Mukesh Sahni, because the moment they announced him as Deputy He's CM, still they not parked opened him. his account. VIP is still not opened his account. It's still He at was 0. worried that his brother, who's contesting, that they were going to buy out the candidate, and the Congress had fielded another candidate there. And most exit polls were actually indicating that VIP. The importance of the LJP factor in this, because of the last time when they were fighting against, and they cut a lot of. So somewhere, 36 seats at least, they made the difference for of victory and defeat. So right now for they're the India leading in Alliance 8 seats. These seats in the southern belt, south of Magad, 1 in Bhojpur. He's also got a bunch of seats here in the eastern part of the state. These are the 8 leads that the LJP is currently in. Yeah, interestingly, now the JDU and the BJP have opened up a lead against the RJD. RJD is less than 40 leads. The JDU is the single largest party with 46 leads. BJP 44. RJD is at 39 leads right now. Yeah. JDU. All right. I mean, look at where the pockets from where JDU and BJP are getting. This part, of course, you would expect Nitish Kumar, but this part, the Mithilanchal part, you don't necessarily expect him to do well. Here in the Champarans, he's got 3-4 seats. Here in Simanchal as well, he's got about 3 or 4 seats where he's leading in. So I think, here, a bunch of seats right in the heart of the state, again, a bunch of leads. So the JDU is opening up in different regions, and that is an indication. That is an indication already. Remember, he's already at 46. Last time he only had 43. So he's already leading in more number of constituencies than last time. I suspect if these trends hold, this figure will inch closer towards 65, maybe even 70. Well, 105 for the NDA in terms of the leads out of 167. So we've got more than half the number of have leads coming to about 175, 180 leads. And let's look at this. Ye JDU, NDA and Mahagathbandhan ki cycle wahan se aa rahi hai, धीरे धीरे दौड़ा के, and halfway number viewers is 122. The NDA is 107. So this cycle is now 105, and even as he's coming down, well, that number has gone up. It's become 107. So that means very soon they will be past this halfway number of 122 and into comfortably getting into a position of being able to form government. The NDA has 2 out of every 3 leads, so it's almost in the leads. It's leading in 2 out of every 3 leads. 107 and 58. 109 and 58. So 2 out of right. every 3 leads are going towards the NDA. So this could be quite a runaway victory. 160 seems possible if these trends hold. And now, viewers, EVMs have opened. So we are also now into round 1 of counting across a lot of counting centers, or the 46 counting centers. We just try and go to Griha at the live result hub to understand how many counting centers EVM counting has already begun, because these leads now are beyond the postal ballots. So they should start consolidating and settling very soon. Yes, Griha. Okay, Anand, we are still figuring out the rounds of counting. Right now, we have about 4 leads that are coming in from EVMs, but one new player on the leaderboard, that is AIMIM, they have shown that lead, and there is one candidate from the AIMIM that is right now leading, Akhtarul Iman from Amor. So that's a new addition that we can tell you. So far, the EVMs have just about opened up. We are still seeing where the leads are coming in early on, but right now we do see JDU is leading. Randhir Kumar Soni from Sheikhpura is leading. There is another BJP candidate, Pramod Kumar Sinha from Roxol, who is also leading. So all of these leads are coming in. The JDU now fast. leads in 50 seats. The JDU now leads in 50 seats. BJP in 48. The RJD in 40. Interestingly, the left is leading in more seats than the Congress party.
and the NDA overall on 113 seats, just 9 short of the halfway mark. 9 short of the halfway mark in these morning trends and the early leads for the NDA. So that's VIP has just opened. VIP has just opened its account. We'll try and see which that seat is. Griha might have more on that. But you're Congress leading in 9, but if you put all the left parties together, they're leading in 10. But the problem for the India alliance, again, it's the RJD that's pulling its weight for the entire alliance. The rest of the partners don't seem to be pulling their weight. 40 for the RJD, between Congress, left, VIP, everyone put together, it's barely about 15 seats. But is the RJD strike rate also looking weaker than the last time around, Zaka? Absolutely, is it looking absolutely. Weaker? The strike rate is looking weaker because A, they contested more seats this time around, and B, they are not winning as much as they did last time around. Whose strike rate is improving as far as the NDA is concerned? It's the JDU, because it's already +7 from last time. Remember, the JDU won just 43 last time. The BJP had won 75, 74, so they're down 24. But remember, they're fighting less seats this time as well. Last time they fought 115, this time they're fighting 101. So you have to discount that extra 14 seats. But the BJP, it seems, has sort of decided to play second fiddle this time around, giving equal seats to JDU, and JDU is backing up that faith by increasing its tally already at 50. Like I said, if it goes at this rate, I suspect he will be pushing. In fact, they decided we'll be 50-50 partner, and they are currently doing 50-50 partnership. That's what's happening. 101 seats each, and they're going at 50-51 seats as a lead down to 38. So some of the leads are transferring to the NDA. Is it a runaway victory? Look at the leads. 5 seats, just 5 more leads, and they would be past the halfway mark, or they would be at the halfway mark of 122. 6 more leads, and at 123 they would be past the post in terms of leads, and that would be significant. Look at the INDIA, it's just less than half now. Now exactly 2 out of the 3 leads are now going towards the NDA, as Sandeep Shastriji was saying, and more importantly, the cameo roles are also happening. So it's like a team play that's going on, because some of the smaller partners are also pulling their weight. Yeah, I mean, contrary NJP to at the 8, RLM at 5, Ham Party at 3, that itself is 16 seats, 16 leads as of now. So that is also contributing to this tally of 117. If you take away these 16, they'll be closer to 100. Again, that would, but that you would expect, because if the bigger parties are pulling their weight, then it has a sort of knock-on effect for the smaller ones as well. In the India alliance, that's not happening. If this holds, you know, one thing would be very, very clear, that Rahul Gandhi's this yatra has damaged the alliance in many, many ways. One is that the whole optics of Rahul Gandhi preceding over Tejaswi, that who is the much stronger partner, you know, that actually pissed off the Rahul RJD. Gandhi Yatra seats, 135 out of 243. The NDA is leading in 90 out of those, and India alliance only at 41. And so then clearly delaying the chief impact. ministerial candidate announcement from the Congress's side. I mean, Gehlot had to come in and then announce it, Correct. which No, Rahul should have done it. Correct. You know. I think, you see, the Congress had played at, done a kind of bit of a gambling by changing its, social profile in Bihar, where they have tried, instead of consolidating on upper caste with the traditional vote bank, they moved towards the economically backward classes, etc. And took on JDU, that vote constituency, which they have not been very successful as far as this trend goes. So I think that is something that is, so they experimented, which has failed, or a boomerang. So even on the Rahul Yatra seats, look at that, Congress only leading in 8, RJD leading in 27. So clearly there was a minimal impact of the SIR Yatra. No, क्या कह रहे हैं sir? Yes, sir. Yes, because they took on JDU, and JDU is just emerging stronger. So obviously the Congress is going to be the loser. No, but the Congress, 1, gave the wrong tickets. 2, decided to unnecessarily create all this drama about who will be the CM face. No, I 3, don't think that pulled the cart in a different direction. Tejaswi was drumming up as we something, speak, and this guy comes and pulls the yatra and the whole thing towards somewhere. So did you I actually? think that's your did the view. chori happen No. of the narrative actually? No, you are entitled to Did the chori I happen don't of think the there narrative was and not the vote? any doubt in the mind of a voter there that if the Mahagathbandhan wins, then Mr. Tejaswi Yadav will be the chief minister. There was no doubt about it. It was just that whether they said it or not, that's a matter Sir, of... it is like the non-striker, 121. the batsman calling for a single, and the non-striker said, "No boundary mark." The non-striker, no boundary mark. That's just one shot of majority. One shot of majority. One shot of halfway mark. One shot of halfway mark. Now it is. Now it is. One shot. Now 122. The NDA at the halfway mark. There you go. The cycle of the NDA with the litti choka coming all the way
and swinging right under the halfway mark. That's where it is. NDA and the Mahagathbandhan and the INDIA left far behind. The NDA 122, 2 out of the 3 leads this morning are going the NDA's way. There you go. And as it goes past right at 122, and we'll see whether or not the next lead takes it past the post and gets it past the post. That's where it is. Right at the halfway mark is the NDA. The special Litti Chokha this morning is going their way. 63 leads, half 50%. 2 out of the 3 leads have gone to the NDA. This looks like a runaway victory, sir. अभी तो 200 सीट का भी लीड नहीं आया है. 190 पर पहुंच रहे हैं. See, I think like what India Alliance did in terms of SIR Yatra, I think that was fine, because what it did, it actually mobilizes your cadres. So, but you had to build on from there. The problem is that the two partners sort of like campaign on very different narrative. Correct. Congress never left the SIR narrative, and by the sort of like campaign started, RJD and Tejaswi Yadav wanted a very different kind of narrative. So campaign didn't look cohesive for the India Alliance as it did for NDA. So the NDA has now crossed the halfway mark. It's at 124. 124. Big leads as far as the JDU is concerned. The BJP, JDU neck and neck. BJP is down 19 from last time. They had 75. The JDU at 53, already plus 10 seats. The LJP, RLM and the HAM are pulling their weight. There are 16 seats between the 3 smaller parties. But it's the JDU BJP story also. एनडीए को 122 सीट इस तरह से भी कह सकते हैं शिप्रा, रुझानों में नीतीश सरकार फिर से, ये देखिए 124 एनडीए बढ़त बनाता हुआ 124 सीटों पर एनडीए, यानी 122 से भी 2 सीटें आगे निकल गया है एनडीए. 124 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है. महागठबंधन 66 सीटों पर 194 सीटों के इस समय आंकड़े इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं. पर मुझे याद आ रहा है कि जो दावे किए जा रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो क्या पूरा होता है? हालांकि शिप्रा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, ये रुझान है, ये परिणाम नहीं है, और परिणाम आने में अभी थोड़ा समय लगेगा. लेकिन रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है. 124 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है. महागठबंधन 66 पर 124-66 की लड़ाई. 124 और ये सीटों पर हम विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं. विधानसभा के अंदर जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आप पहले ये देख लीजिए. यहीं पर वो विधायक जो है वो बैठते हैं और इसको ग्राफिक्स टीम ने कितने बढ़िया तरीके से दिखाया भी है. जो ये आप देख रहे हैं पीला कलर यानी कि भगवा कलर वो एनडीए का, और जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो महागठबंधन का. 2 सीटें अदर को भी वहां पर दिखा दी गई हैं. इसी अरेंजमेंट में ये जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत बढ़िया ग्राफिक्स इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर. 124 सीटें जो आपको भगवा सीटें दिख रही हैं वो सीटें हैं एनडीए की. ये 124 सीटें, वो महागठबंधन की 68 सीटें. 2 पर फिलहाल जो जेएसपी आगे चल रही है यानी कि जनसुराज, उनको भी जगह. बिल्कुल संतोष, और देखिए कितनी सीटें जो है वो भरने वाली हैं, इस पर सबकी नजर होगी. ये सीटें ज्यादा भरेगी या इधर इस साइड की सीटें जो है ज्यादा भरेंगी, ये भी देखना होगा. और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं. और अभी अब आपको बता रहे हैं 124 पर अभी एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है. 68 पर महागठबंधन की बढ़त है, 2 पर जनसुराज की बढ़त है और 2 पर अदर्स. ये काफी दिलचस्प है और इसी में तो आने के लिए लड़ाई चल रही है संतोष. और ये पूरा जो वोट युद्ध हुआ था वो यहां तक ही पहुंचने के लिए हुआ. फिलहाल 124 सीटों पर एनडीए को बढ़त, और ये रही एनडीए की सीटें. 124 सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं वो के कलर में रंग दी गई हैं. ये रहा फिलहाल टैली आपकी टेलीविजन स्क्रीन. 197 सीटों के कुल आंकड़े हमारे पास है, जिसमें 124-68 की लड़ाई चल रही है. और ये 125 एनडीए 125 पर 67 महागठबंधन, जेएसपी 3 यानी कि जेएसपी ने 1 सीट पर और बढ़त ली है. 2 पर वो आगे थी, अब 3 पर हो गई है. अदर 2 पर आगे चल रहा है. बिल्कुल, तो 243 में से अब तक फिर से दर्शकों को बताते हैं 126 सीटों पर. और अब आपको हम एनडीए का ब्रेकअप बता रहे हैं. बीजेपी 56 सीटों पर, जेडीयू 53 सीटों पर बढ़त है, एलजेपी आरबी की 9 सीटों पर, हम की 3 सीटों पर और आरएलएम की 5 सीटों पर बढ़त है. बीजेपी अभी नंबर 1 पर नजर आ रही है संतोष. देखिए बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है बीजेपी और जेडीयू ने. अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो जरूर बता रहे हैं कि बीजेपी 56, जेडीयू जो है 53. और आरएलएम के लिए अच्छी खबर यह है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त बना रखी है.
ये अच्छी खबर है। हम भी 6 सीटों पर लड़ रहा है, 3 पर बढ़त है। एलजेपीआर भी 29 सीटों में से 9 सीटों पर बढ़त अभी बढ़ा कर रखा है। और ये 126 सीटों के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक हम दिखा रहे हैं 56 सीटों पर बीजेपी आगे बनी है, यानी कि एनडीए में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए में भी बीजेपी 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 54 सीटों पर। हालांकि संतोष ये भी कहा जा रहा था कि इस बार जो है अच्छा परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की पार्टी का होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान में जो है जेडीयू थोड़ा पीछे जरूर है। 129 सीटों के ये रुझान है। 129 सीटों पर क्या स्थिति है वो आप दिखा रहे हैं। और ये महागठबंधन की स्थिति देख लीजिएगा। ये जो महागठबंधन 43 सीटों में आरजेडी आगे चल रही है और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। सीपीआई 7 सीटों पर, 1 सीट पर, सीपीआई एमएल 7 सीटों पर और वीआईपी 1 सीट पर आगे चल रही है। सीपीआईएम के ने भी 2 सीटों पर बढ़त बना रखी है। ये महागठबंधन के आपकी टीम बता रहे हैं आपको। ये जो देखिए जो महागठबंधन हम आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है वो आपको बता रहे थे। आरजेडी अभी भी यहाँ पर नंबर 1, 43 सीटों पर आरजेडी की बढ़त है। कांग्रेस की जो है 11 सीटों पर बढ़त है। सीपीआईएमएल की 7, सीपीआई की 1, सीपीआईएम के 2, वीआईपी के 1 सीटों पर बढ़त बना रखी है। आधे सीटों पर अभी है। और इसको थोड़ा सा सरल करके अपने दर्शकों को बताएं तो एनडीए के आधे पर महागठबंधन खड़ा है, या इसको पलटकर देखें तो महागठबंधन से दो गुनी सीटों पर एनडीए खड़ा है। सीटों का रुझान आ चुका है संतोष। 200 में 130 एनडीए, 65 महागठबंधन, 3 जन दर्शकों को 130 एनडीए, 65 महागठबंधन, 200 सीटों का रुझान और 130 सीटों के साथ एक लंबी छलांग एनडीए की लगी है संतोष। 200 सीटों के रुझान, एनडीए 130 और महागठबंधन 65। हमारा एग्जिट पोल आपको याद होगा, हमने 140 सीटें एनडीए को दिखाई थी और उसी तरफ ये पूरा रुझान इस समय जाता हुआ दिख रहा है। 201 सीटें यानी एक शगुन की भी आ गई है। 201 सीटों पर जो रुझान है उसमें एनडीए 130, महागठबंधन 66, यानी कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए दोगुने पर है। जीएसपी 3, अदर 2 और हमने जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल था उसमें हमने एनडीए को 140 सीटें दिखाई थी। और यही होता हुआ कहीं ना कहीं अभी नजर आ रहा है। लेकिन फिर से दर्शकों को बता दें कि शुरुआती रुझान है, इसलिए अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआती रुझान में जो बढ़त है उसके मुताबिक ये जरूर दिख रहा है संतोष कि एनडीए 131 सीटों के साथ आगे है। तो 140 का जो आंकड़ा हमने दिया है शायद पहले जरूर टच कर लेगा। अगर रुझानों के हिसाब से, अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार, ये स्थिति बन गई है। एनडीए 130, महागठबंधन 66, जीएसपी 3, 201 सीटों के रुझान इस समय न्यूज आ रहे हैं आप। एनडीए 130, महागठबंधन 66, जीएसपी 3, अदर के हिस्से में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। 201 सीटों के रुझान हमारे पास। 42 सीटों के अभी रुझान आने बाकी हैं। 201 सीटों का रुझान हम दर्शकों को बता रहे हैं। 201 में क्या आंकड़े हैं? 130 एनडीए, 66 महागठबंधन, 3 जन सुराज, और यही ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के जो रुझान जितने हैं 201 सीटों पर, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आंकड़ा रहा। एनडीए 130, जिसमें से बीजेपी तकरीबन 60 तक पहुंच चुकी है और जेडीयू देखिए 59 सीटों पर बीजेपी आगे है। जेडीयू 54 सीटों की लीड लिए हुई है और एलजेपी रामविलास 9 सीटों पर, हम 3 सीटों पर और आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 6 सीटों पर लड़ी है और 5 सीटों पर लीड ली हुई है। बिल्कुल, और ये आंकड़े, इनकी बड़ी बातें क्या हैं फिर से दर्शकों को बता दें। बड़ी बातें यही है कि बीजेपी जो है बिहार में फिलहाल अभी नंबर 1 आंकड़ों पर चल रही है। और देखिए बड़ी खबर, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव, रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे हैं। अब ये बड़े चेहरे के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। सिवान से पांडे फिलहाल आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पांडे, सराय रंजन से विजय चौधरी भी आगे चल रहे हैं। ये रहे खेसारी लाल जी की तस्वीर भी यहां लगा दी गई है, आगे चल रहे हैं फिलहाल खेसारी लाल छपरा से, और आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे। खेसारी लाल आगे बताए जा रहे हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और ये रेणु देवी की तस्वीर देखिए, बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार वो आगे चल रही है। सीवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। सराय रंजन विजय चौधरी, सराय रंजन से विजय चौधरी आगे चल रहे हैं और रुपौली से आरजेडी की बीमा देवी आगे चल रही है। और ये मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही है, बीजेपी उम्मीदवार है मैथिली ठाकुर, वो भी आगे चल रही है।
बिल्कुल, और दर्शकों को फिर से बता देते हैं, यहाँ पर देखिए रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल ये आगे चल रहे हैं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। और ये भी कहा जा रहा है कि संतोष के जो बड़े चेहरे हैं इनकी किस्मत ज्यादा दांव पर थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की क्या हालत है? तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि यहाँ पे इनके पिताजी लगातार जीतते रहे हैं, तो ये भी इस बार जीत कर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि क्या मुकाबला होता है वो भी हम देखेंगे। राजेश कुमार राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राजेश कुमार राम यहाँ पर भी सीट जो थी फंसी भी नजर आ रही थी, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति थी, लेकिन बाद में सुलझा लिया गया था। स्वास्थ्य सीवान से आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी देखिए, मंगल पांडे साहब की तस्वीर लग गई, सीवान से वो आगे चल रहे हैं। और ये रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं, लखीसराय सीट से वो चुनाव मैदान में थे, फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और लगातार ये 5वीं बार चुनावी मैदान में है संतोष, देखते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अवतार किशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। इनकी स्थिति भी अभी फिलहाल अच्छी नजर आ रही है, हालांकि शुरुआती रुझान है, देखना होगा अभी आगे पीछे का दौर बहुत बदलने वाला है संतोष। और ही आगे तेज प्रताप यादव मुस्कुराते हुए महुआ से, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, इसलिए पीछे चल रहे हैं। जेजेडी के उम्मीदवार है तेज प्रताप यादव, महुआ का महुआ, और वो इस समय पीछे चल रहे हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने मुकेश रोशन को उतारा है और तेजस्वी यादव जो इनके भाई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और कहा था कि आरजेडी पार्टी जो है ऊपर होती है। अब तेजस्वी का हाल क्या है? छोटे भैया के क्या हाल चाल है? छोटे भैया तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव वो आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से, आरजेडी के उम्मीदवार, और महागठबंधन की ओर से तो सीएम उम्मीदवार भी थे, लेकिन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव। बिल्कुल, और इसे भी इसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो समीकरण है, सियासी समीकरण, वो भी इसके पक्ष में ही रहते हैं, यादव बहुल ये पूरा इलाका भी है। हालांकि देखना होगा कि अभी आगे पीछे में और भी जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति फिलहाल अच्छी लग रही है। आज इन्होंने दावा भी कर दिया है और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये भी कह रहे हैं कि 14 को नतीजे, यानी आज नतीजे, और 18 को सीएम पद की शपथ लेंगे संतोष। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो रुझानों में वो पीछे हुए, लेकिन ये इसी बीच एक और चेहरा आ गया, बहुत बड़े चेहरे बिहार के। और देखिए अब बात करते हैं रामकृपाल यादव, दानापुर से पीछे चल रहे हैं। ये क्या हो गया? ये यहाँ से रीतलाल यादव चौंकाने वाली खबर है, ये चौंकाने वाली खबर है। रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं दानापुर से, बीजेपी उम्मीदवार है रामकृपाल यादव, वो पीछे हो गए। बिल्कुल, और यहाँ से रीतलाल यादव रोड शो भी किया था लालू यादव ने, क्या उसका असर दिख रहा है ये भी देखना होगा। 129 का आंकड़ा पहुंच चुका है। हाँ, 202 सीटों के जो रुझान आए, 129 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 68, जेएसपी यानी कि जनसुराज 3 सीटों पर, अदर के हिस्से में 2 सीटें, फिलहाल 202 सीटों के रुझानों में शिप्रा आगे। बिल्कुल, और अब देखिए डिटेल जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। पहले आपको शुरुआती रुझान बता रहे थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताते हैं। और एक बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खबर, रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बीजेपी जो लीड बनाए हुए है, और दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में फिलहाल दूसरे नंबर पर जेडीयू, और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है आरजेडी। इसका याद कीजिए संतोष, तीसरे नंबर पर जेडीयू था जी, और इस बार देखिए तो देखिए बीजेपी किस तरह से नंबर 1 है। ये अब आप बीजेपी 59 सीटों पर आगे है, जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, और एलजेपी रामविलास यानी कि ये चिराग पासवान की पार्टी 8 सीटों पर आगे, हम 3 सीटों पर आगे, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर आगे। बीजेपी 59 सीटों पर आगे, और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया भी गया था। जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, एलजेपी रामविलास 8 सीटों पर, आरएलएम 5 सीटों पर आगे है। और महागठबंधन की स्थिति क्या है? महागठबंधन की स्थिति, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये विधानसभा के अंदर की, जब जीतकर विधायक बनकर अंदर जाएंगे तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो पार्टी का कलर यानी कि भगवा कलर में जो सीटें नजर आ रही हैं, वो एनडीए की हैं, वो एनडीए की हैं। जो ग्रीन कलर की जो सीटें नजर आ रही हैं वो महागठबंधन की हैं, और 130 सीटें जो इस समय भगवा सीटें देख पा रहे हैं वो एनडीए की, और जो ग्रीन सीटें देख पा रहे हैं, हरी सीटें, वो 68 सीटें हैं, और वो महागठबंधन की। शिप्रा संतोष, देखिए विधानसभा की पूरी तस्वीर दर्शकों को बताएं और समझाएं। यहाँ देखिए स्पीकर की कुर्सी, और यहाँ ठीक पीछे सत्ता पक्ष यानी जो बैठेगा, इधर विपक्ष की कुर्सी, और यहाँ पर रंग के हिसाब से समझिए, ये जो भगवा रंग है ये एनडीए का 130
इसके साथ ही महागठबंधन, ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं 68 पर महागठबंधन, जन स्वराज को भी हमने यहाँ पर कोने में जगह मिली है जन स्वराज को। ये 3 सीटें, 1 2 3 शिप्रा 3 सीटें वो वहां दिख रही हैं। देखिए अच्छी बात है इनके लिए कि 3 सीटों पर भी एटलीस्ट बढ़त तो जरूर बनाकर रखी है। हालांकि ये परिणाम और तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना होगा। संतोष, हाँ फिलहाल जो फिलहाल एनडीए 132, यानी कि ये भी आंकड़ा बढ़ गया, 132 सीटों पर एनडीए, 203 में से 132 सीटों पर एनडीए, 66 सीटों पर महागठबंधन, और ये आधे और डबल की लड़ाई कह लीजिएगा। अगर एनडीए के लिहाज से देखेंगे तो महागठबंधन आधे पर, महागठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो एनडीए डबल पर। बिल्कुल, और ये जो कहा जा रहा था कि एनडीए जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है जनसुराज के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, वो तो कहते हैं कि जेडीयू 25 सीट पर भी नहीं 55 सीटों पर लीड कर रहा है जेडीयू। ये भी एक सवाल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इन टैली के साथ जो सबसे गौर करने वाली तस्वीर वो ये है, हाँ, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार जी, जिनको के बारे में तमाम तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग की गई थी। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे वो, और जबकि सदाकत आश्रम में और जेडीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, माफ कीजिएगा आरजेडी के बाहर, तब वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे और सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है, ये दिलचस्प चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है। अब चलिए हाई प्रोफाइल सीट की बात कर ले, अनंत कुमार सिंह मोकामा से। देखिए मोकामा में क्या नहीं हुआ, सबसे हॉट सीट इस बार की, यहां से लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, सबसे चर्चित सीट, और उसमें अनंत सिंह सबसे आगे चल रहे हैं, मोकामा से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह का चेहरा देखिए। संतोष, अनंत सिंह ने 2 लाख रसगुल्ले बनवाए हैं। हाँ। लगता है कि ये रसगुल्ले बटेंगे या फिर नहीं बटेंगे, ये देखना होगा। अभी तो आगे चल रहे हैं। आगे बात करते हैं रीतलाल राय, आरजेडी के उम्मीदवार है, दानापुर से में थे रीतलाल राय, और वो आगे चल रहे हैं दानापुर सीट पर, आरजेडी आगे चल रही है। अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, तो रीतलाल दानापुर से आगे चल रहे हैं। और ये रही राजू तिवारी, ये एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। फिलहाल इनकी स्थिति अच्छी लग रही है, आगे बढ़त बना रखी है इन्होंने, तो आगे चल रहे हैं अभी राजू तिवारी। ये बड़े चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला होने वाला। और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, जो कि सासाराम से चुनावी मैदान में है, इनकी भी स्थिति अच्छी है, आगे चल रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी खबर है कि 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त है, और स्नेहलता उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, फिलहाल आगे हैं। संतोष, और संजय सरावगी भी, वो तस्वीर भी आ गई, देखिए दरभंगा से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि कमल छाप उम्मीदवार ये, और वो आगे चल रहे हैं दरभंगा से संजय सरावगी। और इसके अलावा बात करें तो चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रहे हैं। चेतन आनंद, इनके बारे में भी पहले ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, इस बार लड़ रहे हैं। और दीपा कुमारी हम प्रत्याशी हैं, और ये जीतन राम मांझी की बहू भी है इमामगंज से, वो आगे चल रही है, हालांकि आरक्षित सीट है। जीतन राम मांझी की समधन की क्या स्थिति है वो जाने, देखिए आ गया ज्योति देवी 12 चट्टी से जो है उम्मीदवार, और जीतन राम मांझी की ये समधन है, और ये फिलहाल आगे चल रही है, मतलब परिवार के लिए अच्छी खबर है जी। और इसी बीच दीपा कुमारी इमामगंज यानी कि आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। और इसी बीच ये ओसामा की तस्वीर, ये भी बहुत हॉट सीट रही, बहुत चर्चाओं में रहे, आरजेडी उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से आते हैं, रघुनाथपुर सीट पर ये चुनावी मैदान में है, और फिलहाल आगे चल रहे हैं। इनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब कैंपेन किया था। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और देखिए पिछली बार 12 सीटों से बस ये हार गए थे, इस बार 12 सीटें मिलती हैं वो ज्यादा उससे की नहीं, ये देखना होगा। 12 वोट से हार गए थे, माफ कीजिएगा, 12 वोट से इनकी हार हो गई थी, इस बार देखते हैं क्या स्थिति होगी। शक्ति यादव अभी तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव हिलसा सीट से पिछली बार 12 वोटों से वो हार गए थे, आरजेडी की जो लालटेन छाप वो उनका चुनाव चिन्ह, और हिलसा सीट से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच श्रवण कुमार की भी तस्वीर आ गई नालंदा से, वो भी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, नालंदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। और उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी है, वो भी महनार से, वो भी आगे चल रहे हैं, और जिम्मेदारी इन पर भी है, और देखना होगा कि इनके लिए क्या रहती है, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह, जो बीजेपी की एक बड़ा चेहरा भी हैं, आगे चल रही हैं, और पिछली बार भी यहां से जीती थी।
अब हम तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर जश्न की तस्वीर देखिए, जो हम आपको पहले ही बता रहे थे कि एनडीए में पहले से तैयारी चल रही थी संतोष। और मोकामा में अनंत सिंह के तो पटना आवास पर टेंट भी लगा दिया गया, 50,000 लोगों के आने की ये पूड़ियां वो जो समर्थक है उन्हीं के लिए बन रही हैं। ये जो पूड़ियां गरम गरम तलती हुई आपको नजर आ रही हैं और मिठाइयां भी बन रही हैं, यानी कि एनडीए अब जश्न के मूड में आ गया है, क्योंकि 132 सीटों पर अभी जब हमने वो डेटा दिखाया था, आंकड़ा हमारे पास आया था, 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा था, अब 134 तक पहुंच चुका है। 134 सीटों पर 205 में से एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो 3 सीटों पर आगे, और उसी का नतीजा यह है कि जो जश्न बनना शुरू हो चुका है, पूड़ियां छानी जा रही हैं, सब्जियां बनाई जा रही हैं, और ये जो स्क्रीन पर आलू नजर आ रहे थे, क्या मुझे लग रहा है शायद आलू गोभी की सब्जी बन रही थी जो मुझे दिख रहा था। अभी बुनिया भी शायद दिख रहा है मुझे, पूरी बुनिया की भी व्यवस्था है। ऐसे बिहार में बहुत चाव से खाते हैं पूरी और बुनिया, तो मुझे लगता है कि शायद जश्न में ये जरूर शामिल होगा। तो अभी देखिए जश्न की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये आंकड़े भी है। अभी आंकड़े स्टेबल हो गए हैं, अभी जो लगातार ये आंकड़ा मिनट टू मिनट अभी 134 पर एनडीए, 66 पर महागठबंधन और जेएसपी यानी कि जन स्वराज 3 पर, अदर्स 2 पर। और ये रसगुल्ले की तस्वीर जो हम कहते हैं काला जामुन, मुझे लगता है शायद ये दिख रहा है मुझे संतोष। ये जो आंकड़े इस समय कह रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहा है, वो लगभग दोगुनी की स्थिति है। यानी कि अगर महागठबंधन देखें एनडीए के मुकाबले आधे पर चल रहा है लगभग, और अगर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए देखें तो शिप्रा दोगुने पर चल रहा है 134 सीटों पर। और ये भी बता दें, हमने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 140 सीटें दी थी। बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस पर बहुत विवाद, बहुत बहस हुआ। सबने कहा एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, और अब तो एग्जैक्ट पोल का दिन भी है। तो 134 का ये आंकड़ा जरूर एनडीए के लिए खुशी की बात है, और धीरे धीरे हम दर्शकों को वो ब्रेकअप भी बताएंगे कि एनडीए के अंदर भी कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें। बड़े चेहरे की फिर से बात कर लेते हैं। अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं, इनके लिए तो फिलहाल अच्छी स्थिति नजर आ रही है संतोष। और मैथिली ठाकुर चूंकि बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रही है, थोड़ी दिन पहले ही उनको बीजेपी में शामिल किया गया था। खेसारी लाल जिनके बारे में पहले ये कहा था कि वो शायद ये सीट गंवा सकते हैं, ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर है कि खेसारी लाल आगे चल रहे हैं यहां से। और अगर बात की जाए रितेश रंजन की, तो ये कराघर सीट से आगे चल रहे हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में है और फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, 3 सीटों पर जो बढ़त है उसमें एक सीट रंजन की करगहर की ही है, जिस पर ये आगे जन स्वराज ने बढ़त जो है बनाकर रखी है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था। और खेसारी लाल यादव की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बड़ा जुबानी तीर चला, उधर से मुझे लगता है पवन सिंह लगातार हमले कर रहे थे। बड़ी खबर आ चुकी है, दानापुर से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर विधानसभा सीट का हाल देख लीजिए, राम कृपाल यानी यहाँ से पीछे चल रहे हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा जो है पीछे चल रहे हैं। अजीत शर्मा कांग्रेस के जो विधायक है वो पीछे चल रहे हैं। काराकाट से ज्योति सिंह, कराघर सीट से जीएसपी के जो रितेश रंजन है वो आगे चल रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं, लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, जो चेहरे बड़े वो कौन आगे चल रहे हैं? दानापुर से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और देखिए भागलपुर से अजीत शर्मा जो है फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नेहा शर्मा ने बड़ा एक रोड शो भी किया था अपने पिताजी के पक्ष में। काराकाट से ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी है, पीछे चल रही हैं। करगहर सीट से जेएसपी के रितेश रंजन जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी हमने आपको उनका चेहरा भी दिखाया, तस्वीर दिखाई। लालगंज सीट जो है वो बाहुबली के बीच मुकाबला है। शिवानी शुक्ला जो है, तस्वीर भी आगे, शिवानी शुक्ला की लालगंज से वो आगे चल रही है। आरजेडी शिवानी शुक्ला लालगंज से वो आगे चल रही है, और तस्वीर भी आप देख लीजिए, यही है शिवानी शुक्ला जो लालगंज सीट से आगे चल रही है। तो शिवानी शुक्ला की स्थिति फिलहाल लालगंज विधानसभा सीट पर जो है वो अच्छी दिख रही है, और यहां से इन्होंने बढ़त भी बनाकर रखी है। आरजेडी के लिए जरूर ये अच्छी खबर होगी। लेकिन जो महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है, उनमें से एक शिवानी शुक्ला की भी सीट है, यानी कि लालगंज की सीट है, वो आरजेडी प्रत्याशी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए 15 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां बाहुबलियों के बीच में मुकाबला है, और ये उनमें से एक शिवानी शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की बेटी है, इनका भी सीट है। और ये सीमंत मृणाल जो है गरखा सीट से पीछे चल रहे हैं। ये चिराग पासवान के भांजे हैं, और ये इनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ये यहाँ से पीछे चल रहे हैं। बात हालांकि देखना होगा, अभी आगे पीछे का सिलसिला जो है वो चलता ही रहने वाला है। अभी शुरुआती रुझान ही है, तो देखना होगा कि अलग अलग राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट होती है तब कौन आगे पीछे चलता है। लेकिन ये बड़े चेहरे जिन पर नजर है, विनय बिहारी देखिए लौरिया से ये चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार है, यानी कमल छाप उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं। विनय बिहारी लौरिया से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं रत्नेश सदा की सोनबरसा विधानसभा सीट से।
और अब देखिए विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री सराय रंजन सीट से आगे चल रहे हैं और विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं और जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में। मोहम्मद जमा खां की बात कर लेते हैं। चैनपुर विधानसभा सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे। ये थोड़ी शॉकिंग खबर है क्योंकि जमा खान पीछे चल रहे हैं चैनपुर विधानसभा सीट से। जो मंत्री 25 मंत्री जिनकी शाख दाग पर थी उनमें से जमा खान भी थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है परिहार विधानसभा सीट से। इनको आरजेडी से टिकट की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली, तो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। फिलहाल ये पीछे चल रही हैं। स्मिता गुप्ता जो है वो परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, पीछे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से ये पीछे चल रहे हैं। और मदन सैनी बहादुरपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार है, फिलहाल आगे चल रहे हैं। मदन सैनी के लिए अच्छी खबर है, वो आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल बहादुरपुर सीट से वो आगे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार है। समाज कल्याण मंत्री भी हैं और देखिए 29 मिनिस्टर हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और आगे बात करते हैं जयंत राज अमरपुर विधानसभा सीट से स्थिति फिलहाल अच्छी चल रही है। बिहार सरकार मंत्री जो फिलहाल आगे चल रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशी। और नीरज कुमार सिंह जो है छातापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये सभी हम आपको अब मिनिस्टर्स के चेहरे दिखा रहे हैं। वो मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश सरकार में, उनकी स्थिति क्या है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री सिवान से आगे है। संतोष मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी की बात करें, सीवान से वो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार थे। अवध बिहारी चौधरी वो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार। बिल्कुल, हमने अभी आप दर्शकों को बताया भी। देखिए अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी में एक बहुत बड़ा चेहरा है। और बिग फाइट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बिग फाइट में सबसे पहले बात छपरा सीट की, जहां से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आरजेडी के उम्मीदवार और छोटी कुमारी जो है बीजेपी से उम्मीदवार। छोटी कुमारी पीछे है, खेसारी लाल यादव आगे है। आगे और पीछे अब ये दिखा रहे हैं संतोष। ये जो बीजेपी उम्मीदवार है वो पीछे चल रही है छपरा सीट से और खेसारी लाल यादव वो आगे चल रहे हैं। और ये टेलीसम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 135 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 69 सीटों पर धीमे धीमे महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन अब जो बढ़त है वो बहुत पीछे। इसी बीच बड़ी खबर, मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बड़ी बढ़त कह सकते हैं। शुरुआत में ही मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और कितना आगे चल रहे हैं? 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में हैं और जब वो जेल गए थे तो उसके बाद इनके जो समर्थक थे उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हालांकि तब से ये दावा कर रहे थे कि जीत ही जाएंगे। और अच्छी खबर यही मिल रही है कि 2716 वोट से भी आगे चल रहे हैं। और इनकी सीट काफी हॉट सीट भी थी संतोष, और तैयारी भी तो चली रही है। सबसे ज्यादा और इनके मुकाबले में जो बाहुबली है उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, वो फिलहाल पीछे चल रही है। जी जी, सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी, वो भी फिलहाल पीछे चल रही है। यहाँ पर भी बाहुबलियों के बीच ये मुकाबला है और ये सबसे हॉट सीट है, इसलिए हम लगातार इसके बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और सुपौल से देखिए विजेंद्र यादव जो है वोट से आगे चल रहे हैं। सुपौल विधानसभा सीट का हाल आपको बता रहे थे। अब ये भी आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहा है, तो एक एक करके हम आपको अब वो भी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से बिग फाइट की बात करते हैं। अनंत कुमार सिंह मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं और मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी जो है वो पीछे है। ये बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई थी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बाहुबली के बीच में जो फाइट है वो 15 ऐसी सीटें थी, उसमें से ये सबसे हॉट और चर्चित सीट मोकामा की संतोष। और उसमें सिंह आगे चल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वीणा देवी पीछे चल रही है। दीघा से बड़ी खबर आ रही है, दीघा मोकामा से तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और 2716 वोटों से, यानी कि बड़ा मार्जिन से फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुपौल की भी जानकारी आ गई। कुंडी से केदार गुप्ता 2506 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर बात करें दीघा से तो संजीव चौरसिया 2705 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी संजीव चौरसिया की आपने तस्वीर भी दिखाई थी जब ये एएन कॉलेज पहुंचे थे और रवि ने उनसे बातचीत भी की थी। देखिए महेश्वर हजारी के बारे में बताते हैं आपको। महेश्वर हजारी को लेकर भी खबर है कि वो आगे चल रहे थे। ये देखिए 1300 वोट 1300 वोट से महेश्वर हजारी जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये हम आपको बड़े चेहरों के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को बताएंगे एक एक करके जो बिग फाइट चल रही है वो कैसी है, क्या स्थिति है। संजीव चौरसिया जो दीघा से आगे चल रहे हैं, उनके मुकाबले में दिव्या गौतम थी जो कि सीपीआई एमएल की उम्मीदवार थी, वो पीछे चल रही है। और संजीव चौरसिया जी आगे चल रहे हैं कितने वोटों से? 2705 वोटों से, यानी कि एक बड़ा मार्जिन है। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह
716 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं, और पीछे चल रहा है अजय कुमार कुशवाहा जो कि आरजेडी उम्मीदवार थे, वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक करके हम आपको तस्वीरों के जरिए बिग फाइट बता रहे हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और देखिए दानापुर से रीतलाल राय जो है वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार है रीतलाल राय, और सिर्फ इन्हीं के लिए ही रोड शो करने के लिए एक ही जगह गए लालू प्रसाद यादव, अगर दर्शकों को याद हो। और जितेंद्र यादव मनेर से पीछे चल रहे हैं, और मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। भाई वीरेन का वो वीडियो तो आपने सुना ही होगा कि मनेर में रहने का अधिकार नहीं है फिर आपको। फिलहाल तो मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि पीछे चल रहे हैं फुलवारी से, और श्याम रजक आगे चल रहे हैं। बात अगले बड़े चेहरे की कर लेते हैं। देखिए अजीत कुमार जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी रामगढ़ से आगे चल रहे हैं, और अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। और यही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं वो क्या उनकी स्थिति फिलहाल दिख रही है। तो फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की। ये देखिए यहाँ पर गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपी आरवी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी खबर है एलजेपी आरवी के लिए। और फिर से बड़ी खबर बताते हैं, महेश्वर हजारी देखिए 1300 वोट से फिलहाल आगे उन्होंने बढ़त बनाई है। अनंत सिंह अभी भी उसी पर है, 2716 वोट से अनंत सिंह आगे है। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोट से आगे हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री भी हैं। और कुर्नी से देखिए केदार गुप्ता 2506 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। दीघा से संजीव चौरसिया 2705 वोट से आगे चल रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, और इस बार भी उनकी स्थिति थोड़ी ठीक ही लग रही है जो फिलहाल के आंकड़े हैं। हालांकि ये आगे पीछे का चलने का सिलसिला जो है अभी वो जारी रहेगा। ये भी आपको बताएंगे कि कितने वोट से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, और खास तौर पर नजर 29 कैबिनेट मिनिस्टर पर होगी। 15 जो विधानसभा की सीटें हैं जहां बिग फाइट है बाहुबलियों के बीच में, उस पर होगी। और साथ ही साथ वो भी सीट आपको बताएंगे, 11 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट चल रही है। तो फ्रेंडली फाइट में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए एनडीए 144 का आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका है अभी भी, लेकिन 68 सीट महागठबंधन ने बनाई हुई है, यानी कि बिल्कुल एनडीए से ठीक आधा। 70 का आंकड़ा हो चुका है, 70 145 एनडीए 145 की स्थिति वही है। संतोष 3 सीटों पर। साथ ये भी अपने एग्जिट पोल भी बता दें, हमने 140 से 150 सीटें अपने एग्जिट पोल में एनडीए को दी थी, और एनडीए 145 सीटों पर बढ़त बनाए हुए अभी बिल्कुल सेंटर में है। और आप महागठबंधन की बात करें तो 69 सीटों पर महागठबंधन आगे है, और जेएसपी 3 सीटों पर, अदर 3 सीटों पर आगे है। ये 221 सीटों के रुझान है, जिसमें से 146 सीटों पर एनडीए। और न्यूज 18 बिहार झारखंड का एग्जिट पोल याद कीजिएगा, हमने 140 से 150 सीटें एनडीए को दी थी, और उनमें 146 सीटों पर, और दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आ रही है, 318 वोट से लेश्री सिंह आगे चल रही है। फिलहाल जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल 3600 वोटों से आगे चल रहा है, इनका मार्जिन बड़ा है। अमौर से सबा जफर 582 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े चेहरे, जो कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है, इनका मार्जिन है 318, अपने प्रतिद्वंदी से 18 वोटों से वो आगे चल रही है। रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं, और कलाधर मंडल एक बड़े गैप के साथ आगे चल रहे हैं, 3600 वोटों का ये गैप है 3600 वोटों का। अमौर से सबा बात की जाए तो धमदाहा से जेडीयू की लेश्री सिंह लगातार हम बता रहे हैं आगे चल रही है। तस्वीर भी पीछे कौन चल रहा है, धमदाहा से संतोष कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, लेश्री सिंह फिलहाल आगे चल रही है। और रुपौली से जेडीयू मंडल आगे चल रहे हैं, और 3600 वोटों का उनका मार्जिन है। ये बड़े चेहरे जो फाइट में फिलहाल आगे चल रहे हैं। सबा जफर अमौर से हैं जो 582 वोटों से आगे चल रहे हैं, और धमदाहा से जेडीयू की लेश्री सिंह, जैसे मैंने बताया, बीमा भारती रुपौली से पीछे चल रही हैं, और कलाधर प्रसाद मंडल, पूरा नाम उनका, जिन्हें कलाधर मंडल कहते हैं, वो जेडीयू से आगे चल रहे हैं, रुपौली सीट। और दोनों की तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिग फाइट किस किस के बीच में है, वो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। चूंकि आंकड़े जैसे जैसे आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप
पा रहे हैं बिग फाइट में कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। कलाधर मंडल रुपौली से आगे चल रहे हैं और दीपू सिंह पीछे चल रहे हैं संदेश से। फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी की बात करें तो श्याम रजक आगे चल रहे हैं और गोपाल रविदास पीछे चल रहे हैं फुलवारी से। यह आरक्षित सीट थी सीपीआई एमएल के गोपाल रविदास पीछे चल रहे हैं। श्याम रजक जेडीयू के आगे चल रहे हैं, जेडीयू का बड़ा नाम भी है श्याम रजक। फुलवारी शरीफ से वो आगे चल रहे हैं और कलाधर मंडल 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। सबा जफर 582 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो गई हैं। स्थिति जैसे जैसे जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद स्थिति साफ होती जा रही है। लेशी सिंह जो आगे चल रही है वो 318 वोटों से आगे चल रही है। रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और श्याम रजक फुलवारी से आगे चल रहे हैं। गोपाल रविदास पीछे चल रहे हैं फुलवारी से। ये आरक्षित सीट थी, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे गोपाल रविदास, वो पीछे चल रहे हैं। श्याम रजक फुलवारी से जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शिप्रा और जो डेटा है वो 227 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 148 यानी कि 150 के आंकड़े को एनडीए छूता हुआ इस समय दिख रहा है। महागठबंधन 74 सीटों पर आगे चल रहा है। जीएसपी 3 सीटों पर, अदर 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 227 सीटों के रुझान के बाद एनडीए 148 सीटों पर आगे चल रहा है। यह रहा वो बड़ा डेटा, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। 149 सीटों पर यानी कि एक सीट दूर है 150 का आंकड़ा छूने से। इस समय एनडीए महागठबंधन 74 सीटों पर ठहर सा गया है। जीएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी 3 सीटों पर, अदर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और देखिए ये बड़े चेहरे हैं जिन पर हमारी नजर है और लोगों की भी नजर है, इसलिए इस बड़े चेहरे पर हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि कौन कितनी सीट से आगे। बेलहर से जेडीयू के मनोज यादव जो है 1439 वोट से आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे हैं। नरकटियागंज की भी डिटेल आ गई है। बीजेपी आगे चल रही है 596 से। बीजेपी के संजय कुमार पांडे 508 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और देखिए वाल्मीकि नगर सीट की बात करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वाल्मीकि नगर पीछे चल रहे हैं और एक एक करके हम आपको अब सीटों के आंकड़े बता रहे हैं कि सीटों पर क्या हाल चल रहा है। कांटी से भी जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो 1634 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। सासाराम के काराकाट से जेडीयू फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए है। काराकाट सीट भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है। जेडीयू के महाबली सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। वहां काराकाट से पवन सिंह की पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। पूर्णिया सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है और कांटी से जेडीयू के अजीत कुमार आगे चल रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और लगातार ये बड़े से स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि काराकाट से ज्योति सिंह पीछे है। ज्योति सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवन सिंह की पत्नी है और बहुत दिनों से घूम रही थी। ढाका से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहां से जो बढ़त बनाए हुए हैं। मोतिहारी से बीजेपी को बढ़त है। दरभंगा के केओटी से बीजेपी फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी के मुरारी मोहन झा जो है 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। संतोष तो बीजेपी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है और अगर एनडीए के अंदर भी बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों में फिलहाल जितने रुझान आए हैं उन रुझानों के मुताबिक अगर कहें तो जेडीयू दूसरे नंबर, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिख रही है। भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। भोरे की डिटेल आ गई है। जहानाबाद से आरजेडी के राहुल शर्मा आगे चल रहे हैं। अगर बात करें अगली सीट की गोपालगंज की तो बैकुंठपुर से बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, और अब ये सीटों का हाल आप अलग अलग विधानसभा सीटों पर और बिग फाइट। और अब देखिए ये गांधी मैदान, नहीं माफ कीजिएगा, ये देखिए बोध गया आपको तस्वीर दिख रही है क्योंकि हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बड़ी तैयारी की है ताकि दर्शकों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सके कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए एनडीए 152 सीटों पर 150 का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है। 152 सीटों पर एनडीए आगे। इस वक्त की बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर 152 सीटों पर एनडीए आगे। वो डेटा भी आ गया। 152 सीटों पर एनडीए आगे। महागठबंधन 78 सीटों पर आगे। 235 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तकरीबन सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। सिर्फ 8 सीटें बची हुई है रुझान आने के लिए। 235 सीटों में 152 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन 77 सीटों पर। यानी अब जो फाइट रह गई है वो 152 और 77 की फाइट है।
तकरीबन सीटों पर रुझान आ चुके हैं। शिप्रा, बिल्कुल, फिर से बताते हैं दर्शकों को, 243 विधानसभा सीटों में से 235 का रुझान आ चुका है। और ये रुझान क्या कह रहा है? 152 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 77 पर महागठबंधन, जनसुराज अभी भी 3 पर। और जो मुख्य लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, उसमें आप देखिए महागठबंधन आधे पर है, अभी भी डबल डिजिट में ही है महागठबंधन, ट्रिपल डिजिट में अभी तक पहुंच भी नहीं पाया है। और 150 का आंकड़ा जो है एनडीए ने क्रॉस कर लिया है संतोष। और इससे अब लगभग ये लग रहा है कि जो 160 वो लोग दावा कर रहे थे कि 160 तक जीत सकते हैं, हालांकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा था 225। गृह मंत्री ने 160 सीटों का कहा था। अमित शाह जब रैली करने आए थे बिहार में, तो उन्होंने कहा था हम 160 प्लस जीतेंगे तकरीबन। वहां तक पहुंचती हुई इस समय एनडीए दिख रहा है। 152 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे चल रहा है, 235 सीटों की रुझान है। जेएसपी यानी कि जनसुराज 3 सीटों पर आगे, और अदर भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर अदर को साइड कर दे जेएसपी, बड़ा नुकसान, क्योंकि उन्होंने कहा था या हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। पहला मुकाबला था, उनको रियलिटी चेक हुआ होगा कि राजनीति इतनी आसान नहीं है। और एनडीए, जो कि एनडीए की 125 का नारा दिया गया था, जब गृह मंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि हम 160 के आसपास रहेंगे, 160 प्लस का नारा था। हो गया है आंकड़ा, देखिए एनडीए आ रहा है, अब 153 पर पहुंच चुका है एनडीए। और मुझे लगता है कि 7 सीटें और अब रह चुकी हैं 160 छूने तक में। तो ये भी है कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और बहुत बड़ा प्रेडिक्ट भी करते हैं, और बहुत मेहनत भी की सर, बहुत रैलियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने लगभग 14 रैली की, एक बड़ा रोड शो पटना में उनका हुआ। गृह मंत्री तो मुझे लगता है पटना में कैंप कर रहे थे संतोष। बीजेपी ने तो पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है, और उसका रिजल्ट भी देखिए। एनडीए 152 सीटों पर और तकरीबन 80 सीटों के 79 सीट, 80 सीट से 1 सीट पीछे महागठबंधन है। जेएसपी 2 सीटों पर, अदर 2 सीटों पर, यानी कि जो 3 पर अभी जेएसपी चल रही थी वो 1 घट गई है। जेएसपी को 3 सीटों पर जो बढ़त थी वो 1 सीट घट गई है। अब जेएसपी 2 सीटों पर रह गई है। 236 सीटों के रुझान इस समय, जो ये डेटा आप देख पा रहे हैं, जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, वो 236 सीटों के रुझानों का आंकड़ा है। हालांकि देखिए महागठबंधन 80 पर, अभी 153 का आंकड़ा था एनडीए का, लेकिन उसका भी 2 सीट जो है वो कहीं घटा, 151 और 80 महागठबंधन। हमें उम्मीद जताई जाती थी कि टू नेक की फाइट है, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं संतोष, फासले ज्यादा हैं। ये डबल की लड़ाई होगी। एनडीए डबल सीटों पर है और महागठबंधन आधे सीटों पर है, यानी कि एक तरफा लड़ाई कह सकते हैं। अगर रुझानों को, अभी तक के रुझानों को अगर सच मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि यही परिणाम में तब्दील होंगे, तो फिर एनडीए बहुत बड़ा एज लेती हुई दिख रही है। जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं, इन आंकड़ों के मायने क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए एनडीए में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली बार भी 74 जीता था बीजेपी ने। देखिए नोखा से जेडीयू के नागेंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं, हथुआ से जेडीयू के राम सेवक सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आपको विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जेडीयू के राम सेवक सिंह 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोचहा से एलजेपी की बेबी कुमारी आगे है संतोष। बोचा से एलजेपी की बेबी कुमारी आगे है। एलजेपी की बेबी कुमारी 3160 वोटों से आगे चल रही है, यानी बड़ा मार्जिन वो लेकर चल रही हैं, आगे चल रही है। नोखा से जेडीयू के नागेंद्र आगे चल रहे हैं, यानी कि औराई से बीजेपी के राम निषाद आगे चल रहे हैं। औराई से बीजेपी की ये सीट निकलती हुई दिख रही है। 9329 वोटों का ये अंतर है। साहिबगंज से बीजेपी के राजू आगे चल रहे हैं, साहिबगंज सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। हालांकि मार्जिन थोड़ा कम है, 101 वोटों का यहां पर मार्जिन। से जेडीयू के अजय कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो ये वो कौन किस सीट पर आगे चल रहा है वो भी स्थिति अब साफ होती जा रही है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोटों से आगे चल रही हैं। केसरिया से जेडीयू की प्रत्याशी आगे चल रही है। केसरिया में कितने वोटों का मार्जिन है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा आगे चल रही है। कविता कुमारी साहा 5082 वोटों से आगे चल रही है। मधेपुरा सीट जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि चंद्रशेखर जो है आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि त्रिवेणीगंज सीट का हाल बताते हैं, सोनम सरदार जो है 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। केसरिया से जेडीयू प्रत्याशी जो है फिलहाल आगे है। अब विधानसभा सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे संतोष, यहाँ पर चंद्रशेखर जो है आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन शायद अभी पीछे है।
तो अब जो स्थितियां हैं वो विधानसभा वाइज स्थितियां साफ होती जा रही है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम आगे चल रही है, सोनम सरदार उनका पूरा नाम, 1900 वोटों से वो आगे चल रही है। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि महेश्वर हजारी को एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं, लंबे समय से वो आगे हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे हैं, ये बड़ा मार्जिन है। कुंडी से केदार गुप्ता 2500 वोटों से आगे। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से पीछे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार हैं। आगे चल रहे हैं अजय कुशवाहा, वो वैशाली से आगे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार हैं। बिग फाइट। बिल्कुल, और अब हम फ्रेंडली फाइट की चर्चा कर लेते हैं संतोष, क्योंकि 11 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आपस में ही महागठबंधन के अंदर लड़ाई है। अंत तक यहां पर सहमति नहीं बन पाई। तो देखिए, सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू के उम्मीदवार पीछे हैं और वैशाली से आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा जो हैं फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंडली फाइट वाला डेटा नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार है, और अजय कुशवाहा वैशाली से आगे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार है। फ्रेंडली फाइट कहां हुई थी 11 सीटों पर, वो भी डेटा भी हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सिद्धार्थ पटेल जेडीयू से पीछे चल रहे हैं, सिद्धार्थ पटेल के लिए अच्छी खबर नहीं है। अजय कुशवाहा आगे चल रहे हैं, आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। और फिर से ये आंकड़ा पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। 152 एनडीए, 80 महागठबंधन। 152 और 80, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जरूर है दोनों के आंकड़ों में। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है संतोष, क्योंकि अभी देखिए लगभग मुझे लगता है 10 बजने वाले हैं और अभी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीता है। रुझानों के हिसाब से अगर हम देखें तो 152 पर एनडीए, 60 पर महागठबंधन और 2 पर जेएसपी जो है। और देखिए 5 सीट अभी और बाकी है जिसके रुझान आने बाकी है, क्योंकि 243 में से 237 के रुझान अब तक आ गए हैं। और ये सीटों के रुझान आने के बाद स्थिति पिक्चर जो है वो बड़े लेवल पर साफ हो जाएगी। क्या स्थिति होगी? फिलहाल एनडीए आगे, 152 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 80 सीटों पर आगे है, और महागठबंधन के मुकाबले आंकड़ा और बढ़ गया, घट बढ़ गया, क्योंकि महागठबंधन का घट गया, एनडीए का बढ़ गया। 154 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 79 सीटों पर आगे, और जेएसपी 2 सीटों पर आगे है। बिल्कुल, और देखिए 238 का अभी ये रुझान जो है दर्शकों को बता रहे हैं। 243 में से 238 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 154 पर महागठबंधन की बढ़त है, 79 सीटों पर महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन 79 सीटों पर, और जनसुराज जो है वो 2 सीटों पर। जनसुराज 3 सीटों पर आगे चल रही थी। जनसुराज ने 1 सीट जो अभी भी रुझान आ रहे हैं उसमें गवाई है। 238 सीटें, 5 सीटों का रुझान आना अभी बाकी है। फिलहाल जो 5 सीटें नहीं आई हैं उनको छोड़ दें तो 238 में से एनडीए 154 सीटों पर, 79 सीटों पर महागठबंधन, जनसुराज 2 सीटों पर, अदर के हिस्से में 3 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं। शिप्रा। बिल्कुल, और देखिए ये जो आंकड़े हैं वो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं, और साथ ही साथ हम दर्शकों को वो ब्रेकअप भी बताएंगे कि एनडीए में फिलहाल जो शामिल 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की बात हो रही थी संतोष, पूरे महाभारत की बात हो रही थी इस बार विधानसभा चुनाव में, कि एक तरफ पांडव है एक तरफ कौरव है। तो वो भी बताएंगे कि ये जो 5 पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है। हालांकि अभी तक जो स्थिति पता चली है उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ आगे है। आंकड़ा बढ़ चुका है 155 एनडीए का और 78, यानी कि महागठबंधन का 1 सीट जो है वो अब, महागठबंधन 78 सीटों पर बढ़त है, तो 155 पर एनडीए की बढ़त है। और इसे आसान भाषा में ऐसे कर लेते हैं, 155 और 78 की लड़ाई चल रही है। 155 78 की लड़ाई, और 238 सीटों के रुझानों में 155 सीटें एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में 78, जनसुराज 2, यानी जनसुराज की ओर से कहा जाता अर्श या फर्श, फिलहाल वो फर्श पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते तो शायद बूस्टअप पार्टी को मिलता। क्या ये एक फैक्टर है? इस पर हम अपने जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। झाझा से जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं दामोदर रावत, वो आगे हैं। झाझा से जेडीयू के 1047 वोट से ये आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह फिलहाल उन्होंने बढ़त देखिए शुरुआत से बनाई हुई और अभी भी आगे हैं संतोष। ललित यादव आगे चल रहे हैं। दरभंगा जो ग्रामीण सीट है वो आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। 1151 वोटों से वो आगे चल रहा है। फिलहाल मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, ये कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर बहस हो सकती है। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह 1409 वोटों से आगे चल रहे हैं। छातापुर से देखिए बीजेपी के नीरज सिंह अभी भी आगे हैं।
और ये बढ़त उन्होंने बना रखी है। बीजेपी के नीरज सिंह जो है वो 3297 वोट से आगे है। पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, किस प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। देखिए महुआ से लेकिन एलजेपी के संजय सिंह आगे, यहाँ पर ना तेज प्रताप और ना आरजेडी, यहाँ एलजेपी आर का दिख रहा है बढ़त। संतोष, और वो भी मार्जिन भी ठीक ठाक है, 1400 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोटों से आगे चल रही हैं। केसरिया से जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और केसरिया की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में नजर आ रही है। कविता कुमारी साहा जो कि मधेपुरा से जेडीयू की उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। कविता कुमारी साहा का जो वोट मार्जिन है वो 5082 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज भी जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही है। शिप्रा, बिल्कुल सोनम सरदार यहां से आगे चल रही हैं। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोट से आगे हैं। केसरिया से जेडीयू के प्रत्याशी ने फिलहाल बढ़त बना रखी है, वो अभी आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा जो है वो आगे चल रही हैं, लेकिन ये आगे पीछे का सिलसिला अभी जारी रहेगा। संतोष, जैसे ही एक एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आगे पीछे कौन है, तो लगातार हम आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े ही बता रहे थे। त्रिवेणीगंज से देखिए सोनम सरदार जो है 1900 वोट से आगे चल रही है। ये बढ़त कहीं ना कहीं खुशखबरी दे रही है जेडीयू को। संतोष, देखिए जो 1000 के आसपास को कवर किया जा सकता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने ईवीएम खुल चुकी हैं, कितने बूथों पर। झाझा से जेडीयू के 1047 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। आनंद सिंह लंबी बढ़त बनाए हुए शुरुआत से ही। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि दरभंगा ग्रामीण की सीट आरजेडी के खाते में 1151 वोट फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें झाझा से तो जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जो देखिए आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि झाझा से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो 1047 वोट से आगे हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, 2000 से ज्यादा वोटों से वो उस वक्त भी आगे चल रहे थे। और अब फिर से वापस उन आंकड़ों पे आते हैं जिस पर सबकी नजर है। एनडीए देखिए 156, एनडीए 156 पहुंच चुका है। संतोष, 77 महागठबंधन। लेकिन जो तस्वीर गौर करने वाली है वो ये है, सबसे बड़े दिग्गज में कौन आगे कौन पीछे, और ये विजय सिन्हा लखीसराय से वो पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर जी। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं सीवान से। बीजेपी के जो मंत्री हैं मंगल पांडे वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। राघोपुर की सीट तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही है। और बात करें तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहा है। रामविलास का प्रत्याशी आगे चल रहा है। और अगर बात करें सम्राट चौधरी की तारापुर से डिप्टी सीएम है वो आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट बड़े मार्जिन से, लेकिन चौंकाने वाला पीछे। बिल्कुल, और अब सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी रुचिका का, क्योंकि देखिए रुचिका जो है लाइव रिजल्ट हब से जुड़ी हुई है और जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं वहीं से सटीक आंकड़े मिल रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रुचिका, कौन आगे कौन पीछे अभी? बिल्कुल शिप्रा, आपको बता दें कि इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जैसा कि आप भी बता रही थी कि विजय कुमार सिन्हा इस वक्त पीछे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। खास मंगल पांडे की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक नीतीश सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो पीछे चल रहे हैं। तो लेकिन मैथिली ठाकुर की बात कर ले, पहली बार चुनाव लड़ रही है, सबसे युवा नेता है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है और शुरू से ही आगे चल रही है रुझानों में। अब अगर हम खेसारी लाल की बात कर ले तो वो भी पहली बार चुनावी मैदान में है। हालांकि वो भोजपुरी स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इस चुनाव में वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश सर जुड़े हुए हैं, इनसे सीधे जानते हैं इस बार का जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुत ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार आगे चल रहे हैं और बहुत ऐसे मजे हुए चेहरे हैं जो इस बार पीछे हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने मैथिली ठाकुर की बात की, जाहिर है उनका बहुत लेना देना नहीं था, बिल्कुल फ्रेश फेस थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आपने कई सारे वेटरन्स का जिक्र किया जो कि पीछे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर क्या है, उस इलाके के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर लोग कितने खरे उतर रहे हैं, क्या पास परफॉर्मेंस से शिकायत है, या फिर जो है सो उस पर्टिकुलर जगह इक्वेशन ऐसे बन पाए हैं कैंडिडेट आगे या पीछे हो सकता है। तो मुझे लगता है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो दिखाई दे रही है अभी तक, जो ट्रेंड्स हमारे सामने और जिसको हम अपने इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए लगातार नेटवर्क पर शेयर कर रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि बिहार में जो है एक बार फिर से जो है
एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई यानी दे कह रही है। सकते हैं कि जो 9% महिला मतदाता ज्यादा इस बार वोट की हैं, वो एनडीए फैक्टर को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की वोटिंग, और आप देखिए बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज रहा है, उन्होंने पुरुषों से भी बाजी मार ली है। तो और उनके जो पॉपुलर नैरेटिव से जो उभर कर आ रही थी, वो बार बार जो वो 10,000 थी, बार बार वो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही थी, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रही थी। तो ये जो उनके दिमाग में मोदी और नीतीश कुमार ये बैठे, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 30,000 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो उनके विश्वास पे महिलाओं ने विश्वास नहीं किया उनके वादे पे। मुझे लगता है कि आपके पल्ले क्या पड़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बनिस्बत ये कि आपको कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर आप देखें, और बिहार के आप पिछला अगर झारखंड का इलेक्शन देखें, वहां हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके सामने वहां पर बीजेपी ने बड़ा प्रॉमिस किया था, लेकिन वहां हेमंत सोरेन की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में जो है, अगर आप देखिए एनडीए की सरकार वहां एग्जिस्टिंग है, और उसने ऑलरेडी सर एक और क्योंकि देखिए महुआ में बबुआ, ये ऐसा क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोट किया था हमारे चैनल को लेकर के। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार मैं शिप्रा के पास चलती हूँ। शिप्रा, बिल्कुल बताइए क्या है आपके पास अपडेट। बिल्कुल रुचिका, देखिए हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और रुझानों के आंकड़े दिखा रहे हैं संतोष, और ये भी बता रहे हैं कि बड़े चेहरों का क्या हाल है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से पीछे चल रही है, चौंकाने वाला जरूर है संतोष। वाकई विजय कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं, झाझा से जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, झाझा से जेडीयू 1047 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि झाझा की सीट जेडीयू के खाते में। मोकामा सीट से आनंद सिंह रहे हैं, और दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी का जो मार्जिन है वो 1151 वोटों का मार्जिन है, इतने वोटों की वो बढ़त लिए हुए हैं। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। एलजेपी का जो बढ़त है वो है 1409 वोटों की। छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह आगे चल रहे हैं। शिप्रा, बिल्कुल, और छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह ने 3297 वोट से बढ़त बना रखी है। पिपरा का हाल बताते हैं। पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वोटों का डिफरेंस भी आपको बताएंगे कितने वोट से वो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन महुआ जो है वो चौंकाने वाली सीट जरूर है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार जो है फिलहाल उन्होंने बढ़त बना रखी है और अभी भी वो आगे चल रही है। 1900 वोटों से उन्होंने अभी बढ़त बना रखी है। केसरिया की बात कर लीजिए, केसरिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं जो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा आगे चल रही है, यानी यहां से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रशेखर पीछे है संतोष। और ये लगातार डेटा अब अपडेट हो रहा है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज जेडीयू के हिस्से में जाती जा झाझा से जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। जेडीयू के हिस्से में झाझा की सीट जाती दिख रही है और वोट का मार्जिन है 1047 वोट से ये झाझा की सीट जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही। मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे हैं। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं 165 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 72 सीटों पर महागठबंधन। और यहां पर आप देखिए, इसे गौर करना है, 243 में से 242 का आंकड़ा आ चुका है। यानी कि सिर्फ एक सीट का रुझान आना बाकी है, यानी कि पिक्चर जो है वो अब तकरीबन क्लियर होती जा रही है। 166 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 71 सीटों पर, जेएसपी यानी कि जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। 242 सीटों के ये रुझान आ चुके हैं, सिर्फ एक सीट पर रुझान आना बाकी है। और इन 242 सीटों में एनडीए 160 सीटों पर, 166 सीटों पर आगे है। यानी कि जो हमने अपना एग्जिट पोल किया था न्यूज 18 बिहार झारखंड, वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ वो भी बात सही हो रही है जो 160 का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। देखिए 167 हो चुका है यह आंकड़ा, 167 एनडीए, 242 में से 167 एनडीए, 70 महागठबंधन और एक सीट का रुझान आना। दर्शकों को फिर से बता देते हैं, 243 विधानसभा की सीटों का रुझान जो है वो आपको बताएंगे। और महुआ से देखिए एलजेपी के संजय सिंह लगातार आगे बढ़े हुए हैं। महुआ से एलजेपी 1409 वोट से आगे। छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह आ गए हैं संतोष। और छातापुर से बीजेपी के हिस्से में जो बढ़त है वो 297 वोटों की, 3297 वोटों से छातापुर की सीट बीजेपी के हिस्से। पिपरा से जेडीयू के राम विलास आगे चल रहे हैं। और ये महुआ की बात करें तो एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। महुआ से जो मार्जिन है वो 1409 वोटों का मार्जिन एलजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए नीरज सिंह जो है वो छातापुर से बढ़त बनाए हुए हैं,
इन पर भी जो है नजर टिकी हुई इसलिए है क्योंकि मिनिस्टर भी है कैबिनेट में। अब देखिए 166 का ये आंकड़ा हो चुका है। फिर से आपको बताते हैं 243 विधानसभा की सीटों में से 242 सीटों का रुझान जो है वो आ चुका है। उसमें 166 एनडीए, 71 महागठबंधन और जनसुराज अभी भी संतोष 2 पर ही है। अदर्स एक सीट का रुझान 142 सीटों पर शिप्रा रुझान आ चुका है, जिसमें एनडीए के खाते में 167, 70 महागठबंधन के खाते में 2, जीएसपी के खाते में 2, अदर के खाते में 3 जाती हुई दिख रही है। एक सीट का रुझान आने के बाद पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये रुझान है अभी, और जैसे ही ये जब सीटों में तब्दील होंगे तो न्यूज 18 बिहार झारखंड वो भी दिखाएगा। 167 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए एनडीए की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान में जो एनडीए ने स्पीड रखी थी वो स्पीड अभी भी बरकरार है और महागठबंधन अभी भी डबल डिजिट में ही है संतोष। और देखिए बहुत दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से भी कि 1990 की तरह जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बहुत ही खास है, इसलिए दर्शकों को समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो हमने ये तैयारी की है आपको बताने की। तो ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है, हम अपने दर्शकों को बताएं ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर और ये सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सत्ता पक्ष इस साइड बैठेगा, एनडीए का जो कलर है भगवा वो ये है, यानी कि 167 जो नंबर अभी आपको दिख रहा है वो ये सीटें बिछा दी गई हैं 167, और ये 167 सीटों पर आपको भगवा दिख रहा होगा, दिख रही है महागठबंधन का कलर है, और महागठबंधन के खाते में 70 सीटें जाती दिख रही हैं। रुझानों में वो 70 सीटें ये रही, जीएसपी के खातों में 2, तो जीएसपी की सीटें ये रही, और अदर के खातों में 3, तो वो व्हाइट कलर की 3 जो सीटें हैं वो अदर की है, यानी कि बीजेपी 167 सीटों पर इन विधानसभा चुनावों में बढ़त बनाए हुए है। तो 167 सीटों की सिटिंग अरेंजमेंट फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल। और देखिए इसी विधानसभा में आने की तो लड़ाई है संतोष। हालांकि ओवरऑल आंकड़ा फिर से दर्शकों को बताते हैं 243 में से 242 सीटों का जो है रुझान आ चुका है। इसमें आंकड़े क्या कह रहे हैं तो 167 एनडीए, देखिए अभी तक 167 था लेकिन 168 हो गया। और ये देखिए बीजेपी जो है 72 सीटों पर, हम आपको ब्रेकअप बता रहे हैं। महागठबंधन के ये एनडीए के अंदर 5 पार्टियां जो है, बीजेपी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है जेडीयू। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 पर सभी सीटों के रुझान 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और 243 सीटों के रुझान इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त नजर आ रही है। शिप्रा न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 243 सीटों के ये रुझान, जिसमें 71 सीटों पर जस्ट डबल एनडीए 167 सीटों पर, जीएसपी 2 सीटों पर, अदर के हिस्से में 3 सीटें हुए जाती दिख रही है। 243 सीटों का रुझान, और जो आंकड़ा इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। संतोष, और इसी का इंतजार, तब 243 के पूरे सीटों पर रुझान आ जाएगा। तो अब वो घड़ी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 243 विधानसभा सीटों पर रुझान आ चुकी है। और बड़ी खबर बता दें कि देखिए सभी रुझानों में जो रुझान अभी सभी सीटों पर देखने को मिल रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त है। 243 सीट के रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त है, सिर्फ बढ़त ही नहीं भारी बढ़त, क्योंकि 168 का वो आंकड़ा है संतोष। और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी को पछाड़ दिया है जेडीयू ने, यानी कि एनडीए के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन देखा जा रहा है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड का वो एग्जिट पोल याद कीजिएगा, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हमने भी जेडीयू को बताया था, और हमारा दावा था कि 60 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो सकता है जेडीयू का। हमने आंकड़े बता दिए, 75 सीटें जेडीयू की, 74 सीटें बीजेपी की, और ये बहुत क्लोज फाइट है दोनों की। हेल्दी कंपटीशन एनडीए के अंदर अब नजर आ रहा है। देखिए संतोष, ये भी कहा जा रहा था कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम आंका जाता है तब तब वो बड़े बनकर और उभरते हैं। शायद ये तस्वीर अभी यही कह रही है। हालांकि ये रुझान है, फिर भी बता दें दर्शकों को कि 75 इक्वल हो गया, इक्वल हो चुका है। बीजेपी 75, जेडीयू 75, एलजेपीआरवी जो है यानी कि रामविलास 14, हम 3 और आरएलएम अब 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये शुरुआती रुझान में देखिए बीजेपी और जेडीयू के 75-75, हालांकि 169 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 169 सीटों पर क्या कंडीशन है? ये रही बीजेपी सबसे ऊपर 75
75 पर ही जेडीयू है और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग की पार्टी वो 14 सीटों पर आगे और हम जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर आगे और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर आगे। एक समय था 6 में से 5 सीटों पर आगे चल रही थी आरएलएम, फिलहाल 2 सीटों पर आगे। शिप्रा, इनमें से एक सीट इनकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जी की है, जिस पर इन्होंने बढ़त बना रखी है। हालांकि हम इस आंकड़े पर फोकस करते हैं। देखिए 75 बीजेपी और 75 जो है वो हमने आपको बताया। अब महागठबंधन की बात करते हैं। 70 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाकर रखी है। अब 70 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 49 सीट यानी कि 49 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है। 16 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। और यहाँ पर देखिए सीपीआई एमएल की जो तस्वीर है वो कह रही है कि 3 सीटों पर बढ़त सीपीआई एमएल की है, सीपीआई की 1, सीपीआईएम के 1 और वीआईपी 0। ये महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार है। और देखिए 0 सीटों पर अभी एक भी सीटों पर इन्होंने बढ़त अभी तक नहीं बनाई है। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी एक बार फिर से 49। लेकिन अगर हम पिछले बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर कर आई थी। अब इस बार लेकिन आरजेडी की रफ्तार थोड़ी पीछे जरूर दिख रही है और ये आंकड़ा फिर से बदल गया है। देखिए जनसुराज जो कि अभी 2 सीटों पर बढ़त थी, तो 1 सीट पर अब बढ़त दिख रही है, यानी 1 सीट घट चुका है। और एनडीए 168 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 71, 168, 71 ये लड़ाई अभी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। और अब देखिए बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव जो अभी छपरा से आगे चल रहे थे, अब खबर है कि पीछे हो गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से पीछे हो गए हैं और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से अभी आगे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिस पर नजर है। और मैथिली ठाकुर को लेकर के खबर यह है कि वो अभी आगे हैं। रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, अभी तक ये आगे थे लेकिन अब ये भी पीछे हो गए। हमने आपको बताया भी था कि आगे पीछे का सिलसिला अभी चलता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है शुभी, वाकई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4529 वोटों से आगे। तारापुर से आरजेडी के अरुण कुमार शाह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर के आरजेडी से जो प्रत्याशी बनाए गए वो पीछे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार के डिप्टी सीएम वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है और इसी बीच ये आपको तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और उसका असर दिख रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जानकारी आपको दे दें, सिवान से वो प्रत्याशी हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके लिए जब एग्जिट पोल में बात इनके लिए खबर अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई है तो मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। तारापुर से एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से आरजेडी 2749 वोटों से चल रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं कस्बा से एलजेपीआरवी के नितेश सिंह आगे हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं विभूतिपुर से जेडीयू की रवीन कुमार कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक एक करके जब वोटों के रुझान आ रहे हैं तो हम हर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच कस्बा से और देखिए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। विजय कुमार सिन्हा ने यह आरोप लगाया था कि उनके गाड़ी पर हमला किया गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन इसी बीच ये तस्वीर उनकी सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। तेज प्रताप यादव की बात करें, महुआ इन्होंने नई पार्टी बनाई। तेज प्रताप यादव लगातार जनसभाएं करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल रुझान में वो पीछे नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो वो पीछे नजर आ रहे हैं। आपको अन्य प्रत्याशियों की तस्वीर भी दिखाते हैं एक एक करके, और तेज प्रताप यादव की जानकारी हम दे रहे थे। और इसी बीच तेजस्वी यादव की बात कर लें, राघोपुर से वो आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त राघोपुर से आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए राघोपुर की देख रहे थे आप, इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर। तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, बढ़त पे फिलहाल वो आगे हैं। और खेसारी लाल यादव छपरा में फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि क्या हो रहा है अलग अलग सीट्स पर। अगर पे देखिए मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और इस बार कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है शुभी। वाकई, और मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो विवादों में भी रही जनसभाओं के दौरान, लेकिन बावजूद जनता ने करगहर की तस्वीर मिल रही है। रितेश रंजन पीछे चल रहे हैं, जेएसपी से हैं, जन स्वराज पार्टी से करगहर सीट बहुत से रितेश रंजन। लक्ष्मी है, बहुत कहा जा रहा था कि खुद प्रशांत किशोर का ये जिला है और वहां से उन्होंने इन्हें उतारा। राजेश कुमार कुटुंबा सुरक्षित सीट कांग्रेस, ये आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, एक एक तस्वीर देखिए प्रत्याशियों के नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी परिणाम भी आ जाएंगे। सिवान से एक बार और तस्वीरें बता देते हैं। मंगल पांडे जो कि आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट, और एक बार तस्वीरें इस तरीके से दिखा देते हैं कि एनडीए 171 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है, महागठबंधन 68 और जन स्वराज की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर बढ़त दिखाई दे रहा है। तो आदर्श जो है वो 3 पर बढ़त है, यानी कि 243 पूरे जो विधानसभा की सीट से सब पर रुझान आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है और महागठबंधन कहीं कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस बार जेडीयू उभर कर आ सकता है। वाकई लक्ष्मी, ये जब हमने पहले भी इसकी जानकारी दी और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं बार बार इसकी चर्चा करते रहे कि जब भी नीतीश कुमार को कम आंका गया है वो बड़े नेता के तौर पर बनकर उभरे, उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देखिए कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। 243 सीटें, एनडीए 171, महागठबंधन 68 और अदर्स के खाते में 3 और जेएसपी यानी जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी की जानकारी दे रहे। पहले 2 की संख्या में बढ़त बना रखी थी लेकिन अब घटकर 1 पर आ गए लक्ष्मी। यानी कि बहुत जल्द अब तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे अपना भरपूर प्यार दिया है और किसके हिस्से में इस बार हार मिला है। तो देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए के हिस्से में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बढ़त अभी दिखा रहे हैं आपको, रुझान आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 ने ये तस्वीरें क्लियर नहीं है। एग्जिट पोल में भी हमने यही कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखाए थे और अभी जो रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे उसमें आप देख रहे हैं एनडीए ने लगातार बढ़त बनाकर रखी है। बीजेपी 74, जेडीयू 74 बराबर चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी, 3 आरएलएम 6 सीटों पर लड़ी और यहाँ पर 2 है फिलहाल और एलजेपीआरबी 16 29 सीटें। बिल्कुल, लेकिन ये भी क्लियर करना होगा कि ये भी बढ़त दिखा रहे, रुझान दिखा रहे हैं आपको। ये बिल्कुल अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं, रुझानों में ये जरूर दिख रहा है कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाया हुआ है और यहां पर महागठबंधन जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 सीटों पर ये रुझान सामने आया है और वो आपको ये देखिए पटना का सबसे फेमस जगह, सबसे प्रतिष्ठित जगह गोल घर में हम रिजल्ट दिखा देते हैं क्या इस वक्त रुझान आ रहे हैं। और देखिए 169 बीजेपी का झंडा लहराता आपको नजर आ रहा होगा, 169 एनडीए गठबंधन के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। और इधर महागठबंधन की तस्वीर अभी 70 सीटों बड़ी दिलचस्प तस्वीर है यहाँ पर शुभी की जन स्वराज पार्टी जिसने इतने दावे किए, इतने वादे किए, लेकिन बढ़त में तो रुझानों में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी पार्टी हुई भी ये कहीं नहीं दिख रही है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश थी जन स्वराज पार्टी ने जरूर की, लेकिन शायद वो जो कोशिश है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो थोड़ा इंतजार करनी प्रशांत किशोर को और इंतजार करना होगा, वक्त देना होगा। बिहार को हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। और देखिए 169 सीटें अभी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन 70, जन स्वराज 1, अदर्स 3। तो लगातार ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये रुझान के अनुसार है। परिणाम में क्या तब्दील होते हैं उसके लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा। काउंटिंग लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने जितने बड़े बड़े बयान दिए हैं, ये नहीं होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर दूंगा, और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तो पीछे चल रहे हैं। देखिए पटना साहिब की ये सीट भी काफी खास रहती है। रत्नेश कुमार पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, शशांत शेखर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं पटना साहिब में। देखिए अगर पूरे मगध क्षेत्र की बात करें, पटना की वर्सेस भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन पीछे है और कौन आगे है। देखिए शशांत शेखर आगे चल रहे हैं, रत्नेश कुमार पटना साहिब से बीजेपी की कैंडिडेट है वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है यहाँ फिलहाल बिग फाइट है। और ऐसे अब देखिए जाले की दिखाइए शुभी जी, जीवेश कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी और ऋषि मिश्रा जाले से है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे। यहाँ पर ये पीछे चल रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और यहाँ पर देखिए बीजेपी की कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सीट है मनेर, यहाँ पर भाई वीरेंद्र आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी विवादों में भी रहते हैं भाई वीरेंद्र।
जितेंद्र यादव एलजेपी आरवी के कैंडिडेट हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। तो मनेर की ये सीट यहाँ पर एक बार फिर से भाई वीरेंद्र को और ये बिग फाइट आगे दिखाई दे रही है, को दिखा रहे हैं जो पूरी बिहार की जनता इस वक्त न्यूज 18 देख रही है। सिद्धार्थ पटेल वैशाली जेडीयू से पीछे चल रहे हैं, अजय कुमार कुशवाहा वैशाली आरजेडी से आगे चल रहे हैं। देखिए ये हॉट सीट है और वैशाली में तमाम बिग फाइट है, यहाँ पर बिग फाइट। दानापुर शुभी रामकृपाल यादव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, पीछे चल रहे हैं। वहीं रीतलाल राय दानापुर रीतलाल यादव मुझे लगता है इनका नाम है, क्योंकि लगातार अभी इस वक्त और ये फिलहाल ऐसा लग रहा है काट रहे हैं, आगे भी सजा भी काट रहे हैं। उनके लिए खुद लालू प्रसाद ने और अब सीधा संदेश सीट पर देखिए दीपू सिंह जो कि आरजेडी से हैं, पीछे चल रहे हैं। वहीं यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ी हुई है, दोनों में ही पीछे दिखाया है हमने। अब देखिए पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बिहार की एक्स डिप्टी सीएम रह चुकी है। बिल्कुल। और ये देखिए कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वाशी अहमद जो कि आगे चल रहे हैं। ये सीट है बेतिया, यहाँ से रेणु देवी फिलहाल पीछे चल रही हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि इनके रामगढ़ के बारे में बताइए शुभी। रामगढ़ की बात कर लें अगर हम, राष्ट्रीय जनता दल से अजीत कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं अशोक कुमार सिंह रामगढ़ बीजेपी से पीछे नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये अगली सीट पर बिल्कुल अगली सीट है गौड़ा बोराम। यहाँ पर देखिए अफजल अली खान पीछे चल रहे हैं, वहीं सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। और एक आरजेडी के कैंडिडेट आरजेडी के यहाँ से पीछे चल रहे हैं। अब बिग फाइट अगली सीट है ज्योति सिंह, ये काफी ज्यादा पीछे चल रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह महाबली सिंह बिल्कुल महाबली सिंह जेडीयू से आगे चल रहे हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी पीछे चल रही है यहाँ पर, और काफी उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन वो भी पीछे चल रही है। एक बार फिर से ओवरऑल बता देते हैं, एनडीए 169, महागठबंधन 70, जन सुराज 1 और अदर्स के खाते में सीटें। कुल मिलाकर 243 सीटों में अभी एनडीए ने बढ़त बना रखी है, लगातार ये बढ़त बनी हुई है। और देखिए लगातार ये भगवा रंग आपको काफी क्षेत्र में नजर आ रहा होगा। 169 एनडीए के खाते में और 70 महागठबंधन। शुभी अगर ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई जितने बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया है वो सच हो जाएगा। ये देखिए ये अलीनगर की सीट है, मिश्री लाल यादव यहाँ से पीछे चल रहे हैं और अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने पहले बढ़त बनाया हुआ है उन्होंने। तो देखिए एनडीए 168 सीट पर फिलहाल आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन 71 सीटों पर बढ़त और जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स पर 3 है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये सीधा सीधा इशारा इसी ओर कर रहा है कि एनडीए जो है रुझानों में आगे है। और अगर बार बार हम लोग यही कह रहे हैं ये रुझान अगर नतीजे में बहुत सारी कोशिशें भी की गई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, पीएम बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई थी, रेखा गुप्ता आई और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि वोट परसेंटेज लक्ष्मी ऐतिहासिक रहा और बम्पर वोटिंग हुई है। और शुभी इस बार एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया गया महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल थे क्या वही एग्जैक्ट नतीजे आने वाले हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब देखिए 2020 का क्या यहाँ पर आंकड़ा है, 2025 का क्या है वो भी एक बार समझा देते हैं दर्शकों को। तो देखिए 243 सीटें और यहाँ पर हमारा 122 मैजिकल नंबर है, पैरामीटर दिखा रहे हैं। ये 122 पे जो जाके टिक गया इस पैरामीटर से, ये मैजिकल नंबर है, ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जीत जो भी गठबंधन क्रॉस कर लेता है वो जीत जाएगा और ये कुर्सी उसको हासिल हो जाएगी उस गठबंधन। तो देखिए अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रुझानों में क्या चल रहा है और किस तरीके से और विधानसभा की सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। इस कलर से लोगों को पहचान हो जाएगी कि क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नारंगी रंग की जितनी भी कुर्सियां हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए घटक दल के विधायक बैठेंगे और इधर हरे रंग, और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन की सीट्स हैं वो दर्शा रही है महागठबंधन को, और जो येलो कलर है वो जन स्वराज पार्टी को दर्शा रहा है। और अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं तो 171 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन 68, बहुत कम ऐसा लग रहा है। इतनी रैलियां, इतनी जनसभाएं, 189 रैलियां की और ताबड़तोड़ जनसभा के बावजूद लगता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है वोट में। ये अभी फिलहाल शुरुआती रुझान तो ऐसे ही बता रहे हैं शुभी। और अगर जितने दावे एनडीए की तरफ से किए गए हैं रुझानों में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लास्ट तक वाकई अमित शाह ने भी कहा कि प्रभाव बहुत सारी हो सकता है, बहुत सारे वादों का हो सकता है, इरादे बताए गए, गिनवाए गए, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को, रोजगार को लेकर, और 10,000 वाला जो कार्ड नीतीश कुमार ने खेला उसका लगता है कि व्यापक असर देखने को मिल रहा है क्योंकि
बनकर उभर रही है। और जो जश्न की तैयारियां कल से ही शुरू कर दी गई थी एनडीए की तरफ से, वो ऐसा लग रहा है उनका सफल होने वाला है। इतनी मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया, वो ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह के आवास के बाहर बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही है और पूरी तैयारी, हालांकि अनंत सिंह खुद आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीट्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुझानों में देखिए एनडीए जो है एक बार फिर से सत्ता में काबिज होता हुआ दिख रहा है। अगर यही नतीजे आते हैं एग्जैक्ट या फिर आसपास भी, तब भी नीतीश कुमार ही हो सकता है कि सीएम बने। बार बार इस पर हालांकि सवाल भी उठा है, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए जनसुराज प्रशांत किशोर का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, सीएम नीतीश कुमार का चेहरा आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। ऐसा शुरुआती रुझान में रहा है। नरेंद्र और नीतीश भी, ये दो नाम सामने रखा गया कि लक्ष्मी, जब हम ग्राउंड जीरो पर भी थे उस दौरान भी बहुत इस नाम को लोग साथ में ले रहे थे, खासकर महिलाओं से जब आपने बातचीत की होगी उस दौरान भी ऐसी कुछ बात हो रही थी। और एक बार फिर से छपरा सीट की बात कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, बहुत मंथन भी किया चुनाव लड़ने को लेकर। पहले उनकी पत्नी लड़ने वाली थी, वो पीछे चल रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए। पीछे चल रहे हैं उनके उलट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि छोटी कुमारी जो है वो आगे चल रही हैं इस सीट से, और यहाँ पर खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। ये गरखा सीट जो कि एससी रिजर्व सीट है, एलजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सीमंत कृणाल सुरेंद्र राम आरजेडी के गरखा सीट से ही पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एलजेपी कैंडिडेट, एनडीए के कैंडिडेट आगे हैं। यहाँ से भी बिग फाइट आपको दिखा रहे हैं। शिवानी शुक्ला की अगर हम बात करें, मुन्ना शुक्ला की ये है लालगंज आरजेडी की ये प्रत्याशी बनाई गई है। संजय कुमार सिंह लालगंज बीजेपी से पीछे चल, ये फिलहाल आगे चल रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला उनकी, तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी यहाँ पर आगे चलती हुई आरजेडी के कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। लालगंज का ये सीट है, बिग फाइट है। अब अगली सीट है वैशाली की, जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अजय कुमार कुशवाहा वैशाली सीट से, आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एनडीए का कैंडिडेट ही आगे है। शुभी, बिग फाइट हम लोग दिखा रहे हैं। वाकई, और बिग फाइट एक और हम आपको दिखा देते हैं। श्याम रजक फुलवारी जेडीयू से आगे, पहले रिजर्व सीट है, बड़े नेता हो सकते थे, रिजर्व सीट है, आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि दास जो है फुलवारी सीपीआईएम। अगर पूरे पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो अक्सर देखा गया है पिछले रुझानों में, पिछले विधानसभा चुनाव में, कि वहां पर एनडीए की बढ़त रहती है। रेणु देवी की अगर हम बात करें, बेतिया से अभी भी लगातार पीछे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर शायद फोटो गलत लग गया है, एक बार आप लोग चेक कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो गई है। खैर, अगली सीट है भागलपुर। यहाँ पर अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं, इनकी बेटी ने खूब प्रचार प्रसार किया, नेहा शर्मा ने, कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। गलती भी कर दी, बार बार नाम ले रही थी। हाँ, ऐसा लगा कि वो एनडीए को जिताने के लिए अपील कर रही है। खैर, भागलपुर बीजेपी की कैंडिडेट रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। भागलपुर की यहाँ पर संघर्ष, बिग फाइट। जहानाबाद चंदेश्वर प्रसाद की बात करें, जहानाबाद जेडीयू से पीछे चल रहे हैं। राहुल कुमार जहानाबाद आरजेडी से आगे चल रहे हैं। इस बार जब जहानाबाद में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों ने कहा ही था कि इस बार हम बदलाव। बेनीपट्टी की बता देते हैं शुभी, ये बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विनोद नारायण झा, वहीं पर नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा बेनीपट्टी से। कांग्रेस के कैंडिडेट वो पीछे चल रहे हैं शायद। और उसके बाद माधव आनंद की बात कर लेते हैं। मधुबनी से आरएलएम के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। समीर कुमार महासेठ मधुबनी राष्ट्रीय जनता दल के ये प्रत्याशी हैं, ये पीछे चल रहे हैं फिलहाल रुझानों में। अब अगली जो सीट है उसके बारे में आपको बता दें, बिग फाइट कहां पर चल रही है। तो रामगढ़ सीट आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वहीं अशोक कुमार सिंह रामगढ़ सीट बीजेपी के कैंडिडेट। यहां भी कुछ गड़बड़ी, एक बार आप चेक कीजिए, दोनों में ही पीछे चल रहा है। ये रामगढ़ सीट से कौन आगे है जरा बताइए हमें। अब अगली जो सीट है उसके बताएंगे, फिलहाल ये करेक्ट कर लिया जाएगा, करेक्शन इसके बारे में। अब अगली के बेगूसराय, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे है यहाँ पर, यानी कि एनडीए का कैंडिडेट पीछे चल रहा है। और महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अमिता भूषण जो कैंडिडेट है यहाँ कांग्रेस की, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं स्नेहलता की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, सासाराम से फिलहाल वो पीछे चलती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र शाह राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मशक्कत की है उपेंद्र कुशवाहा ने, सीटों को लेकर बहुत मंथन हुआ, नाराज हुए, लेकिन अभी फिलहाल उनकी पत्नी पीछे आ रही है रुझानों में। देखिए काराकाट से एक बार और बता देते हैं, देखिए काराकाट से ज्योति सिंह पीछे चल रही है
लगातार ज्योति सिंह पीछे चल रही हैं, काफी विवादों में रही। एक बार फिर से ग्राफ के जरिए शुभी समझा देते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए लगातार महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में और एनडीए बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। 174 सीटों पर बढ़त बना लिया है एनडीए ने, वहीं महागठबंधन 65 सीटों पर बढ़त केवल बनाया हुआ है। जन स्वराज पार्टी शून्य पे आ गया है देखिए, और अदर्स 4, यानी कि क्या होने वाला है जन स्वराज का? बड़ा ही दिलचस्प होगा ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश जन स्वराज की पार्टी ने की थी। प्रशांत किशोर ने लक्ष्मी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत की, बहुत जनसभाएं की, इससे हम नकार भी नहीं सकते हैं। बहुत उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में थोड़े ठंडे से पड़ गए। लेकिन और कहा जा रहा है सबसे बड़ी गलती उनकी ये भी है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, पंडित बता रहे हैं कि वो खुद जो चुनावी रणभूमि में नहीं उतरे, इसका भी असर पार्टी पर पड़ा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गलत एक मैसेज है शुभी कि खुद वो चुनाव नहीं लड़े, हालांकि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। यहां पर भी वो रणनीति करते रहे, जैसे पहले वो रणनीति करते थे, रणनीतिकार तो है ही। तो बाकी पार्टियों को अगर वो जिताया है तो खुद की पार्टी को वो कैसे इस स्तर पर लेकर आ गए हैं कि वो अपनी ही पार्टी को नंबर इस ग्राफ के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ऊंची सी दीवार से आपको नजर आ रही होगी, ये बार ग्राफ है जिसमें 172 सीटें फिलहाल एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। 67 सीटें महागठबंधन और जन स्वराज का खाता भी नहीं खुल रहा है, अभी जो रुझान आ रहे हैं। और देखिए अदर्स के खाते में 4 सीटें इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। और ये लीजिए जश्न की तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं भैया। ये तस्वीर कहाँ की है एक बार जरा ये भी दिखाइए। जश्न मनाया जा रहा है, हालांकि रुझान है, नतीजे आना बाकी है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में शुभी रात तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर कौन जीत रहा है, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर थी। लेकिन अभी अगर इस बार देखिए लक्ष्मी, तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, जनक नतीजे नजर आ रहे हैं फिलहाल। सरकार और अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हर हाल में अनंत सिंह की जीत होगी और जिसकी खुशी में अभी से ही जश्न मन रहा है। कैमरामैन नदीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए लगातार हम इस ग्राफ के जरिए आपको बता रहे हैं जश्न भी मन रहा है लक्ष्मी, उत्साह है, उमंग है, और वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये उत्साह और उमंग लगातार बरकरार रहेगा या नहीं, ये थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो जश्न मनाने के लिए काफी है। माहौल शुरू हो चुका है अभी से ही, रुझानों में बढ़त, लेकिन अभी से ही जश्न की तैयारी, और ये दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो अभी से ही बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। वाकई लक्ष्मी, और रुझान जो है वो उनके पक्ष में ही नजर आ रहे हैं, तो उत्साह तो बनता है, उमंग तो बनता है, जश्न तो बनता है, लेकिन रुझान कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि नतीजा भी नहीं आए। हालांकि और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार है। हमारी विश्वसनीयता पर आप भरोसा जता रहे, YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स लगातार हमें देख रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग देखिए न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट डेटा अब तक पहुंचा रहे हैं। YouTube पर भी सबसे ज्यादा व्यूज है, बड़ी तैयारी है, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार ग्राउंड से आपको जानकारी दे रहे हैं। हम लोग भी ग्राउंड पर गए और सर्वे कर आए, तो सटीक जानकारी न्यूज़ 18 पर आपको मिल रहा है। विश्वसनीयता न्यूज़ 18 की बरकरार भी है, तो न्यूज़ 18 बिहार का जलवा बरकरार है। और देखिए 3.5 लाख से ज्यादा लोग लक्ष्मी हमें देख रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप बड़ी तैयारी करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और आपकी कोशिश को सफलता मिलती है, तो ये बहुत खुशी हो जाती है। और YouTube का ग्राफ हम दिखा रहे हैं, देखिए सारे नेशनल चैनल्स में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसमें भी लक्ष्मी हम सबसे आगे हैं। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। ये व्यूअरशिप जो है वो दिखाती है कि जनता न्यूज़ 18 पर भरोसा करती है। इसके कारण भी काफी वाजिब हैं, क्योंकि
डेटा सही समय पर सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। भले ही नंबर्स आपको थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हो, लेकिन हमारे पास रिजल्ट हब है, रट हमने बनाया है, बड़ी तैयारी हमने की है, बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो जानकारी सबसे एक्यूरेट है और इसीलिए आपका भरोसा, आपका विश्वास हम पर है। बिल्कुल, और इसके लिए दर्शकों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि टीवी पर तो हम लोग लगातार दिखा ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी हमारा जलवा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए टीवी पर हम लोग जानकारी देते हैं और 24/7 हम लोग लाइव रहते हैं, और यूट्यूब पर भी हमारा जलवा जो है बरकरार है। 3.5 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप अभी देखी जा रही है और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है, बार बार हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें खुशी मिल रही है, हमें इस बात से और ज्यादा मेहनत करने की उम्मीद मिल रही है कि अब हम और भी ज्यादा बेहतर ढंग से आप तक खबरें पहुंचा पाए। हालांकि अभी भी हमने बड़ी तैयारी की है, मेहनत की है, बिल्कुल शुभी, और आप लोग देखते रहिए, क्योंकि बिहार में किसकी होने वाली है बहार और कौन बनेगी एक बार फिर से, किसकी बनने जा रही है सरकार, किसको बिहार की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, और एक बार फिर से ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो किसको मिलने वाली है, बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो आप लोग लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे के लिए, क्योंकि भैया किसकी होने वाली है बिहार में बहार और किसकी बनने जा रही है बिहार में सरकार, किसके सिर पर ताज बिहार की जनता ने सजाया है, ये जानने के लिए लगातार हम लोग बने हुए हैं। और देखिए सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, हमारे चैनल भी देखे जा रहे हैं, और ये देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए नेताओं जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है, जहां न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लोग लगाकर देख रहे हैं, और देखिए यही हमारा भरोसा है, यही हमारी विश्वसनीयता है, और ये सटीक आंकड़े जो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम पार्टी ऑफिस में भी। देखिए ये जश्न की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अनंत सिंह की आवाज की तस्वीर है शुभी। अनंत सिंह देखिए तो कल परसों से ही बननी शुरू हो चुकी थी अनंत सिंह के आवाज पर, और अब जश्न की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। मतलब इतना अंधा भरोसा इनके समर्थकों को, इतना कॉन्फिडेंस अनंत सिंह पर, और सबसे खास बात ये लक्ष्मी की वो खुद जेल में है इस वक्त, लेकिन बावजूद देखिए बड़ी तैयारी उनके आवास के बाहर की गई, करोड़ों रुपए के भोजन के प्रतिबंध किए गए, लाखों कार्यकर्ता वहां आकर खाएंगे पिएंगे, और उससे पहले ये जश्न के माहौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह के लिए खुशी की बात है भी, क्योंकि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता और बाहुबली नेता भी अनंत सिंह को कहा जाता है, और इतना वो कॉन्फिडेंट रहते हैं वो हर हमेशा जब भी। और सबसे खास बात ये रही लक्ष्मी, इस पूरे चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर जिसने भी उनका इंटरव्यू किया, अनंत सिंह छाए रहे। वायरल नेता अगर कोई है तो वो अनंत कुमार सिंह ही है। अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानों के लिए जाने जाते हैं अनंत कुमार सिंह, और उनका लंबा इतिहास रहा है। जब भी लेकिन फिलहाल चुनाव के पहले उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई। दुलारचंद यादव हत्या केस के मामले में उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ रही है, और इसी बीच देखिए बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखाई थी, और देखिए बीजेपी दफ्तर में भी वैसी ही तस्वीर आ रही है, जहां तमाम नेता कार्यकर्ता न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, लगातार हमें देख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय की तस्वीर, जहां पर न्यूज़ 18 को देखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक्यूरेट जानकारी, सटीक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़ों में गड़बड़ी ना हो इसकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, और हमारे जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उससे बिल्कुल सटीक मिलता जुलता ही आपको दिखा रहे हैं, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, आप किसी भ्रम में ना रहे। ये झूठे आंकड़े तो बिल्कुल पूरा बिहार इस वक्त नजर गड़ाए बैठा है, और उसमें भी जब स्क्रीन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की हो तो बात कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि भरोसा है, विश्वसनीयता है, सटीकता है, और इसीलिए आप लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिल्कुल शुभी, और क्योंकि ये हमारा दायित्व भी है कि सटीक आंकड़े दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि वो किसी भ्रम में ना रहे, उनको गलत जानकारी ना मिले, सही सटीक जानकारी उन तक पहुंचे। ये हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारी क्रेडिबिलिटी है जिस पर हम लोग खरे उतरते हैं हर वर्ष। तो न्यूज़ 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक, और ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर न्यूज़ 18 का जलवा नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए अलग अलग दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आपने देखी, और अलग अलग तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे न्यूज़ 18 को लगातार
तो ऐसे आप लोग न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। हमने पूरी तैयारी की हुई है, हमारी सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ा कवरेज है, लगातार तैयारियां की हैं, पूरे चुनाव भर हमने मेहनत किया है। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं, रुझान के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, एक एक नंबर्स, एक एक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रुझानों में अभी एनडीए बढ़त बनाए हुए दिख रहा है, महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। इसके कई कारण, इसके कई वजह हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको आंकड़ों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ने किसे अपना वोट दिया है, किसे जनता ने प्यार दिया है। तो लगातार देखिए एक बार फिर से नवादा से जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो अपने दर्शकों को दिखा दे। जनता दल यूनाइटेड से विभा देवी आगे चल रही है, कौशल यादव राष्ट्रीय जनता दल से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बिग फाइट्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जो सीट है वो है कुमरार, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं संजय कुमार वो आगे हैं, वहीं निर्दीप कुमार चंद्रवंशी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं पीछे चल रहे हैं। अगली जो सीट है जहां बिग फाइट है, नितिन नवीन बांकीपुर से, देखिए वीवीआईपी सीट है ये, नितिन नवीन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बांकीपुर आरजेडी से रेखा कुमारी चल रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन पर वहां की जनता को बहुत भरोसा रहता है, जब भी चुनाव होते हैं नाम लीजिए तो बोलेंगे नितिन नवीन को ही वोट डालेंगे और उसका असर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए बिग फाइट कहां है। दीघा संजीव चौरसिया बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, वहीं दिव्या गौतम दीघा सीट से जो कि सीपीआई एमएल की कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रही हैं। अब अगला जो सीट है वो आपको बता दें नालंदा, जहां पर श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं और गृह जिला बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला। बिल्कुल, और यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट पर ही लोगों ने ऐसा लग रहा है भरोसा जताया है, आगे चल रहे हैं लगातार श्रवण कुमार। यहाँ तो लोग आंख बंद करके जेडीयू को ही वोट करते हैं मुझे लगता है। लक्ष्मी नीतीश कुमार ने नालंदा की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। और देखिए अब आपको आनंद मिश्र की तस्वीर दिखा देते हैं। आगे चल रहे हैं बक्सर, बीजेपी से बक्सर से आगे चल रहे हैं। शंभुनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच अब देखिए अगला जो सीट है शाहपुर, यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। राकेश रंजन बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर पीछे चल रहे हैं शाहपुर में। यानी कि यहाँ पर देखिए आरजेडी वर्सेस बीजेपी है और आरजेडी के कैंडिडेट आगे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में बढ़त में बढ़त बनाया हुआ है। आरा सीट बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं, संजय सिंह टाइगर कहे जाते हैं। आरा से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। वहीं देखिए जो आरा के सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं क्यूमुद्दीन अंसारी वो आगे बढ़त बनाए हुआ दिख रहा है। रुझानों में वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट यहां पर पीछे हैं। और अगला जो सीट है महनार, जेडीयू के कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा वो आगे हैं। देखिए बिग फाइट है यहां पर। शुभी आरजेडी के कैंडिडेट महनार से रविंद्र कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं और जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। तगड़ा यानी कि फाइट जो है वो कांटे की टक्कर है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, लेकिन ये रुझानों में है। बहुत जल्द तस्वीरें जो है क्लियर वाकई लक्ष्मी बहुत जल्द तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन रुझान जो है उसका क्या आकलन हम इस वक्त लगा सकते हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक करूंगी, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। सर एक छोटा सा रिएक्शन, अभी लगातार बढ़त बनाए रखा है एनडीए ने, क्या लग रहा है ये परिणाम में बदल जाएगा? देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि परिणाम यही आए। तो चलिए परिणाम यही आए, ऐसा हो सकता है। देखिए जेडीयू क्या बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए अभी तो आप खुद ही बोल रहे हैं रुझान है, और आपके इस चैनल बेहतरीन चैनल जो लगातार आप दिखा रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा आगे थे वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया फिर उनका भी कुछ, तो बहुत से विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरने के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये महागठबंधन के लिए गैप फिल करना बहुत मुश्किल है? मुश्किलात लग रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि बिहार के इस चुनाव में नारी शक्ति का वो अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से बिल्कुल ये लैंडस्लाइड वाला नतीजा, बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन और उनकी बड़ी संख्या में आकर आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहाँ तक कि बड़े जर्नलिस्ट जो दिल्ली से गए थे वो भी आंकलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए नारी शक्ति की हम बात जब करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया उसी का असर है कि ये बार में लगातार बड़ी
एनडीए की पकड़ मजबूत होती। बक्सर में भी 4 में से 3 सीट पर एनडीए जो है वो आगे है और भोजपुर में 7 में से 4 सीट पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। रोहतास में 7 में से 5 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। कैमूर में देखिए 4 में से 2 सीट पर और चलिए एनडीए आगे है। सीधे विधानसभा के बाहर भी हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार विधानसभा के बाहर हमारी सहयोगी विभा लगातार हमारे साथ बनी हुई। विभा, जल्दी से छोटा छोटा रिएक्शन। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो विधानसभा के बाहर हमारी मौजूदगी जरूर है और देखिए 175 पर जहां एनडीए इस वक्त रुझानों में आगे लीड करती हुई, जिसमें उनके पांचों ही पांडव जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आखिर महागठबंधन में सहयोगियों ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आखिर दावा इतना बड़ा, इतने बड़े घोषणाएं, लेकिन जनता पर असर नहीं। देखिए जो अभी दिखा रहे हैं ये शुरुआती रुझान ही है और हम लोगों ने शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया और जनता के ज्वलन समस्याओं पे जनता के बीच। तो जनता ने क्यों नकार दिया? अभी आप कैसे कर सकते हैं, जनता कैसे पाट पाई? मार्जिन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा। इंतजार कर लीजिए, आपको रिजल्ट जो है ना। रिएक्शन, जल्दी जल्दी रिएक्शन लीजिए, बहुत सारे नेता हैं आपके पास। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका दावा है कि अभी भी 175 और 63 इन दोनों में मार्जिन ज्यादा नहीं है, अंत तक तो सब कुछ हो जाएगा। जी वैसे मेरे दोस्त एक बात सत्य कह रहे थे कि इससे ज्यादा बड़ी जीत के साथ एनडीए जीत रही है। नहीं, वो तो अपने लिए बदलाव की बात कह रहे हैं। हो गया ना बदलाव, बिहार चारों तरफ बदल रहा है ना, बिहार आगे बदलते रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 5वीं बार बिहार ने आशीर्वाद दिया है। मोदी संग बिहार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। बिल्कुल, और ये बड़ी जीत का दावा तो दोनों तरफ से था, लेकिन जनता किस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये रुझान है, परिणाम नहीं है। परिणाम तक का भी इंतजार हम करेंगे। इस आंकड़े के पीछे क्या वजह? इस आंकड़े के पीछे सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार बिहार में मुद्दों की भरमार रही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाकर बिहार में मोबिलाइजेशन करना चाहती थी, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के नौजवानों ने, बिहार के महिलाओं ने उनको बाध्य किया कि आप पलायन, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई पर बात है। लंबे अरसे के बाद जहां बिहार की जनता ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, यहाँ के सत्ता को बात करने के लिए बाध्य किया और प्रधानमंत्री को इस रूप में नकारा। इस भारत का प्रधानमंत्री, इस आंकड़े के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जहां कट्टा, दोनाली, छर्रा, कनपट्टी, तो जनता क्यों नहीं आप पर यकीन कर पाई? ये तो सवाल है ना, जनता क्यों नहीं यकीन कर पाई? क्योंकि 174 और 64, 174 और 64 का आंकड़ा तो कम से कम यही बता रहा है। इस पूरे आंकड़े में क्या लगता है कि फैसले लेने में पार्टियों ने विलंब कर दिया, जनता भ्रमित हो गई कि भाई आप सचमुच कोई विजन रखते हैं क्या? पार्टियों ने ना ही विलंब किया है अब फैसले लेने में। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विभा आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर रुझानों पर बोले गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री, उनका बड़ा बयान आ रहा है। देखिए जनता ने मुहर लगाई है। बात कह दी है कि सीएम के तौर पर नीतीश के नाम पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। रुझानों पर गिरिराज सिंह का यह कहना है, चूंकि रुझानों में देखिए एनडीए ही आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह का कहना है कि जनता ने मुहर लगा दी है कि आखिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान, फायर ब्रांड नेता, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जनता ने मुहर लगा दी है, सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के नाम मुहर है। और देखिए हमारे साथ विधानसभा से लगातार हमारी सहयोग बनी हुई है। विभाग छोटा सा रिएक्शन, जल्दी सबसे पूछिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर ये भी कि ये इस वक्त गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर तो नीतीश कुमार ही हैं और वही बैठेंगे। मुहर तो पहले से थी, बस घोषणा आप इस रूप में आप देखिएगा कि ताज सज जाएगा। कहा यह जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का बेहतर रहा कि एनडीए भी आगे बढ़ गई। देखिए ऐसा है कि ये जो चुनाव, बिहार का चुनाव इस बार का था, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम लोगों ने लड़ा और नीतीश जी के प्रति 20 साल के बाद भी जिस तरह का जनता का विश्वास है, तो गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। प्रो इनकम्बेंसी, अगर ये आंकड़े ही परिणाम में तब्दील होते हैं तो इसे एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़ दीजिए, प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे और ये बड़ी उपलब्धि है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए।
जी बिल्कुल, जो अभी तक के सुझाते कह सकते हैं कि 2.5 घंटे है, वो परिणाम में बदलते तो कि डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता ने समर्थन दिया है। कहीं से वो 10,000 रुपए का जो मामला था, जो 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर रहा माना जाए। बिल्कुल, तो जो मिलता है जनता उस पर यकीन करती है, जो वादे आप करते हैं उस पर उसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनादेश और इतना प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनते दिख रही है। ये 20 साल का जो बिहार को विकास करने में जो नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार ने जो भागीदारी निभाई है, उसका परिणाम है। क्योंकि किसी भी सेक्टर में जब आप बात करेंगे तो बिहार का आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। बिहार का आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जंगल राज की छवि से आरजेडी बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए महागठबंधन भी कहीं ना कहीं अटक जाती है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में आए थे और जनसभाओं और विभाग आपको रोकना चाहूंगी, गिरिराज सिंह का वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को लेकर, क्या कह रहे हैं, सुनिए। ने कहा है कि नहीं होंगे, बने ये मीडिया जगत में डे वन से आपके मुख्यमंत्री कौन है? अरे भाई, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये मीडिया को क्या हो गया है? मतलब नीतीश कुमार बनेंगे तय है? अरे भाई, फिर वही बात, ये डे वन से है, तो इसमें आप मीडिया को क्या हो गया? मैं मीडिया से ही सवाल और लगातार हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, एक बयान भी आ रहे हैं और बयानों में जो बात कही जा रही है नीतीश कुमार को लेकर, गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे सर? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को, अभी तो बहुत खेल बाकी है। ये तो आप रुझान देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी कि जेडीयू सरकार बनाएगी, ये तो अभी बहुत बड़ा खेल। बीजेपी ने बना लिया तो क्या सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे? नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। नीतीश कुमार को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सेंटर में भी देखिए नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है केंद्र सरकार। देखिए, सेंटर में भी केंद्र सरकार नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है। क्या सर, क्या लग रहा है नीतीश कुमार को? बिल्कुल, ये बिहार का कुमार के परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ा गया और जनता ने भी उनको स्वीकार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए, ये जो रुझान आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस नीतीश कुमार की बड़ी सफलता माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इक्वेशन बदल रहे थे बीच में, आपको पता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से कई अंदर खाली खबरें आ रही थी, अगर इतनी बड़ी मेजोरिटी लेकर, इतनी बड़ी सीट्स, ज्यादा सीट्स लेकर के जेडीयू सामने तो नीतीश कुमार क्या बड़ी बीजेपी को क्या परेशानी हो रही थी सीएम अनाउंस करने पर? नेतृत्व में लड़ना और सीएम फेस अनाउंस करने में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मिल रही है। एक बार बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तो लगातार रुझानों की खबर तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी का भी इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। इनका कहना है कि हमें ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद थी। रुझानों को लेकर ये कह रहे हैं एनडीए बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। क्या कुछ इन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है, पहले ही से कह रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 आवेंगे। आप बोलिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, आप बोलिए। कार्यकर्ता तो अपने नेताओं का मान और सम्मान रखता ही है। आप बोलिए। फिर से सहयोगी विभाग चाहेंगे और एक बार छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कि त्वरित एक्शन जो कहना चाह रहे हैं वो विभाग एक बार जानिए गेस्ट से।
बिल्कुल। तो देखिए, एक बयान जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। कुंतल जी, नेतृत्व हमेशा कहा गया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये खुलकर ये लाइन किसी ने नहीं कही। ने अपना रिपोज किया है फेथ, ये बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हम और आप बैठ के निर्णय नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री का निर्णय होता है। अलायंस का जो लीडर होगा वो मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल के नेता, आप वही लाइन बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, जीते हुए एमएलए और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार का नाम लेने में आपत्ति क्यों है? एनडीए की जीत है ना, एनडीए की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व, यानी चेहरा बदल भी सकता है। ये सब निर्णय हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय हमारे जीते हुए विधायकों का प्रेरोगेटिव है, ये प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट्री बोर्ड का। चलिए, ये निर्णय विधायक दल के नेता करेंगे। क्या यही बात आप लोग को शुरू से लग रही थी कि भाई यहाँ पर ये वाला खेल ना हो जाए कि चेहरा बदल जाए? देखिए, चेहरा बदलना और इनका चाल चरित्र बदलना ये तो हमेशा से इनके पार्टी में रहा है, और ये बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम मौका लेकिन आप ही लोग दे रहे हैं। मौका हम लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और अभी ये शुरुआती रुझान है, ये धीरे धीरे क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है। अभी आपको लग रहा है तो आंकड़े बता दीजिए कहां तक पहुंचेंगे? मैं अभी भी बता रहा हूं कि हमारे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स से बात हो रही है, सारे विधानसभा में 25-30 सीट पे हम लोग लीड कर रहे हैं अभी तक। जो ये रुझान में यहाँ नहीं दिख रहा है, ये मीडिया का आंकड़ा है, और मीडिया का आंकड़ा है वो धीरे धीरे, मतलब जो एग्जिट कह रहा था उसे भी आप नकार रहे थे, जो एग्जिट की तरफ आ रहा है आप उसे भी नकार रहे हैं। नकारने की वजह? नहीं, हम लोगों ने जनता के जन सरोकार के मुद्दे पे जनता के बीच जाने का काम किया, और जनता ने महागठबंधन को ही अपना जनमत और जन आशीर्वाद देने का काम किया है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कब तक? बस अभी 1-2 घंटा और इंतजार करिए, चूंकि अभी तो शुरुआती रुझान है, और जो हम लोगों को फीडबैक आ रहा है अपने वर्करों से जो पोलिंग स्टेशन पर है, तो हम लोगों को तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, उत्तम मांझी जी, कुशवाहा जी सहित भाजपा विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशियों को भी बधाई। भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई। मुख्यमंत्री जो पीछे चल रहे थे, सम्राट चौधरी पहले आगे चल रहे थे, अब वो विजय सिन्हा भी आगे हो गए। इट मीन्स कि उतार चढ़ाव होंगे ऊपर, लेकिन शंका उनको भी लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल किसी के लिए भी जो शुरुआती रुझान होते हैं, जैसे रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित सेटबैक है उनके लिए, लेकिन अभी उनको उम्मीद, ऐसे लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, गिरिराज सिंह ने कहा कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में मतदान देने के लिए याद किया जाएगा, और इस बात का चुनाव इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि एक भी सीट पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं हुई। क्रेडिट किसे देंगे? जेडीयू को देंगे क्या? जेडीयू को देंगे क्या? क्योंकि ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये नाम तो अब भी सहयोगी नहीं लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दल का नेता बैठकर चुन लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पुरानी पार्टी नहीं है, वो गुजराती व्यापारियों। बड़ी खबर इस वक्त की सीमांचल में एनडीए का सिक्का चमक गया है। लक्ष्मी, सीमांचल बिल्कुल, तो ये सटीक जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, और किशनगंज में 4 में से 3 सीट पर एनडीए जो है आगे है, कटिहार में 7 में से 5 सीटों पर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर अररिया में 6 में से 4 सीटों पर एनडीए आगे है। और कहा भी जा रहा था कि किशनगंज में अगर एनडीए ने बढ़त बना ली तो एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, और इस इलाके में एनडीए ने अलग अलग सीटों पर बढ़त बनाई भी है, तो इसका मेगा असर, बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी, देखिए, कटिहार में 7 में से 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि लगातार रुझानों में एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है आपको, आगे क्या हो सकता है? देखिए, 3-4 बातें जो समझ में आ रही हैं। पहली बात तो कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, इसको उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है।
क्योंकि अभी ये सीटें जब क्लियर हो जाएंगी कि बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है और जेडीयू को कितनी सीट मिल रही है, तब ये बात सामने आ जाएगी। कि आपको लग रहा है ये जो महागठबंधन इतना पिछड़ता हुआ दिख रहा है, ये तुरंत मतलब बाजी पलट भी सकता है? देखिए, चूंकि आप 1500 वोटों का आप अंतर दिखा रही हैं, बार बार आपका ही चैनल सबसे फास्ट दिखा रहा है, तो मैं उसको विश्वास कर रहा हूं। अगर ये 500 और 1000 का ही आगे बदल भी सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो लड़ाई लड़ी है, वो हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। वो वोटर डिलीशन की बात, एसआईआर मैनिपुलेशन की बात, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस बात को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए वो बहुत ज्यादा असरदार रहा नहीं क्या? आप अगर ये मामला है और हम कह रहे हैं कि 65 लाख पहले एसआईआर में आप वोटर कम हुए, किन लोगों का वोट और 6.5 लाख जो वोटर जो SC ST OBC जो जिस एरिया में जो कमजोर लोग थे, और आप महिलाओं का वोट लेने के लिए महिलाओं का इलेक्शन नहीं दे पाया ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। और वोट लेने के लिए तो आपको 10,000 रुपया घूस देना पड़ा। खैर ये सब मुद्दे तो आप लोगों ने, ये सब तो खूब मुद्दे उठाए भी गए थे ना। तो ये जो SIR का मुद्दा जो उठाया गया था, आप देखेंगी तो SIR पे एक भी अपील फाइल नहीं हुआ। SIR पे अगर मुद्दा था तो मुद्दा सड़कों पे था। और अगर आप देखेंगे कि अगर इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया है, इसमें देखिए कि अगर हर बार चुनाव में होता था कि पूर्ण मतदान का रिक्वेस्ट होता था। सीमांचल में जो प्रदर्शन अभी एनडीए का दिख रहा है रुझानों में, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये मैं कहूंगा कि सीमांचल में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ डेंट किया होगा, अगर आप लगाएंगी। लेकिन फिर भी तो एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जो महागठबंधन के वोट को काटा है उन्होंने, और कहीं ना कहीं ओएससी वाला फैक्टर था, तो वहाँ उनको फायदा मिल रहा है एनडीए को। ठीक है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लक्ष्मी जी, सीमांचल और पूरे बिहार में 3 महत्वपूर्ण चीजें दिखाई पड़ रही हैं। पहली बार की रूरल जो वोटिंग है, रूरल वोट से, जो कि बिहार ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और विशेषकर महिलाएं, और वो वोटिंग जो आ रही है, सीमांचल की भी वोटिंग आ रही है, उसने प्रो इनकम्बेंसी को पहली बार चौथी बार जो है वो पुख्ता किया है, वो अभूतपूर्व है। दूसरी बात जो है कि जो डेंट हुआ है महागठबंधन के वोट में, जन स्वराज का, वो भी एक बड़ा फैक्टर है वहां पे सीमांचल में। और तीसरी बात जो है कि जो जिस ढंग की का एक माहौल था, जो टाइम जोन था, उस टाइम जोन में महिलाएं और वहां के लोग इस बात को स्वीकार किया कि जो चला आ रहा है उसकी कंटिन्यूटी रहे। ठीक है सर, आप लोगों से फिर से रिएक्शन लेने के लिए आएंगे, लेकिन लगातार देखिए जानकारी हम लोग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर रुझानों में क्या हो रहा है वाकई। और देखिए रामनाथ ठाकुर का एक बयान सामने आ रहा है लक्ष्मी, वो अपने दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। क्या बोल रहे हैं रामनाथ ठाकुर? कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो जोश दिया, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उस प्यार के बदौलत नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। ये नौजवानों का और महिलाओं का नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उसका आशीर्वाद मिला है महिलाओं का। तो देखिए उसका आशीर्वाद मिला है, रामनाथ ठाकुर ने कहा है। और देखिए ये लगातार हम आपको ग्राफ के जरिए, लेकिन एक बार पटना में भी हमारे गेस्ट बने हुए हैं, मैं चाहूंगी कि विवाद आप तुरंत उनसे रिएक्शन लीजिए कि आखिर क्या कह रहे हैं वो लोग भी। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ जब चर्चा में तमाम मेहमान मौजूद हैं, जेडीयू से अगर मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूं कि क्या इन आंकड़ों से एक बात साबित हो गई कि राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश कुमार, और इतने 20 सालों के शासन के बाद भी उन्हें जो तजुर्बा है, उनकी जो सोच है, वो अभी की पार्टियों से, अभी के नेताओं से 10 कदम आगे वाली है? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से एनडीए चुनाव लड़ती रही है, और लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त रहा, और 25 से 30 फिर से नीतीश के ही नारों पर एनडीए जीत के, और एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी थे, और जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार। जीविका दीदियों ने कमाल किया। नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, देखिए 2006 में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। अरे वो दावे तो अब आरजेडी ने भी दोहराए, कहे कि भाई हम भी देने वाले हैं। अब आपने 10,000 दिया, वो 30,000 देने की बात कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो 20 साल करके दिखाया है ना, जनता इसलिए विश्वास की है कि नीतीश कुमार जी ने 20 साल काम किया है। बिल्कुल, 20 साल के काम पर अगर यही रुझान परिणाम में बदलते हैं तो ये मोहर होगी।
सिर्फ इसे मोहर के तौर पर देखा जाए या फिर ये भी कि जनता ने देखा कि नहीं भाई ये 5 पांडव मिलके काम कर रहे हैं, ये कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? देखिए, दोनों महागठबंधनों के अंतर को भी समझने की जरूरत है। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जो आपस में समझौता नहीं कर सके वो विकास के लिए क्या काम करेंगे? जनता ने देखा। ठीक है विवाह, आप बने रहिए, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच कृष्णा लवरू का क्या कहना है, उनका क्या बयान सामने आ रहा है, एक बार ये सुनवा देते हैं। ट्रेंड तो शुरू का है, दिन का अंत का देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता के लिए अच्छा करने वाला एक सरकार बने, और वही हम भी चाहते हैं। और हमें लगता है कि 20 साल किसी को मौका दिया है और वो अगर नहीं कर पाए, बंदर को मौका मिलना चाहिए। उस रुझान के बाद तो इनका बाद क्या होगा वो सबके सामने आने वाला है। लेकिन बयानों के दौर में देखिए अब शुरू हो चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, अलीनगर से मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे चल रही हैं और लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह भी आगे चल रहे हैं। शुभी, और देखिए संजय सिंह 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए संजय सिंह लालगंज से पीछे हुई शिवानी शुक्ला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्ला अभी आगे चल रही थी लेकिन अभी पीछे हो गई हैं। और बीजेपी के आनंद मिश्रा 6084 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाकर रखी हुई है। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब नीतीश कुमार, ये पोस्टर लग चुका है पटना में, ये बड़ा पोस्टर लग चुका है। बिहार का मतलब है नीतीश कुमार। बिल्कुल, यानी कि पोस्टर की भी राजनीति शुरू हो चुकी है। कल ही हमने दिखाया था जिसमें टाइगर बताया गया था नीतीश कुमार को, टाइगर भी जिंदा है। और आज एक पोस्टर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से बढ़त है, रुझान है एनडीए का, उससे यह साफ हो रहा है कि एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में पोस्टर्स भी लगने शुरू हो चुके हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह अभी से ही शुरू हो चुका है। काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने देखिए यहां पर लगा भी दिया है बिहार का मतलब नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का मतलब बताया जा रहा है कि बिहार का मतलब ही। और देखिए लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला पीछे चल रही हैं। संजय कुमार सिंह बीजेपी लालगंज से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम आपको अलग अलग सीटों की जानकारी दे रहे हैं। बिग फाइट। तो अब ये छपरा की अगर आपको जानकारी दे दें तो खेसारी लाल छपरा से पीछे चल रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह भी आगे हैं और संजय सिंह 800 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला जो अब तक आगे चल रही थी वो अब पीछे हो गई हैं, 800 वोटों से कह सकते हैं। बीजेपी की आनंद मिश्रा भी शुभी 6000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। वाकई। और देखिए अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाई हुई है। बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने, जनता के बीच गई। कहा जा रहा था कि महिलाओं का बहुत प्यार मिला उन्हें और लगातार मखाने को पाग में रखकर ये सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसको लेकर विवाद हुआ। लेकिन बावजूद जनता ने उन पर प्यार बरसाया है और शायद बीजेपी ने जो निर्णय लिया था मैथिली ठाकुर को उतारने का, बहुत नाराज बहुत आखिर वक्त में ये डिसाइड किया गया कि मैथिली ठाकुर भी जो है चुनाव लड़ेंगी और वो भी अलीनगर सीट से उनको, यानी कि लक्ष्मी लोकप्रियता उनकी काम आ गई, लोकप्रियता उनकी। और ऐसा लग रहा है कि वाकई बिहार के लिए उतने जो गाने उन्होंने गाए हैं वो कहीं ना कहीं असरदार हुआ है, क्योंकि जो वोट्स दिख रहे हैं 4000 वोटों का अंतर दिख रहा है, यानी कि पसंद किया गया है उनको भी। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा भी 6000 से ज्यादा वोटों से आगे दिख रहे हैं। और लगातार हम लोग मैथिली ठाकुर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अलीनगर सीट काफी ज्यादा चर्चा में रही है और मैथिली ठाकुर को लेकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगी। बार बार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके बारे में गलत इमेज बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो वोट्स दिखाई दे रहे हैं, वोटों का जो फासला है वहां पर दोनों कैंडिडेट के बीच में, उससे ऐसा लग रहा है कि मैथिली ठाकुर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। रितेश रंजन कहर से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के ये कैंडिडेट हैं लेकिन पीछे चल रहे हैं और एक एक करके आपको दिखा रहे हैं ये आंकड़ा फिलहाल क्या कह रहा है। ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो किसको मिलने जा रही है, तो देखिए ये आप चले एनडीए में, एनडीए को
मिलती हुई बढ़त लगातार एनडीए बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आप सीट्स देख पा रहे हैं, ये जो आप ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं, भगवा कलर, ये जो है एनडीए के लिए हम लोगों ने दिखाया है, दर्शाया है, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो महागठबंधन ग्रीन कलर में आप देखिए, और ये जो येलो कलर आप के लिए है। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि महागठबंधन जो है पिछड़ता हुआ है और एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। बहुत कम देर अब बचा है, जो रिजल्ट आएगा उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर सत्ता की चाबी एक बार फिर से बिहार की जनता ने किसे दिया है, किस पर अपना भरपूर विश्वास जताया है और किसको हार का स्वाद चखाया है। ने ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला। 243 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर एनडीए जो है देखिए आगे पीछे हो रही हैं सीटें, और 119 पर अभी फिलहाल जो है वो एनडीए आगे बढ़त बनाता हुआ, जिसमें ब्रेकअप आपको बताते हैं। बीजेपी 76 सीट्स पर, जेडीयू 77, अभी भी जेडीयू आगे है, एलजेपीआरवी 19, हम के पास 4, आरएलएम जो है वो 4 सीटों पर आगे बढ़त बनाता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है रुझान से इस बार जेडीयू जो है नंबर 1 की पार्टी इस बार बिहार में बन जाएगी। अभी तक जेडीयू जो है बीजेपी आरजेडी से पीछे है सीट में, लेकिन इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसा नंबर 1 की पार्टी बनेगी। खैर महागठबंधन का आपको ब्रेकअप बताते हैं। आरजेडी में 38 सीट्स पर अभी रुझान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 11 सीटों पर आगे बढ़त बनाया हुआ है। सीपीआई 1 सीट पर, सीपीआईएम भी 1 सीट पर आगे बढ़ता हुआ, वीआईपी भी 1 सीट पर आगे बढ़त बनाया हुआ है रुझानों में। लेकिन अब आपको बिग फाइट की तस्वीरें दिखाते हैं। पीछे चल रहे हैं लगातार खेसारी लाल यादव छपरा से, छोटी कुमारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनका काफी नाम है, लोग काफी पसंद भी करते हैं शायद, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इनके समर्थक जो हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं, काफी देर से पीछे चल रहे हैं। और रीतलाल राय देखिए दानापुर से आरजेडी से कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। वही देखिए फुलवारी सीट जो कि रिजर्व सीट है एससी, श्याम रजक यहां पर पीछे चल रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। गोपाल रविदास देखिए फुलवारी से ही कैंडिडेट सीपीआईएमएल के, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगली जो सीट है वो आपको बता देते हैं, लौरिया सीट भारतीय जनता कैंडिडेट विनय बेनी वो आगे चल रहे हैं। वहीं रणकौशल प्रताप सिंह जो है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग फाइट आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो सीट है देखिए जमुई, श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद शमशाद आलम जमुई से आरजेडी की कैंडिडेट वो पीछे है। लगातार काफी मेहनत किया श्रेयसी सिंह ने, लगातार ग्राउंड पर दिखाई, जनता के सामने भी रही, जनता की जो भी समस्याएं थी उनको सुनी है, शायद उसका ही ये कह सकते हैं कि फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर ये रुझान है, नतीजा नहीं है। अब झाझा की बात कर लेते हैं, जमुई की ही एक विधानसभा सीट जहां से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी की कैंडिडेट पीछे हैं, दामोदर रावत जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है झाझा से, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगली सीट बिग फाइट, ये चकाई, ये भी जमुई की सीट है। सुमित कुमार सिंह जेडीयू की कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो कॉम्पिटिटर है आरजेडी से सावित्री देवी चकाई से, वो पीछे दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर मिल रही है, शुमी क्या बड़ी खबर है दर्शकों को जरा बताइए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए लगातार ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है बता दें आपको। देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है, सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एसपीजी के एसपी और जवाब एक्टिव है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर और देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज है, एसपीजी के एसपी और जवान एक्टिव हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें भी सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास के पास हलचल काफी तेज हो गई है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए लगातार प्रतिशत की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 22.82%। बड़ी खबर आपको बता रहे, 22.83% बीजेपी को, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 22.82% वोट मिले हैं।
जेडीयू को 18.40% की आपको बता रहे हैं और कांग्रेस में 8.08%। और देखिए बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, 0% का ही अंतर है। और ऐसे में ये फासला क्या एक जैसा ही रहेगा या बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये धीरे धीरे रुझानों के बाद पता चलेगा। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर बड़ी जानकारी हम आपका वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं। जेडीयू 18.4, कांग्रेस 8.0, 5.6%। पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे। तो बीजेपी 22.83%, आरजेडी 22.82%। पार्टियों का वोट प्रतिशत अब तक क्या रहा है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू 18.40%, कांग्रेस की भी हमने जानकारी आपको दी है। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 22.83%। जय लक्ष्मी। तो बिल्कुल अब देखिए पार्टियों का जो वोट प्रतिशत अच्छा है विरोधी दल बहाना करें, क्योंकि हकीकत जानने पर उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं। वो भी मुगालते में रहें और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य एनडीए सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से इतने बड़े बहुमत के साथ एनडीए शासन में आ रही है। देखिए ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय और एलजेपीआरवी कार्यालय, चिराग पासवान की पार्टी, और सभी जगहों पर देखिए तो न्यूज 18 का ही जलवा दिखाई दे रहा है। यानी कि सभी कार्यालय में किसी चैनल पर अगर भरोसा जताया जा रहा है तो वो है न्यूज 18 बिहार झारखंड। हमने मेगा तैयारी की है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर तैयारी की है, चाहे वो ग्राउंड हो फिर वो स्टूडियो हो, हर जगह हमने तैयारी सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए की है। सबसे बड़ी टीम है हमारी, सबसे बड़ा कवरेज हम लोग कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी जो टैली है वो इलेक्शन कमीशन की टैली से मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से भरोसा जताया जा रहा है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपीआरवी कार्यालय की तरफ से भी। सभी लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड को ही वॉच कर रहे हैं लगातार और इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी हमारा व्यूअरशिप काफी ज्यादा अच्छा रहा है। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमें वॉच कर रहे हैं। इसका मतलब जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार के पहले ही एक मैंडेट देके उसको नकार दिया था, पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने की किसी राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहाँ तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज़ है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी। रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात उसी टाइप इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई यहाँ पर अगर किसी को गिरवान। तो देखिए लगातार रुझानों में एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बयानों का भी दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, शुभी जरा दर्शकों को बताइए वो बड़ी खबर क्या आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, हूटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम आवास के पास की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सीएम आवास के पास नया पोस्टर लगा दिया गया है, नया पोस्टर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। इससे पहले भी हमने आपको वो पोस्टर दिखाया था। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए काफी गदगद है। सीएम आवास खबर आपको बता रहे हैं, बिहार कुमार ये बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है और लगातार लेकर भी अब चर्चा होने लगी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल से ही राजधानी पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। एक तरफ जहां लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है, तो तेजस्वी यादव ने पोस्टर जो लगवाए थे या राष्ट्रीय जनता दल के बाहर जो पोस्टर लगाए थे वहां पर सिर्फ ये लिखा था
कि बिहार में अब बदलाव की सरकार, लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार है और इसीलिए इस पोस्टर को भी लगाया गया है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। लक्ष्मी, तो बिल्कुल देखिए, यानी कि अब पोस्टर की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया। कल ही एक पोस्टर हमने देखा था कि टाइगर अभी जिंदा है और लोगों ने सवाल भी किए कि इसका क्या, टाइगर अभी जिंदा, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही और वाला है। अब जो पोस्टर लगाया गया इसका मतलब ये है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। ये देखिए, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से ये बताने की कोशिश है कि अगर इस बार भी विधानसभा एनडीए जीत जाता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। इतने लंबे सालों से नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार ने यहां की सत्ता की कमान संभाल रखी है काफी वर्षों से। इस बार क्या होगा? लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ बदलने वाला है? एनडीए जीत भी जाता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब आखिरी दौर में ये क्लियर करने की कोशिश तमाम एनडीए के नेताओं के द्वारा की गई कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, लेकिन सवाल इसलिए भी उठते रहे क्योंकि जो बीजेपी का ट्रेंड है, नेतृत्व किसी और के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ती है, बाद में मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है, इसीलिए सवालों के घेरे में एनडीए था। लेकिन अब जो क्लियर किया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब इस जरिए आप बताते हैं कि अभी रुझानों में क्या 86 पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए, वहीं महागठबंधन 52 पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन जनसुराज तो शून्य, ऐसा लग रहा है खाता भी नहीं खुलेगा जनसुराज का। आदर्श पर 5 है, यानी कि एक बार फिर से रुझानों में एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार रुझानों में। और देखिए, बड़ी खबर, अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको देने, लालगंज से बीजेपी 1390 वोटों से आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला पीछे हैं, लगातार ये पीछे चलती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के ललित नारायण मंडल आगे चल रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। न्यूज 18 के सबसे सटीक नतीजे हैं ये। लालगंज से बीजेपी 1390 वोटों से आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको, विजय खेमका आगे चल रहे हैं। तो सीट दर सीट क्या स्थिति बन रही है बता रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के ललित नारायण, बड़ी खबर आपको बता दें, लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, मिठाई की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। मिठाइयां बंटनी भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अभी तो बनने की तस्वीर आपने देखी थी सुबह से, लेकिन अब बनकर तैयार हो चुकी है और तैयार होने के बाद अब बांटने की भी तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, जश्न का माहौल पूरे बिहार में नजर आ रहा है। खासकर जब ये रुझान सामने आए हैं एनडीए के, उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा जगह जगह पर, चाहे वो अनंत सिंह का आवास हो या जेडीयू दफ्तर हो, बीजेपी दफ्तर हो, हर जगह कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, गजब का उमंग नजर आ रहा है। और देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। सतीश कुमार राघोपुर से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव जिन्होंने 189 रैलियां की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, लेकिन फिलहाल राघोपुर यानी अपनी ही सीट से वो पीछे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि राघोपुर से इस बार तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। क्या शाम तक जब परिणाम आएंगे तो राघोपुर से यादव अपनी ही विधानसभा क्षेत्र से हार जाएंगे? क्या वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे? क्या ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि वोटों का फासला ज्यादा नहीं है, 1237 है। अगर इस फासले को तेजस्वी यादव ने बना लिया, भर दिया, तो तेजस्वी यादव जीत भी सकते हैं। लेकिन 1237 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। तीसरे राउंड की गिनती हो रही है।
जिसमें तेजस्वी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। राघवपुर विधानसभा क्षेत्र जहां तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं और लगातार उन पर कई आरोप भी लगते रहे कि तेजस्वी यादव क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आते। उनके भाई तेज प्रताप यादव ने वहां पर भोज भात कराया, लोगों को खाना खिलाया था। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ने दावा किया था, प्रशांत किशोर भी कई बार राघवपुर गए। और इसी बीच 1237 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चलते नजर आ रहे। तीसरे राउंड की गिनती चल रही है जिसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और राघवपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघवपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दे रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव की जब बात होगी, जनसभाओं की बात होगी, उनकी मेहनत की बात होगी, वो महागठबंधन की भावी और बावजूद वो पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम आवास के बाहर जश्न का माहौल, जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिलती नजर आ रही है। देखिए अगर ऐसा होता है तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आएगी। जेडीयू दफ्तर में जश्न के माहौल की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। मिठाइयां बन चुकी है, अब बंटने की तैयारी है। और देखिए और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर पटना में लग चुके हैं जिसमें लिखा गया है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार है। और इसीलिए ये मिठाई आपको नजर आ रही होगी। सुबह क्या कल रात से ही, कल दिन से ही लगातार तैयारी चल रही थी। और एक और खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, राघवपुर से तेजस्वी यादव पीछे हुए, ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार 1237 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तीसरे राउंड की गिनती में तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव के भी पीछे होने की खबर चल रही है। लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटे इस वक्त अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। चाहे राघवपुर की बात करें या महुआ की बात करें, दोनों ही सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एक तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो पार्टी से जिन्हें निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया, नई पार्टी उन्होंने बनाई, जेजेडी बनाई और उस पार्टी से चुनावी रणभूमि में उतरे। महुआ में कई जनसभाएं की, जनता को संबोधित किया, वादा किया। सुनिए। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, तीसरे राउंड की गिनती में भी तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। इस वक्त की तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे थे और लालू प्रसाद के दोनों बेटे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपने राघवपुर विधानसभा क्षेत्र से पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि वोटों का फासला 1237 वोटों का फासला है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महुआ और राघवपुर विधानसभा क्षेत्र की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और दोनों ही बेटे लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जिन्हें नाराज होकर पिता ने पार्टी से बाहर किया, परिवार से बाहर किया, बावजूद उन्होंने नई पार्टी बनाई, अपने प्रत्याशियों को उतारा। और इसी बीच जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। जश्न की तस्वीर, जेडीयू दफ्तर में मिठाई मंगवाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में ढोल, नगाड़े, घंटी, शंख, सारी चीजें आपको सुनाई दे रही होगी, आवाज सुनाई दे रही हो गई। और देखिए जेडीयू को 80 सीट मिलने के दावे। और इसी बीच जेडीयू दफ्तर में जश्न के माहौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिल रही है। न्यूज 18 पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, गजब की खुशी नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में भी हमने आपको दिखाया था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। और देखिए कुछ ऐसे ही अगर नतीजे होते हैं तो ये जेडीयू के लिए बहुत खुशी की बात होगी, नीतीश कुमार के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जश्न का माहौल जेडीयू दफ्तर में चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें,
जेडीयू दफ्तर में मिठाई मंगवा ली गई है और अब बांटने की तैयारी है। पोस्टर लग चुके हैं पटना की सड़कों पर जिसमें लिखा है बिहार का मतलब है नीतीश कुमार, को 80 सीट मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी जानकारी। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए, बड़ी खबर आपको बता रहे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और इसी सीट से वो लगातार लड़ते आए हैं। इसके लिए उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वहां की जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। देखिए, मंगल पांडे की बात कर रहे थे हम, महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। उन्होंने जनशक्ति जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, उस पार्टी के साथ वो चुनावी रणभूमि में उतरे क्योंकि उन्हें पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया और खुद तेज प्रताप यादव महुआ में उन्होंने की, कई लोगों से बातचीत की, लेकिन इसी दौरान जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार तेज प्रताप यादव पीछे चलते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही लालू प्रसाद यादव के लाल, बड़े और छोटे दोनों ही पीछे चलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिग फाइट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मी। तो बिल्कुल ये जो महुआ के बबुआ हैं वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लालू प्रसाद के दोनों लाल पीछे हो गए हैं। देखिए, राघोपुर से आरजेडी के कैंडिडेट तेजस्वी प्रसाद और कह सकते हैं आरजेडी यानी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प नजारा है और इनके जो कॉम्पिटिटर है बीजेपी के, वो सतीश कुमार राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आने लग रही हैं। तैयारी हो चुकी हैं, ये देखिए। हालांकि मिठाइयों की तैयारी तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से की गई थी, लेकिन आज देखना होगा किसकी मिठाई खट्टी हो गई और किसकी मिठाई में आज स्वाद रहेगा। ये देखिए, पटाखे जलने शुरू हो चुके हैं, जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि रिजल्ट में अभी कुछ और घंटे बाकी हैं, उससे पहले अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन रुझानों में जरूर कह सकते हैं कि भैया एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 192 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 47 सीट पर बढ़त है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत, अगर यही रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी एनडीए की। और जो एनडीए सोच रहा था शायद वैसा ही रिजल्ट की जो तस्वीरें होंगी वो देखने को मिलेगी। यानी कि एक कहा जा रहा था कि ये जो कांटे की टक्कर महागठबंधन में और एनडीए में अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फासला, बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। और इसी वजह से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ये जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर और यहाँ पर जश्न की तैयारियां, चूंकि रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। रुझानों में एनडीए को 190 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए देखिए जश्न शुरू हो चुकी है, पटाखे फूटना शुरू हो चुकी है, मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प तस्वीरें जेडीयू कार्यालय की, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर की तस्वीर। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, झंडा लहराना शुरू हो चुका है, पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। कल टाइगर जिंदा है के पोस्टर, आज बिहार का मतलब नीतीश कुमार लिखना शुरू हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो जीतने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जो तैयारी एनडीए ने की थी, जो स्ट्रैटेजी एनडीए ने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर काम आ गई है। लगातार रुझानों में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बम्पर बहुमत आगे किसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है एनडीए। सबसे बड़ी बात यहां पर तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे दिखाई देने लग रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जेडीयू तीर निशान का ये झंडा फहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जश्न की, उमंग की ये तस्वीर ये दिखा रहा है कि भैया रुझान में ये जो तीर है निशाने पर लग गई है और ये तीर, अब आप देखिए कि तीर के निशान जो है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पर फिलहाल प्रशांत किशोर ने बढ़त नहीं बना रखी है। 293 सीटों पर जनसुराज, 239 सीटों पर
जन स्वराज के उम्मीदवार थे, लेकिन एक भी सीट पर प्रशांत किशोर ने अभी बढ़त नहीं बनाई है। जेडीयू दफ्तर से दिखा रहे हैं। शंख की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, ढोल नगाड़े घंटी सारी ध्वनियां आपको सुनाई दे रही होगी, पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है और ये जश्न की तस्वीरें हम आपको जेडीयू दफ्तर के दिखा रहे हैं। एक और तो तस्वीरें आप देख रहे थे और रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन को महज 50 सीट अब तक मिलती नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन को 50 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देखिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, रैलियां की गई, लेकिन जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि समन्वय नहीं है, एकता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के भीतर नजर आई। क्या इन सब का भी असर पार्टी की सेहत पर पड़ा है, महागठबंधन की सेहत पर पड़ा है? और रुझानों में महागठबंधन को 50 सीट। लक्ष्मी, तो बिल्कुल रुझानों में एनडीए को तो बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे यह समझ आता है नरेंद्र और नीतीश इन दोनों पर भरोसा जताया बिहार की जनता ने। आनंद जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? रुझानों में तो एनडीए जो है बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीरें? देखिए, आज सुबह से जैसे ही रुझान शुरू हुए उसके बाद से ही जश्न का माहौल जेडीयू में था, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बड़ा सा पोस्टर दिखा रहे हैं जो बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा, नरेंद्र मोदी की तस्वीर और सोना सिंह जी ने ये पोस्टर लगाया और इस पे जो लिखा हुआ है बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा कर चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब क्या होता है। और प्रधानमंत्री भी जब अपने चुनाव प्रचार में जाते थे तो ये कहना नहीं भूलते थे कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेडीयू कार्यकर्ता में उत्साह और देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। बिल्कुल आनंद, और यहाँ जो वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं वो अभी भी लगा ही रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें जूम जब आप कर रहे हैं इस पोस्टर पे। लेकिन कल टाइगर जिंदा है कि पोस्टर आनंद, आज बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या मतलब है? बात कीजिए जरा नेताओं से। बिल्कुल, देखिए, और जिन्होंने पोस्टर लगाया उन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा, कल पोस्टर लगाया आप लोगों ने कि टाइगर जिंदा है, टाइगर तो जिंदा था तो दिख गया, लेकिन ये बिहार का मतलब नीतीश कुमार, आप लोग को पहले से पता था क्या कि इतना बड़ा पोस्टर एक सिर्फ मुझे नहीं पूरे बिहार को पता था, इसलिए मैंने कल ही ये सारा प्रिंट करवा के रेडी रखा हुआ था और आज देख लीजिए आपके सामने है। अच्छा, ये जो तरह तरह के पोस्टर लगातार आ रहे थे, इस पोस्टर का मतलब क्या है? इसमें नीतीश कुमार का मतलब, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या जेडीयू को ये उम्मीद थी? बहुत ज्यादा। 2005 से जब से नीतीश जी बिहार को संभाले हैं, इस लेवल पे तो 2010 में भी ऐसे देखे, तो उसके बाद ही बहुत सालों के बाद बीच में एक समय ऐसा भी है 2020 में मात्र 43 सीटों पे सिमट गई जेडीयू। खैर उस टाइम का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बार पूरी बिहार जान रही थी कि नीतीश जी मतलब बिहार, और हम लोग हो सकता है 200 पार कर जाए। और आगे क्या प्लान है? आगे कोई प्लान नहीं, अब जश्न का माहौल है, अब बिहार अच्छा से चलेगा, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिन्होंने लगाया, और आपने बहुत दिलचस्प बात कही थी, अभी भी पोस्टर लगाया ही जा रहा है। हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, अभी पोस्टर लगाया, यानी कि जैसे ही रुझान का दौर शुरू हुआ और रुझानों में एनडीए आगे बढ़ने लगा, जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा मजबूत होते चला गया, वैसे ही पोस्टर लगाने का दौर भी शुरू होगा। और इस वक्त देखिए लोग पोस्टर अभी भी लगा रहे हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, और बड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिन्होंने लगाया, सोना सिंह, बिल्कुल आनंद। और देखिए ये पोस्टर्स तो हम लोग देख ही रहे हैं और ऐसा लग रहा है रुझानों से कि जेडीयू जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकलने वाली है बिहार में।
देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात, मैंने प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर कुछ देर पहले भी पहुंचे थे जेडीयू दफ्तर, उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने जब हमने पूछा कि क्या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जेडीयू उभरेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए उभरेगा। ये बहुत दिलचस्प है, यानी कि एनडीए घटक दल अभी भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें ना कोई बड़ा भाई ना छोटा भाई, ये सामूहिक रूप से एनडीए की जीत है और शायद इसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जेडीयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, बिहार के तमाम जिलों में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, और उस समय से ये मैसेज देने की पूरी कोशिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सभा में पहुंचते थे तो वो कहते थे कि नरेंद्र और की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। पोस्टर जो आपने बातें कही, जाहिर तौर पे जेडीयू एक बड़े पार्टी के तौर पे उभर रही है, सिंगल सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर सकती है, लेकिन एनडीए नेताओं के जुबान से, खासकर जेडीयू के नेताओं से अगर सुने तो ये तय है कि एनडीए की पूरी कोशिश है कि जो ये तालमेल, वो तालमेल बरकरार रखे। आनंद, एक और सवाल देखिए, नीतीश कुमार के लगातार स्वास्थ्य पर सवाल उठाया गया, बार बार ये आरोप लगाए गए कि नीतीश कुमार चेक कर हैं, इस बार अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, यही चर्चा चल रही थी। लेकिन अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे सिरे से खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा एक और भी कार्यकर्ता लोग, आप लोग आइए। अच्छा, बीच में नीतीश कुमार के सेहत को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे, ये कह रहे थे कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये कुछ नहीं, सब बकवास था। इस बार भी आपने देखा कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, जो हम 18 को ओथ लेंगे, वो घर में थे, और नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री, वो 6 विधानसभा में प्रचार किए, इसलिए बारिश हो रही थी उस समय के, हाँ, उसके बावजूद भी किए हैं। हम लोग तो चाहेंगे अंतिम सांस तक जो है वो बिहार को संभालते रहे। तो देखिए ये सिर्फ बातें भर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हिस्सा रहा है। देखिए बीच में 2 दिन बारिश हुई थी और नीतीश कुमार बारिश में जो प्रचार करने निकले थे, शायद उसी की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के सेहत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, और जब नीतीश कुमार ने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 74 सभाएं की और 12 रोड शो किया, 74 हेलीकॉप्टर से और 12 रोड शो करके वो जनता के बीच में पहुंचे, इससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने उन तमाम आलोचकों को एक बड़ा जवाब दे दिया कि उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आज भी बिहार की सेवा करने को इतना ही। आनंद, लौटेंगे आपके पास, ऐसे ही नजर बनाए रखिए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल है। लेकिन इसी बीच संजय झा को क्या कुछ कहना है वो फिलहाल दर्शकों को सुनवा देते हैं। संजय झा क्या कह रहे हैं? तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड हो बने चुनाव लड़ रहा, पूरा एनडीए इंटैक्ट था, और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही नतीजे जो हैं आने वाले हैं। तो जो भरोसा बिहार की जनता पर जताया गया था, वैसे ही बिहार की जनता ने वही रिजल्ट भी दिया है, ऐसा लग रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की महाजीत की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। बड़ी खबर, अब तक की गिनती में, अब तक के रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के साथ आने पर चिराग को बड़ी सफलता। देखिए बड़ी बात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा है। इस चुनाव से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश के नाम पर ये पक्की मोहर लग चुकी है। ये भी एक बड़ी बात इस चुनाव के प्रदर्शन से नजर आ रहा है। महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है, अब तक के रुझानों से यही समझ में आ रहा है। एनडीए के साथ आने पर एक बड़ी जो जीत है वो नजर आ रही है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार काम नहीं आया। चुनाव की बड़ी बातें हैं लक्ष्मी। तो बिल्कुल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बार गेस्ट से जान लेते हैं इस पर उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे सर? अभी देखिए बम्पर जीत है एनडीए की, और इसमें नो डाउट नीतीश कुमार का चेहरा जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय रूप से उभरा है पूरे इस चुनाव के दौरान।
और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि महिलाओं का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट इस बार हुआ है वो बहुत अधिक काम आया। आप क्या कहेंगे, किसका चेहरा काम आया दोनों में? नीतीश कुमार का न केवल चेहरा काम आया बल्कि जीविका दीदी के जरिए जो उनका प्रबंधन रहा है वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है इस चुनाव के लिए। और साथ ही एनडीए की जो नीतियां रही है, बीजेपी अलायंस के भीतर की जो परिस्थितियां रही हैं, उनका जो समन्वय रहा है, वो सब इस चुनाव में कारगर साबित हुआ एनडीए। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है लगातार काफी सिरफुटअव्वल रहा कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, लेकिन वो अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी इनफाइटिंग थी, फ्रेंडली फाइट हुई 10-12 सीटों पर, फैमिली फाइट, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, आइडियोलॉजिकल फाइट हुई, मुसलमान की बात करते हैं, ओवैसी जो है सीमांचल में मुसलमान नेता चुनाव लड़ रहे थे अलग से, गठबंधन उनके साथ नहीं बना पाए। जितनी तरह की फाइटें हो सकती थी इनके बीच में, वो फाइटें थी। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में 2 महीने तक कहते हैं कि जब इनका घोषणा आया, जब इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया, उसमें राहुल गांधी नहीं थे, उनकी तस्वीरें घोषणा पत्र पर नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर इतनी सारी गांठें थी कि तेजस्वी खुद ही अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, और जिसको 11 सीटें दे रहे हैं उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। जो बड़ा अलायंस पार्टनर है उससे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं, जो जिस मुस्लिम के वोट बैंक पे इतना जो है गुमान करते हैं, उस मुस्लिम का कोई उप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। तो इतनी सारी गांठें थी और इतने सारे अंतर विरोध थे और इतनी सारी दिक्कतें थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि ठीक है, आप क्या कहेंगे महागठबंधन के इस खराब प्रदर्शन पर, क्योंकि अभी तो रुझानों में खराब प्रदर्शन ही दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, और दूसरी बात नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार के प्रति जो सिंपैथी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई, वो वोटरों को मतलब कि अंदर चुभ गया। दूसरी बात, एन चुनाव के समय में 10,000 का आना, महिलाओं के खाते में आना, वो गेम चेंजर साबित हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखिए, बिहार में एनडीए लड़ रही है, मोदी का चेहरा भी है, लेकिन आज बात हो रही है किसकी? सिर्फ नीतीश कुमार की। यानी बिहार में नीतीश कुमार ही पालनहार है, और बिहारियत को अगर देखिए तो नीतीश कुमार से मतलब बीजेपी यहाँ मोदी सरकार नहीं आया। अच्छा, तो ये जो फ्रीबीज की जो राजनीति लास्ट में की गई, क्या वही असरदार रहा है फिर से एनडीए को जीत दिलाने में, या फिर क्या? एक लंबी परंपरा है, जेडीयू और बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, देखिए चाहे वो ग्रास रूट पे 50% आरक्षण सबसे पहले देश में लाने का काम नीतीश जी ने किया, पंचायती राज में महिलाओं के लिए, वही बात आप देखिए कि सरकारी सेवाओं में किया, वही पुलिस सेवा में किया, वही उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जो महिला योजना है उसमें किया, वही उन्होंने जो महिला उद्योग स्थापना के लिए किया। खासतौर पर महिलाएं बड़ा फैक्टर रही है। लौटूंगी सर आपके पास भी। तो देखिए लगातार जो हमारे पास रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं, और उससे ये समझ आ रहा है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन महागठबंधन का देखने को मिल रहा है, और एनडीए जो है बम्पर बहुमत से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमित के पास चलते हैं। अमित, अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप मुख्यमंत्री की बहन के पास शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा बात कीजिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे इस वक्त एनडीए के प्रदर्शन को लेकर। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं चाहूंगी एक बार ऑडियो टेस्ट करें। फिलहाल देखिए लगातार सभी लोगों से अब बयान भी लिए जा रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे क्या समझ आता है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये एनडीए का है बहुमत कह सकते हैं कि ये रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। 191 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ, ग्राफ एकदम डाउन जाता हुआ, 48 सीट दिखाई दे रहा है। जन स्वराज का तो खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े दावे जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन यहां पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, और अदर्स के पास 4 सीटों पर ऐसा लग रहा है बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव खुद अपनी ही सीट पर राघोपुर से जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। अब ये तस्वीर देखिए, मिठाइयों के डब्बे जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मिठाइयों के डब्बे कल से ही खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज पता चलेगा किसकी मिठाई जो है वाकई मीठी लगी है और किसकी मिठाई आज जो है उसका डब्बा भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि उनको हर का स्वाद चखना पड़ेगा। और मिठाई का स्वाद, ये जो मिठाई का स्वाद है वो आज पता चलेगा भाई कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन को सच में मीठे का स्वाद चखने को मिल है। तो मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में जरूर एनडीए ऊपर चल रहा है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई रिजल्ट आने में अभी भी वक्त है, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, रात तक भी बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन देखिए तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयार की गई है गाड़ी सज धज के तैयार है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी ने, जेडीयू ने, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी लोग, ये देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर अभी से मिठाई खिलानी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हो सकता है आमने सामने मिले ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाना शुरू हो चुका है भाई। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से बधाई के तौर पर 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। कुछ लोग पोस्टर हाथ में भी लिए हुए, जरा जूम करके दिखाइए, 2025 के भी नायक होंगे सीएम नीतीश। और यहाँ पर देखिए लड्डू खिलाते हुए, मोतीचूर के लड्डू है भाई नीतीश कुमार को खिला। इससे ये समझ आ कि लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, कुछ जगह से तस्वीरें आ रही हैं। दिन है, दिन के उजाले में पटाखे हैं, क्योंकि जश्न है, जश्न की तैयारी है। और ये जो रुझान है लगभग अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान जो है और ज्यादा नतीजों में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी शायद कामयाब हो गई। जितना कुछ किया गया इस बार एनडीए की तरफ से, सारे केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया एनडीए की तरफ से, और इतने स्टार प्रचारक आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर, और रैलियों पे रैली, जनसभाएं की गई ताबड़तोड़। उसका असर शायद दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का, ऐसा लगा है कि उनके ही जो घटक दल हैं वो उनको डेंट कर गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश कुमार, यानी कि ये जो जोड़ी थी डबल एन की, नरेंद्र और नीतीश की, ये असरदार रही है। एक बार फिर से लौटेंगे, अमित हमारे संवाददाता जो हैं वो मुख्यमंत्री की बहन के घर पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे जुड़ेंगे। अमित, आपकी मौजूदगी कहां है और इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है उनकी बहन को एनडीए के इस प्रदर्शन पर? जरा दर्शकों को भी सुनवाइए, उनकी बहन क्या कह रही है। बिल्कुल, देखिए हम सीधा जो है कनेक्ट आप ही से करवा देते हैं। आप जो भी सवाल करना चाहें इनकी खुशी से जुड़ी हुई, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। छोटी बहन है इंदु कुमारी, जो नीतीश कुमार की सबसे छोटी है और नीतीश कुमार की जो पत्नी थी उनकी है, तो इनसे सीधा, हाँ, ये सीनियर थी, वो इनसे सीनियर थी। जी जी बिल्कुल, सीधा संवाद करिए आप इनसे। जी नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ एक बार फिर से नीतीश कुमार तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि इस बार यही होने वाला है, एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। हाँ, लग रहा था। आपको क्या लगता है कि सच में इस बार जो महिलाएं हैं बिहार की, भरोसा जताया है मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर? हाँ, महिलाएं तो जताई है। अच्छा, आप खुद महिला हैं, आप भी जब लोगों से मिल कुछ ना कुछ आप सुनती होंगी, क्या लगता है आपको महिलाएं क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के बारे में? बहुत अच्छा सोचती हैं। बहुत अच्छा सोचती हैं। और अभी क्या लग रहा है आपको कि बाकी जो एनडीए ने मेहनत किया है उसका ही ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गदगद हुए पड़े हैं एनडीए के सारे नेता भी? सही, उनका मेहनत ही दिखा रहा है। मेहनत दिखा रहा है। हाँ, फिलहाल ऐसे निजी लेवल पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार
बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत एक्टिव रहते हैं। और महिलाओं के लिए देखिए, जब से बिहार उनके हाथ में आया है, यानी कि नीतीश कुमार के हाथ में आया, तब से महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। आप भी काफी पुरानी है, क्या आप देखती हैं कितना बदलाव हुआ है बिहार में महिलाओं के लिए? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। कुछ आप फर्क बताना चाहेंगे? पहले कुछ नहीं, महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं था। चाहेंगे इंदु जी कि आप दो चार? पहले वैल्यू नहीं था, वैल्यू नहीं था। घर से महिलाएं नहीं निकलती थी। हाँ। घर से भी नहीं निकलती थी, डरती थी। अच्छा, और क्या कुछ बदलाव हुआ है? शराबबंदी पर क्या कुछ? बहुत कुछ, महिलाएं को नौकरी में बहुत ज्यादा आ गई है। शराबबंदी पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब शराब बिक्री होती थी तब कैसा दौर था, घरों में महिलाओं को कितना कुछ सहना पड़ता था, इस पर कुछ कहेंगे आप? बंदी से तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। सबसे ज्यादा महिलाएं ही खुश हैं। महिलाएं खुश हैं। अच्छा, पहले क्या देखने को मिलता था घर घर में? क्या महिलाओं को वाकई ऐसा प्रताड़ना सहना पड़ता था उनके से? जब शराब पी के आते थे तो महिलाओं को बहुत ज्यादा तंग करते थे। कभी आप इज्जत नहीं देते थे। कोई इज्जत नहीं देता था। कभी आपने खुद से देखा है ऐसी कोई एक भी स्थिति जहां पर महिलाओं को वाकई काफी टॉर्चर झेलना पड़ा हो? देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। अच्छा, और जंगल राज? हम भी जॉब में थे। अच्छा, एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे? तो जंगल राज में खुद हम ही झेले हैं, हम ही लोग झेले हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताइए ना, कैसा होता था? क्योंकि नीतीश कुमार बार-बार जंगल राज का जॉब में झेले हैं। क्या होता था? बार बार जॉब से हम लोग को हटा दिया जाता था। बहुत शुक्रिया इंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ने बिहार में काम किया है, विकास पुरुष के नाम पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में, दुनिया में हमारे भारत की जो पहचान हमें बना करके दी है, उससे मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान रही अपने विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही सजग रहें, अवेयर रहें, अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि बहुत सारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जो कि मैंने इस पूरे कैंपेन के दौरान महसूस किया कि सब कुछ नेगेटिव पीआर स्टंट क्या होता है मैंने देखा, जो मेरे खिलाफ भी बहुत चलाया गया। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड लोगों से मिलती थी तो उसका 1% भी लोगों के जहन में नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा चल मीडिया पे। तो बस ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है। तो ये आप सुन रहे थे मैथिली ठाकुर को, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भरोसा जताया युवाओं पर, यूथ पर। उन्होंने कहा सजग रहिए, अवेयर रहिए, और देखिए लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि भाई कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे घट रहा है। ये अप डाउन अभी भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी और सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए कुछ देर पहले जेडीयू को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू को भी बम्पर बढ़त है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज्यादा 75 सीट पर देखिए जेडीयू पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो बिहार में कहें तो पहली बार सबसे आगे बीजेपी है। अभी तक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है बीजेपी कुछ कमाल करने जा रही है। रुझानों में बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 87 सीटों पर बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और फिर जाकर कहीं आरजेडी होगा। देखिए राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे हो चुके हैं। तो रुझानों में हमने बताया था कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे और एक बार अभी फिलहाल अपडेट ये है कि राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आगे हो चुके हैं अब तेजस्वी, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा आरजेडी का तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी सीट राघोपुर
सीट पर उन्होंने आगे बढ़त बना ली है। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अप डाउन देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव फिर से आगे बढ़ चुके हैं, कांटे की टक्कर है, बिग फाइट है राघोपुर सीट पर। और यहां पर इस सीट को लेकर के काफी ज्यादा ये सीट चर्चा में रही थी। प्रशांत किशोर भी वहां पर एक दिन ठहरे थे, इस सीट पर जाकर उनके भाई तेज प्रताप ने भी वहां पर प्रचार किया था, लेकिन तेजस्वी के अगेंस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भाई राघोपुर सीट पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस वक्त चलेंगे अमित के पास। अमित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के जो बहनोई हैं उनसे बातचीत करेंगे वो। अमित, देखिए नीतीश कुमार के बहनोई से बातचीत सुनाई देंगे। अमित न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, लगातार ग्राउंड से कवरेज दे रहे हैं। तो अमित, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि एनडीए के प्रदर्शन पर उनकी, अनिल जी हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ना चाहेंगे एक बार और जानेंगे कि आखिर एनडीए के प्रदर्शन पर उनका क्या कुछ कहना है। हाँ। अनिल, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बोलिए बोलिए। अनिल जी, हम चाहेंगे कि आप टिप्पणी करें कि कैसा प्रदर्शन एनडीए का आपको लग रहा है, और इस बार जो मेहनत की है नीतीश कुमार ने, क्या उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या शायद आवाज ठीक से इनको नहीं मिल पा रही है। हेलो अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि रुझानों में जो एनडीए का प्रदर्शन दिख रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पूरा माने पूर्ण विश्वास था कि एनडीए का पूर्ण बहुमत आएगा। पूर्ण बहुमत आएगा। और जेडीयू के खासतौर पर प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जेडीयू को तो मैं कल ही बोल दिया था कि ये 80+ होगा। 80+? क्या बात है। अभी रुझान तो हालांकि नंबर्स तो आगे बढ़ ही रहे हैं अनिल जी, लेकिन नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने खूब जनसभाएं की हैं। जितना कार्य किए हैं हाँ, तो उसका फल है। फल है। और क्या लग रहा है इस बार वो कौन से जितना कार्य किया है उसी का फल है। अच्छा, ठीक है। तो अनिल जी थे हमारे साथ। है कि महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है कि खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने और उसका ही ये फल है। तो बहन और बहनों ने खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने, और ये देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हैं, ढोल नगाड़े शहनाई सब बजनी शुरू हो चुकी है। और अभी से ये जश्न, और ये जश्न दिखा रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस कदर जोश हाई है। 2025 विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन है, वोटों की गिनती लगातार जारी है और गिनती में हम लोग बता रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, बढ़त कौन आगे बना लिया है, कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझान में आगे पीछे अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो हो रहे हैं। ये नतीजा नहीं है, किसी भी सीट पर अभी हमने जीत की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं वो आंकड़े दिखाते हैं कि हाँ, ये कैंडिडेट जीत सकता है, ये कैंडिडेट पीछे हो सकता है, क्योंकि जो वोटों का फासला होता है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देकर बिहार के विकास को गति दी है और पांडव दल की यह इतनी बड़ी जीत पर हम बिहार के सभी मतदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आप लोगों ने सोचा था कि आंकड़ा यहां तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल सोचे थे। हम लोग कहते थे कि प्रचंड बहुमत से और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महागठबंधन का साफ होगा, तो सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान
बिल्कुल, देखिए आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे और पूरे एनडीए खेमे में जो एक जोश है वो दिखाई दे रहा है। जोश की वजह भी है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं किस तरीके से एक जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है, यानी कि एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इन रुझानों में एनडीए ने धूल चटाया है। और चलिए तो देखिए इसी खबर को लेकर के अगर अनंत सिंह की अगर बात करें तो मोकामा में पड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि लड्डू मिठाइयां काफी पहले बननी शुरू हो गई थी। सीधे वहां की ग्राउंड तस्वीर दिखाते हैं। पर लगातार जश्न मन रहा है तो महाभोज की भी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए हजारों की संख्या में जो समर्थक आए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है और पुलाव से लेकर तड़का हो, रसगुल्ला, पूड़ी, जलेबी यहाँ पर आपको देखने को मिल, यानी दूर दूर से लोग फेवर में जो रुझान है उसके बाद जोश जो है हाई पर है। एक तरफ जो है ढोल नगारे के साथ जो कार्यकर्ता है वो थिड़क रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ महाभोज में भी देख सकते हैं कि हजारों लोग जो हैं बैठे हुए हैं। तो स्वाद है वो स्वाद भी शायद लाजवाब होगा। आज कैसा लग रहा है स्वाद? आज बहुत ठीक है, मजा आ रहा है। बताइए, हम बहुत दिन से स्वाद ले रहे हैं। बताइए। लंका में रावण और मोकामा में बाभन मिलकर भोज खा, प्रतापी राजा है उनके जैसे देख लो आज जैसे। अब तो जीत वाला भोज हो गया। आपका जीत नहीं, बिहार में रिकॉर्ड टूट तो इतना वोट से कोई नहीं जीती। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, ठीक ना। लगातार जो है हम आपको आइटम दिखा रहे हैं ये और हर टेबल पर आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। हर वर्ग के लोग यानी मोकामा के जो हैं हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यही तस्वीर जो है लोग बिल्कुल। तो देखिए ये अनंत सिंह की आवाज की आप तस्वीर देख रहे थे और तस्वीरें बयां कर रही किस तरीके से जेडीयू खेमे में यहाँ पर उत्साह है और लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था है। और व्यवस्था इसलिए है क्योंकि जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वहां अनंत सिंह के वो ये कह रहे थे कि आज से हम नहीं, हम सालों साल से करते आ रहे हैं। अनंत सिंह भले कभी जेल में हो या फिर कभी बाहर हो, लेकिन हम ऐसी ही तैयारी करते हैं क्योंकि हम अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त रहते हैं। और देखिए दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की अगर बात करें तो तैयारियां यहां भी पूरी कर रखी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह जो है वो काफी उत्साहित उनके समर्थक दिख रहे हैं। दफ्तर से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हैं। आनंद, सुबह से ही तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां पर जेडीयू का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है और जेडीयू ने कई बड़े संदेश दिए पोस्टर के जरिए। अभी तस्वीर क्या? देखिए अभी बैंड बाजा का दौर शुरू हो चुका है, लगातार यहाँ पे बज रहा है और सबसे पहले यहाँ पे मिठाइयाँ तरह तरह की रखी गई। पहले हम मिठाइयों का वैरायटी दिखा देते हैं। छोटू सिंह है, अरविंद सिंह है, काफी पुराने नेता है और तरह तरह के लड्डू है। अरविंद जी, इतने तरह के लड्डू हम लोग ने आज सबसे पहले बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार की जनता ने विकास के नाम पे खासकर बच्चे, महिलाएं, परिवार से बाहर जाके एनडीए के वोट दिया, नीतीश जी को बाहरी बहुमत बनाया। अच्छा, इतने तरह के वैरायटी के लड्डू हैं, कुछ खास वजह? देखिए ये हर जगह का एक जगह मिठाई नहीं मिला। 161 केजी 161 केजी मिठाई। हाँ, हम लोग का नाम पर्सनल एक सीट 1 किलो, तो अभी तक हमने 181 केजी लाया है और हमको उम्मीद है कि 225 सीट आएगा तो 225 केजी हम लोग मिठाई बांटेंगे। और यहाँ से अभी हम लोग इनकम टैक्स तक जाएंगे। पूरा बाजा गाजा, पटाखे का भी इंतजाम है। हाँ, पटाखा, अबीर, गुलाल, मिठाई सब चीज है। जो आज दशहरा भी है, होली भी है और दीपावली भी मनाएंगे हम लोग। सब पर्व एक ही साथ मनाएंगे। जो नीतीश कुमार जी का जनादेश मिला, उसी जनादेश का आज हम लोग बिहार के साथ। इतना उम्मीद था कि इस तरीके से परिणाम है जो अभी तस्वीर दिख रही है कि भाई एनडीए बहुत लीड ले रहा है, ये उम्मीद था। मैंने बिहार का 25 विधानसभा में घूमा और 15-20 आदमी से हम जब पूछते थे तो लोग एक ही बात बोलता था, नीतीश कुमार। एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर दिया बिहार के जनता ने, क्योंकि अब बिहार के बच्चे बाहर देखिए IAS IPS डॉक्टर। देखिए ये तैयारी है दफ्तर के ठीक बाहर की तैयारी। हम आपको तरह तरह के पटाखे मंगाए गए,
लड्डू भी यहाँ पे ये लड्डू अभी हम लोग लेके बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे, यही लड्डू भी खिलाएंगे सब लोग को। हाँ यही लड्डू मतलब एनडीए में बस आधा घंटा में निकलेंगे। मतलब ये लड्डू एनडीए में बंटने वाला? हाँ पूरा एनडीए और पूरे जो जनता चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबको हम लोग मिठाई खिलाएंगे, सब लोग को। तो देखिए ये तस्वीर है और हम आपको कुछ बैनर पोस्टर हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पोस्टर सुबह से लगाए गए थे इसका मतलब क्या था। एक बार फिर से हम उस पोस्टर को दिखाने की कोशिश करेंगे जो पीछे 2-3 दिनों से पटना की सड़कों में लिखा हुआ था, जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पोस्टर परसों से लगाया गया था नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर की तस्वीर। तो ये एक बड़ा संकेत है, शायद कार्यकर्ताओं को साफ साफ लग रहा था कि एनडीए इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। लेकिन एक बार फिर से दिखा रहा है शंख बजाएगा, शंख बजाकर जीत जो रुझान है उसके सेलिब्रेट करने की तैयारी है। तो घंटा से लेकर शंख सब कुछ बजा जाना चाहिए। बजाते थक गए? थके नहीं है, ये एकदम जोश और जुनून है और एकदम आगे भी जुनून रहेगा। ये सब खेलिए आज ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुशासन की सरकार थी एनडीए मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो बिहार के जनता जनार्दन ने विश्वास किया है। ये बहुत आज होली भी नहीं है, दिवाली भी नहीं है, लेकिन रंग अबीर गुलाल सब पटाखा। अरे पूरे बिहार ने होली दिवाली याद कर दिया है। अब नीतीश कुमार का शासन जो है वो कमाल कर दिया। लोग कह रहे थे कि सत्ता नहीं आएगा, देख लीजिए। देखिए जेडीयू में बड़े नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया तो देखिए ये जेडीयू में बड़े नेताओं का भी धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और चले बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे और इस बीच हूटर की आवाज मतलब बड़ी खबर, और बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं ब्रेकिंग सहयोगी हमारी जुड़ी हुई है जया के पास। बिल्कुल, और राहुल देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है मोकामा से। ये बड़ी जानकारी, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और दीघा की अगर बात करें, देखिए संजीव चौरसिया इस वक्त आगे बताए जा रहे 21,000 से ज्यादा वोटों से। बांकीपुर की बात करें, नितिन नवीन 18,600 से ज्यादा वोटों से आगे दिखा रहे हैं। और कुम्हरार की बात की जाए, यहां से भी बीजेपी आगे। पटना साहिब रत्नेश की बात की जाए वो आगे हैं। और ये तमाम वो नाम हम बता रहे हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर की देखिए रीतलाल यादव जो कि 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे। भाई वीरेंद्र की बात की जाए मनेर से, वो भी 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। बारी शरीफ श्याम रजक 5,049 वोटों से आगे हैं। मसौडी की बात कर ले, अरुण मांझी 3,907 वोटों से आगे। पटना साहिब की बात करें, रत्नेश कुमार 10,561 वोटों से आगे हैं। ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं। मोकामा देखिए, अनंत सिंह 12,249 वोटों से आगे हैं। और लगातार हम ये बता रहे हैं कि कैसे देखिए अब जैसे जैसे आंकड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो रही है। तस्वीर ये साफ हो रही है कि बीजेपी के संजय कुमार जो कि 24,243 वोटों से कुम्हरार से आगे है। रत्नेश कुमार पटना साहिब से आगे चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा है। अब अंतर बढ़ते जा रहा है, फासला बढ़ते जा रहा है। और इससे ये बात भी समझ आ रही है कि जो अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है, बहुत कम इसके चांसेस है कि ये पीछे भागे। बांकीपुर देख लीजिए, नितिन नवीन 18,676 वोटों से आगे। कुम्हरार की बात करें, यहां पर देखिए संजय कुमार 24,242 वोटों से आगे है। पटना साहिब रत्नेश कुमार 10,000 से ज्यादा का ये फासला हो चुका है, वो भी आगे है। मोकामा जो सबसे हॉट सीट रही, चर्चा में। और अब देखिए अनंत सिंह जिन्होंने कहा कि जनता उनकी लड़ाई लड़ेगी, वो तस्वीर मोकामा में बनती हुई दिख रही है। अलग अलग जगहों के ये जो आंकड़े हैं हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दर्शक देख पा रहे हैं। और देखिए पटना साहिब रत्नेश कुमार जो कि 10,000 से ज्यादा का लीड लिए हुए हैं। मोकामा में भी 12,000 से ज्यादा का लीड अनंत सिंह के साथ है। और इसके बाद देखिए मनेर भाई वीरेंद्र जो कि अपने बयान से और ऑफिसर्स को हड़काने के बाद बहुत चर्चा में आ गए थे, वो भी आगे चल रहे हैं। तो जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। मसौड़ी देखिए अरुण मांझी जो कि 3,000 से ज्यादा वोटों से आगे। सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से आगे चल रहे हैं, उनका भी फासला 2,000 से आगे बढ़ चुका है। रीतलाल यादव वो भी लीड लिए हुए हैं। मोकामा की बात कर ले, दीघा की बात कर ले, इन तमाम सीटों पर उम्मीदवार जो लीड लिए हुए हैं
उनके नाम बता रहे हैं। वो फासला कितना है राहुल, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तो पटना जिले की अगर बात करें और पटना जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां की 14 विधानसभा सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये कई जो विधानसभा क्षेत्र है वो गड़माना जाता है। लेकिन इन सबके बीच 4 तस्वीरें आपके बीच और 4 तस्वीरें देखिए अनंत सिंह के घर पर किस कदर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और ये जश्न की तस्वीर आज नहीं 1-2 दिन पहले से ही चल रही है। दूसरी तस्वीर जेडीयू दफ्तर की देखिए जहां जो है वो काफी में यहां पर रखी गई है और मिठाइयां जो है वो बांटनी शुरू हो चुकी है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है जहां पर देखिए आज का जो दौर है वो चल रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी इन पोस्टरों में इन झंडों में आपको दिखाई। चौथी तस्वीर देखिए जहां पर जीत का शंखनाद किया जा रहा है, शंख बजाया जा रहा है और आज यही तस्वीर जो है जेडीयू दफ्तर जेडीयू खेमे में नजर आ रही है। और देखिए इस बार की अगर हम बात करें 2020 से 2025 का चुनाव कितना अहम जेडीयू के लिए और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा ये समझना बेहद ही जरूरी है क्योंकि पिछले 2020 की बात करें 43 सीटों पर सिर्फ सिमटी थी जेडीयू 2 की संख्या, हालांकि और सुमित सिंह और एक और जो चिराग पासवान के विधायक थे वो पास में आए, 45 का आंकड़ा पहुंचा था। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है जो रुझान सामने आया है उस हिसाब से कि +40 का जो आंकड़ा है वो जेडीयू इस बार पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इन रुझानों की बात कर रहे हैं, नतीजे अभी पूरे तरीके से आने बाकी है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं नीतीश फैक्टर ने एक बड़ा जो काम है वो जरूर किया है। नीतीश कुमार के फटीग फैक्टर की बात हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जो चुनाव की वो तस्वीरें याद भी करनी चाहिए कि जब आंधी चल रही थी, जब हेलीकॉप्टर रुक पड़े थे, उड़ान हेलीकॉप्टर नहीं भर पा रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो सड़क मार्ग से ही चलेंगे और जाकर के उन्होंने कई जनसभाएं एक साथ की और उसी जोश उत्साह के साथ वो जनसभाओं को संबोधित करते रहे। यानी कि उम्र करके जो चर्चा हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बताया कि हम किस तरीके से हम मेंटली हम फिजिकली फिट हैं और लोगों से हम कनेक्ट भी करते हैं। नीतीश कुमार का जो विजन और जो तस्वीरें हमने देखी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, और इस बीच एक बार फिर से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए कुछ बिग फाइट की तस्वीर। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। सतीश कुमार की अगर बात करें तो पीछे बीजेपी के प्रत्याशी ये चल रहे हैं। यहां पर कांटे की जो टक्कर है राउंड द राउंड वो देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार आंकड़े काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव पीछे तो कभी सतीश यादव आगे और कभी सतीश यादव आगे तो कभी तेजस्वी पीछे, ये आंकड़ा चल रहा था। लेकिन जैसे ही अगले अगले राउंड की जो काउंटिंग हो रही है उसमें ये तस्वीरें समय दर समय जो है वो बदल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के लिए ये जो आंकड़े खास करके चुनावी रुझान वाले हैं ये बहुत संतुष्ट करने वाले उनके लिए नहीं होंगे। और बिल्कुल ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए और ये तस्वीर सामने आई है जहां जश्न का माहौल एक बार फिर से दिखाई एनडीए खेमे में दे रहा है। उसकी एक तस्वीर देखिए जहां गाजे बाजे और जो शहनाइयां कहीं बज रही है, अबीर गुलाल जो है वो लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एनडीए खेमा जो है वो आज उत्साहित दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से उस टैली पर नजर डाले तो ये आंकड़ा 192 का पहुंच गया। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखिए, बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और देखिए बीजेपी ने इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है और जो रुझान सामने आया है वो रुझान भी बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी की जो बराबरी है वो इस बार देखने को मिली है। बराबर सीटों पर लड़ा तो काफी एकाध सीटों का जो फासला है उस फासलों से दोनों पार्टियां आज इन रुझानों में दिखाई दे रही हैं। कई बार ये पूछा जाता रहा कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती आई कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी वाली तस्वीर है किसी नेता या फिर किसी प्रत्याशी के रूप में मैं उनके बीच में नहीं गई। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आगे हेल्प करेंगे। एक संवेदनशील व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से राजनीति में भी अपनी जगह बना सकता है। इस चीज़ को मुझे कायम करना है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए,
अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए। और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है, उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। बिल्कुल। तो देखिए एनडीए खेमे का उत्साह और ये तस्वीर है, ये तस्वीर बिहार विधानसभा की है। और यहां पर सीटों की आंकड़ों को अगर देखें तो ये समझ में आता है टैली क्या कहता है, उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये टैली कहता है कि एनडीए खेमे में किस कदर उत्साह है। आंकड़े आने जो है वो शुरू हो चुके हैं। 190 ये एनडीए का आंकड़ा है, ये महागठबंधन का 49 का आंकड़ा जो काफी कम है। और जन स्वराज पार्टी जिन्होंने बड़ी उम्मीदें कर रखी थी चुनाव से लगातार, और इस बीच एक बड़ी खबर जया के पास। बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि अब जीत का जश्न दिख रहा है, तस्वीर रही है और किस तरीके से बड़ी खबरें भी सामने आ रही है वो भी अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जीत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, महाजीत की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ। और जो टैली अगर आप देखें, एनडीए 190, महागठबंधन 49, जेएसपी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी 0 अदर 4, नीतीश के नाम पर पक्की मुहर। महागठबंधन का बेहद खराबी चुनाव प्रदर्शन आप ये कह सकते हैं। और महागठबंधन में अगर आप देखें जो सबसे बुरा प्रदर्शन दिख रहा है वो कांग्रेस का है। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार चेहरा काम नहीं आया। जिस तरीके से 2-2.5 महीने तक ये लगातार गहमा गहमी दिखी कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। ये कहा गया कि जबरदस्ती अपनी बात तेजस्वी ने मनाई, लेकिन वो बात मनवाने के बाद भी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पर मुहर लगाई गई, लेकिन वो सब कुछ धराशायी दिख रहा है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी के सामने सब पस्त हो चुका है। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार का चेहरा काम नहीं किया और नीतीश के नाम पर अब पक्की मुहर है। कोई संशय की स्थिति नहीं दिख रही है राहुल, क्योंकि लगातार ये सवाल भी कहा जा रहा था, इस सवाल को लेकर लगातार बातें हो रही थी कि आखिर सीएम चेहरे को लेकर बात क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखें, इन तस्वीरों को देखें तो ये साफ जाहिर है कि नीतीश के नाम पर मुहर है। तेजस्वी यादव को लेकर जो तमाम बातें हुई कि सीएम चेहरा, अगर वो कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, राहुल गांधी को उन्होंने पीएम बता दिया, लेकिन उनको खुलकर राहुल गांधी ने सीएम चेहरा नहीं घोषित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सीएम चेहरा करवाया और अब देखिए वो सब कुछ धराशायी हो चुका। अब ये देखिए तस्वीरें, नीतीश कुमार की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जोड़ी, नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने काम कर दिया, बिहार में कमाल कर दिया है। एक एक तस्वीर और उसके मायने बहुत खास है। नीतीश के नाम पर पक्की मुहर दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें जो है आंकड़े बयां कर रहे किस तरीके से महागठबंधन ने कितना खराब परफॉर्मेंस किया। हालांकि 2020 की अगर बात करें तो उस वक्त उम्मीदें काफी ज्यादा जगी हुई थी। एक बार टैली पर नजर डाल लेते हैं फटाफट। और टैली क्या कहता है, तो एनडीए का खेमा जो है वो 191 का जो आंकड़ा है वो इस रुझानों में छू चुका है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ बढ़ते हैं 48, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि बुरा परफॉर्मेंस जो है महागठबंधन का अब तक का इसे माना जा सकता है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो साख दांव पर लगी थी उस साख पर बट्टा है। पार्टी वादे बड़े किए गए, ये चुनावी वादे ये किए गए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और उसको सोच करके जाति से ऊपर उठ करके वोट कीजिए, लेकिन ये धाराशायी ये पार्टी। और दूसरी तरफ जो 4 की बात करें अदर्स की, उनकी भी संख्या वो नजर आ रही है। और ये पूरा जो आंकड़ा है वो क्या कहता है उसे हम गेस्ट के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर जी सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। 191 का जो आंकड़ा है वो छू चुका है एनडीए, क्या कहेंगे? ये देखिए ये विश्वास है और ये जो n + n = n² हो गया। ये जो है नरेंद्र और जो नीतीश जी की जोड़ी है और नीतीश जी की जो विश्वसनीयता है बिहार के पॉलिटिक्स में, उसका एक बहुफलन है। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बड़ा कमबैक किया, 43 से लेकर के अब इन रुझानों में 80 के आसपास वो आंकड़ा तक पहुंच गया।
निश्चित तौर पर बेहतर तालमेल, महिलाओं का समर्थन, जीविका का प्रयास और एक महत्वपूर्ण बात यह कि ये चुनाव साबित कर रहा है कि बिहार में वोटों की डकैती हो गई है। अभी तक चोरी हो रही थी, इस बार डकैती हो गई है और ये डकैती एक सीधा संदेश है कि इससे आगे किस तरीके की रणनीति एनडीए को खात्मा करने के लिए जरूरी होगी वो सोचना पड़ेगा। नरेंद्र नीतीश भाई ये काम आ गया, निश्चित रूप से काम आया। बिहार में नीतीश कुमार की पहचान जो है विकास पुरुष के तौर पर, सुशासन बाबू के तौर पर, कानून व्यवस्था बेहतर करने वाले के तौर पर, महिलाओं का विकास करने के तौर पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पुलों, इन सारी चीज़ों का निर्माण करने वाले नेता के तौर पर बनी। केंद्र से जो है काफी पैसा बिहार को दिया गया, काफी सपोर्ट दिया गया, ढेर सारी नीतीश कुमार की उम्र अस्वस्थता मायने नहीं रखती, इस चुनाव ने बताया रुझानों ने। साबित हुआ। अगर आप किसी अच्छे नेता के बारे में बोलेंगे कि भाई वो मेंटली पागल हो गया है, उसकी याददाश्त कमजोर, तो जो उसके चाहने वाले हैं वो तो साइलेंट वोटर होते हैं ना। नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है बिहार में, इसमें दो राय नहीं। यही वजह है कि बीजेपी भी नीतीश को नहीं छोड़ पाती है। आप देखिए विकास नहीं होगा, उनके दो उप मुख्यमंत्री, और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद। बिल्कुल, तो आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे और ये कट्टा सरकार, ये जंगल राज वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, ये एक परसेप्शन बना जनता के मन में, बहुत बड़ा परसेप्शन बना और परसेप्शन पहले से बना हुआ है। बस इन लोगों ने उन चीज़ों को फिर से उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1990 से 2005 का जो दौर था, 50 से ज़्यादा छोटे बड़े नरसंहार हुए, ये मिथक नहीं है। वहाँ आज एक भी चुनावी हिंसा नहीं हुई, एक भी बूथ पर रीपोलिंग कराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ज्ञानश्री, इसको कंप्लीट होने दी। और 1990 के दशक में चुनावी हिंसा में केवल 650 लोग मारे गए और 2001 के पंचायत चुनाव वो डर, वो सहमा हुआ लोग अभी आज कहीं ना कहीं रिजल्ट में वो तस्वीरें सामने आ रही है। ये चुनाव है, पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी निकली, तो जंगल राज का डर क्यों नहीं आया? इस बार गेम चेंजर रहा 10,000 जो मोदी सरकार ने दिया एन चुनाव के वक्त में। तो ये नहीं कर सकते हैं। अभी सभी बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि जंगल राज 20 साल से तो नीतीश सरकार, लेकिन वो तो तेजस्वी ने भी कहा कि 30,000 रुपए हम दे देंगे, घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए, एक जो है ए बर्ड इज बेटर देन टू इन द बुशेस, कहा जाता है ना कि आपके हाथ में जो चीजें हैं, जो सरकार है जो डिलीवर कर रही है, और आप आश्वासन की सरकार आप दे रहे हैं, आश्वासन पे कौन विश्वास करेगा? और वो जंगल राज का जो आपका तांडव है वो कौन झेल पाए? बिल्कुल, जो हमें मिल रहा है हम उस पर विश्वास करेंगे, क्या होगा आगे नहीं उसके बारे में। बिल्कुल सही, लेकिन एक बात और भी है कि जंगल राज का जो जिक्र है, आप देखिए 2025 का चुनाव है, जो लोग 2000 में पैदा हुए, 2020 में 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उस पीढ़ी ने जंगल राज को ना भोगा। चलिए, बिल्कुल, जो युवा थे उनमें थोड़ी नासमझी थी, हालांकि इसको लेकर के बार बार कहते भी रहे नीतीश कुमार, जब भी वो मंचों पर गए और मंच पर गए तो कहिए कि जरा आप अपने जो नई जो पीढ़ी है उसको भी बताइए कि आपने जो वक्त देखा था लालू के जंगल राज वाला, वो भी थोड़ा समझाइए। और ये कहीं ना कहीं काम भी आया है। एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं, टैली क्या कह रहा है। तो वही आंकड़ा जो है बिल्कुल स्टैटिक जो है वो जाकर के, हालांकि इसमें फेरबदल अभी होना बाकी है, संभावनाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच एनडीए के पास वही 190 का आंकड़ा है। और ये महागठबंधन देखिए, ये तो महागठबंधन फिलहाल इन रुझानों में अर्धशतक भी नहीं पहुंच पाया है, वहां तक भी। जेएसपी की बात करें, जनसुराज पार्टी की, ये 0 का आंकड़ा इनका है। और इसको लेकर के ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होते तो क्या इसका असर दूसरा होता, क्या ये नंबर से यहां पर ज्यादा होते। लेकिन हालांकि शुरुआती जब रुझान सामने आ रहे थे तो उस वक्त आंकड़ा कुछ ज्यादा एक आध का बढ़ रहा था, लेकिन समय के साथ ये 0 पर आके अटक जाते हैं।
और चलिए देखिए लगातार जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर काउंटिंग की एक अपडेट है, कौन कहां किस सीट पर आगे पीछे चल रहा है, हर राउंड से जुड़ी अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आएंगे। कर क्या रहे हो? रोज प्याज किसके लगाती हूँ मैं तो अंडा। आप कुछ नहीं कर रहे हो। अभी लगातार बढ़त बनाए रखा है एनडीए ने, क्या लग रहा है ये परिणाम में बदल जाएगा? देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि परिणाम यही आए। तो चलिए परिणाम यही आए, ऐसा हो सकता है। देखिए जेडीयू क्या बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए अभी तो आप खुद ही बोल रहे हैं रुझान है, और आपके इस चैनल बेहतरीन चैनल जो लगातार आप दिखा रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट को, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा आगे थे, वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया, फिर उनका भी कुछ, तो बहुत सी सीटें। और सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है? मुश्किलात लग रहे हैं, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि बिहार के इस चुनाव में नारी शक्ति का वो अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से एनडीए बिल्कुल ये लैंडस्लाइड वाला नतीजा, बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन, और उनकी बड़ी संख्या में चुनाव में आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहाँ तक कि बड़े जर्नलिस्ट जो दिल्ली से गए थे वो भी आंकलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए नारी शक्ति की हम बात करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार, क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया उसी का असर है कि ये बार में लगातार बड़ी खबर शाहबाद में एनडीए की। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी, और ये देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी की बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर, रुझानों में 75 सीट पर जेडीयू पहुंचा हुआ है, लेकिन लीड लेते हुए बीजेपी दिख रही है। और बिहार में पहली बार ये कमाल हो रहा है कि सबसे आगे बीजेपी है। बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर जितनी चर्चाएं हुई वो बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है इस वक्त। रुझानों में 87 बीजेपी की बढ़त, जेडीयू को भी बढ़त है। वैसे तो अलायंस की बात है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के आकलन को अगर समझे तो यहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार में बहुत बेहतर दिख रहा है। अभी लगातार बढ़त बनाए रखा है एनडीए ने, क्या लग रहा है ये परिणाम में बदल जाएगा? देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि परिणाम यही आए। तो चलिए परिणाम यही आए, ऐसा हो सकता है। देखिए जेडीयू क्या बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए अभी तो आप खुद ही बोल रहे हैं रुझान है, और आपके इस चैनल बेहतरीन चैनल जो लगातार आप दिखा रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट को दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा आगे थे, वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया, फिर उनका भी कुछ, तो बहुत सी सीटें। और विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये महागठबंधन के लिए गैप फिल करना बहुत मुश्किल है? मुश्किलात लग रहे हैं, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि बिहार के इस चुनाव में नारी शक्ति
का वो अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से एनडीए बिल्कुल 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 ये लैंडस्लाइड वाला नतीजा, बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन और उनकी बड़ी संख्या में चुनाव में आकर आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहां तक कि बड़े जर्नलिस्ट भी जो दिल्ली से गए थे वो भी आंदोलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए, नारी शक्ति की हम बात जब करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया उसी का असर है कि ये बार में लगा था। बड़ी खबर शाहबाद में एनडीए की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बक्सर में भी 4 में से 3 सीट पर एनडीए जो है वो आगे है, और भोजपुर में 7 में से 4 सीट पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। रोहतास में 7 में से 5 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। कैमूर में देखिए 4 में से 2 सीट पर। चलिए सीधे विधानसभा के बाहर भी हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार विधानसभा के बाहर हमारी सहयोगी विभा लगातार हमारे साथ बनी हुई। विभा, जल्दी से छोटा छोटा रिएक्शन जी। विभा, बिल्कुल शुभी, तो विधानसभा के बाहर हमारी मौजूदगी जरूर है। और देखिए 175 पर जहां एनडीए इस वक्त रुझानों में आगे लीड करती हुई, जिसमें ही पांडव जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आखिर महागठबंधन में सहयोगियों ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आखिर दावा इतना बड़ा, इतने बड़े घोषणाएं, लेकिन जनता पर असर नहीं। देखिए जो अभी दिखा रहे हैं ये शुरुआती रुझान ही है, और हम लोगों ने शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, और जनता के जो समस्याओं पे जनता के बीच। तो जनता ने क्यों नकार दिया? अभी आप कैसे कर सकते हैं जनता ने नकार दिया? मार्जिन इतना बड़ा है, कैसे पाट पाइएगा? मार्जिन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको रिजल्ट जो है ना। विभा छोटा सा रिएक्शन, जल्दी जल्दी रिएक्शन लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और फिर उसी टैली पर एक नजर डालते हैं जो टैली कि एनडीए खेमे में जो रुझान है वो 192 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 47 महागठबंधन की अर्धशतक तक भी पहुंचना मुश्किल महागठबंधन के लिए इन रुझानों में लग रहा है। प्रशांत किशोर की दूसरी तरफ बात करें तो प्रशांत किशोर भले ही शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी जो है वो 1-2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इस समय बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा जो है वो 0 पर पहुंच गया है। इसके बीच एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस बड़ी खबर से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं, और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर भी होगा। और वो बड़ी खबर खास करके हम बड़े चेहरों की अगर बात करें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और देखिए महाजीत की तरफ जो एनडीए है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। रुझानों में जो तस्वीरें, जो आंकड़े कह रहे हैं 192 का आंकड़ा तक पहुंच गया है। नीतीश के नाम पर एक बार फिर से पक्की मुहर जो है वो दिखाई दे रही है। तो नीतीश फैक्टर ने काम किया है, डबल एन फैक्टर ने काम किया है, जिस बात की चर्चा नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र नीतीश भाई जो दोनों बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और चलिए देखिए इस पूरी खबर और इस अब तक के पूरे रुझान को समझने की भी कोशिश करेंगे, उसके एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर जो है न्यूज 18 नेटवर्क के ब्रजेश कुमार सिंह वो हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके साथ साथ अजय सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ेंगे। सर हम चाहेंगे कि आप आए, और क्या अब तक आप लोगों ने इस रुझान को लेकर के महसूस किया है, और एनडीए ने जिस तरीके से 192 का आंकड़ा तक को पहुंचा है, महागठबंधन की बात करें तो अर्धशतक तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा, अब तक क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर हम लोग 2010 के चुनाव को देखें और उसके बाद से हम लोग 2025 के चुनाव की बात कर रहे हैं, 2010 के बिल्कुल बराबर तो नहीं, लेकिन जो है सो उसी जैसा स्पेक्युलर ये पूरा का पूरा चुनाव है। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। मुझे ये लगता है कि अगर ये रुझान जो अब धीरे धीरे जो है सो जीत में कन्वर्ट होंगे, अगर वो ये है तो बता 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली थी, और बीच के 1 साल को अगर छोड़ दें तो लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। एक तरह से कहा जाता है कि उनका ये आखिरी चुनाव है, उसमें अगर इस तरह का बम्पर अगर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रुझान जो कि असेंबली इलेक्शन में धीरे धीरे जो है जीत में कन्वर्ट हो जाएंगे,
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि बिहार की राजनीति को आप पिछले 30-35 साल से लगातार बहुत करीब से ऑब्जर्व करते रहे हैं, बल्कि आपका पर्सनल एक तरह से कह सकते हैं इक्वेशन भी रहे हैं जिनमें कि आप इन नेताओं को बहुत करीब से जानते भी हैं। क्या आपने सोचा था कि एक तरह से जो नीतीश कुमार का जो आखिरी चुनाव है उसमें इस तरह का, और उसमें जो नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी जो कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलीज में करते रहे, इस तरह का प्रभाव डाल पाएगी? मैं रिपोर्टर के तौर पे तो नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं बिहार जाता रहा और ज़मीन पे उस तरह से घूम के लोगों से मिलता रहा। नीतीश जी के लिए जो एक सिंपैथी थी वो हम इस बार ज़बरदस्त देखी। वो लोगों के आंखों में एक ऐसा था कि जैसे एक तरह से ट्रस्ट था, और कहीं ना कहीं एक पे बैक वाला, समाज का जो पे बैक का एक होता है ना, वो हमें दिखाई दिया। तो हमें ये लगता था कि सिंपैथी होगी और शायद अच्छे ढंग से हो, लेकिन उसका रूप 2010 का होगा ये हमें अंदाज नहीं था। अभी जो हम देख रहे हैं उससे तो हमें लग रहा है कि इस कोलिशन को रेनबो कोलिशन उस समय कहा गया था। आपको याद होगा कि 2005 के इलेक्शन में कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स की बात हुई थी, जिसमें कि अपर कास्ट एंड शेड्यूल एक्सट्रीम ओबीसी ईबीसीज, तो ये एक साथ हुए थे। लेकिन 2010 में इसको रेनबो कहा गया था। रेनबो का मतलब कि सब लोग आ गए थे। ये रेनबो वाली स्थिति हमें लग रही है, और ये रेनबो होना बहुत बड़ी बात है। आपने नीतीश कुमार के लिए कहा कि बिहार की जनता ने जो एक तरह से पे बैक टाइम जैसा जो है सो रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन उसके साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा और करिश्मा, क्योंकि जिससे भी बात की जा रही थी ग्राउंड पे, जब हमारे करेस्पॉन्डेंट जा रहे थे, बार बार लोग मोदी जी का नाम ले रहे थे, और साथ में वो 10,000 रुपये का जो फैक्टर था, या जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो ट्रस्ट था, वह जो है कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। ऑब्वियसली नीतीश कुमार की तो क्रेडिबिलिटी रही, उनका गवर्नेंस रहा, जिसको लोग लगातार कंपेयर करते रहे। आपने कहा पे बैक टाइम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कितने बड़े फैक्टर रहे? नहीं, पीएम का ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा रहा। आप देख रहे हैं कि पिछले, आप तो पहले से देख रहे हैं, अहमदाबाद से लेके और यहाँ तक आपने देखा है, कभी भी वो ट्रस्ट लेवल कभी नीचे नहीं आया, और वो ट्रस्ट लेवल हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथन होता गया। और उसकी वजह है कि प्रामाणिकता। दोनों नेताओं में अगर आप देखें तो दोनों नेताओं में आपको लगेगा कि प्रामाणिक ढंग से इन्होंने जिस तरह से सोशल लाइफ और अपनी लाइफ जिस तरह से लीड की है, लोगों के दिमाग में है कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जो इस ढंग से हो। तो हमें साफ लगता है कि ये एक तरह से लोगों को ये लगा। एक हम आपको किस्सा बताते हैं, 2005 के बाद की बात है। नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि व्याकरण, राजनीतिक व्याकरण चेंज हो गया है, ये लौट के वापस नहीं जा सकता है। दिक्कत ये हो गई है कि अपोजिशन एक टाइम वार्प जो होता है उसमें फंस के रह गया है। वो व्याकरण 2005 से पहले का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जनता उस पर जाना ही नहीं चाहती है, और वो नया व्याकरण अभी तक इन्होंने लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अभी तक जो ये देखा गया था कि बिहार की राजनीति में, अगर पिछला चुनाव छोड़ दें तो जो है, चूंकि उसमें एलजेपी ने जेडीयू की काफ़ी सीटें खराब करी, और बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन रहा उसमें बीजेपी लीड पार्टी बनी, लेकिन उसके पहले तक जो है सो बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जेडीयू उससे ज़्यादा सीटें पाती थी। लेकिन अब पिछले 2 चुनाव, मतलब पिछली बार का चुनाव और इस बार का चुनाव, अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बीजेपी जो है अब बड़े भाई की भूमिका में वहाँ आ गई है। और अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू का एक तरह से आखिरी चुनाव है, इसलिए भी इतनी अधिक सिंपैथी थी, तो इसके बाद अब बीजेपी की राजनीति को कितना आगे बढ़ते हुए देखते हैं? क्या बीजेपी कब उस समय इमेजिन कर पाए जब वो अपने बूते पे सरकार बना पाएगी बिहार में? अभी तो ये स्थिति नहीं है। अभी तो आपको किसी न किसी तरह से एक ऐसी पार्टी का जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हो उसका सहारा लेना होगा। उसकी वजह है कि कास्ट कॉन्शियसनेस वहाँ ज़्यादा है, और बैकवर्ड जो पार्टी है, क्योंकि आप अगर किसी भी रूप में देखें तो जेडीयू को आइडेंटिफाई किया जाता है ईबीसीज के साथ, ईबीसीज और कुर्मीज के साथ। सोशलिस्ट बैकग्राउंड होने की वजह से कुछ सेक्युलर वोट भी उनके साथ रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट बेस लेना ही पड़ेगा। दिक्कत ये हुई है कि सुशील मोदी जी के बाद अभी तक बीजेपी का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है
जिसको कि आप लेके इलेक्शन में जा पाए। पर ये सारी बातें उस समय बेकार हो जाती हैं जबकि आप कभी ना कभी कोई ऐसा चेहरा ले आते हैं जो बाद में मालूम चलता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं अपोजिशन को लेकर जो है सो आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूँ, ये है कि 1990 से लेके 2005 तक 15 साल आरजेडी ने रूल किया। ओब्वियसली जनता दल से शुरुआत हुई थी, आरजेडी तक मामला पहुंचा, लेकिन लालू राबड़ी जो कॉम्बिनेशन रहा पति पत्नी का, उसने रूल किया और उसके बाद से जो सत्ता से बाहर हुई, अगर एक ब्रीफ पीरियड छोड़ दें 2015 वाला, जबकि नीतीश बाबू ने आरजेडी के साथ मिलकर वहां सरकार चलाई, तो ऑलमोस्ट सत्ता से बाहर है। इस बार का अगर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अगर ये ट्रेंड्स में बार बार कह रहा हूँ रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। 2010 के बाद का सबसे एक तरह से खराब परफॉर्मेंस 2010 के बाद का हम कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो माई इक्वेशन, दो चीजें जो कही जा रही थी कि बिहार की राजनीति में ये दो का ब्लॉक इतने मजबूत हैं कि इसके सारे आरजेडी को कभी भी आप निगेट नहीं कर सकते, क्या लगता है कि अब यहाँ से आरजेडी की पॉलिटिक्स और खासतौर पे बिहार में अपोजिशन की राजनीति भी बिग टाइम इंपैक्टेड होगी, एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होगा ये? देखिए, माई का इक्वेशन इम्पैक्ट हो गया था 2010 में माई का इक्वेशन पूरी तरह से खराब हो गया था। वो रिवाइव हो गया 5 साल बाद 15 में। जी 15 में, जबकि जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ आ गए। तो माई को लीज ऑफ लाइफ तो जेडीयू ने दी थी, अदरवाइज माई 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। आज के दिन अगर आप ये देखें और ये राजनीति का ये ट्रेंड रहा तो माई तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं है नहीं। मतलब अगर है भी, मान लीजिए नंबर में है, तो ट्रांसलेट सीट्स में नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इक्वेशन अगर ये अपनी